Sri Pavitra Margetra, I rise to lay on the table of the House the papers relating to the Ministry of Textile as mentioned against his name at serial number 6 in today's list of the business. Thank you, sir. Item number 7, Sri Ganesh Singh. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 5वें, 6ठे और 7वें प्रतिवेदनों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। Item number 8, Sri Shashi Tharoor ji. Thank you, Mr. Speaker. I wish to present the 6th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, on the subject Indian diaspora overseas, including NRIs, PIOs, OCIs and migrant workers, all aspects of their conditions and welfare, including the status of the immigration bill, as listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Item number 9, Sri Ramnath Thakur. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। Item number 10, Sri Ramnath Thakur. अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 के समक्ष दर्शाए गए वक्तव्य जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण के बारे में है, उसे सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 11, Sri Bhupati Raju Srinivas. Sri Arjun Meghwal ji. Sir, I want to make a statement on behalf of Sri Bhupati Raju Srinivas regarding the status of implementation of the recommendation contained in the third report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on demand for grants 2024-2025 pertaining to the Ministry of Steel. Thank you, sir. Item number 12, Sri Kesu Venugopal ji. मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों के विषय के बारे में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me opportunity. I call the attention of the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon regarding hardship faced by fishermen community. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय श्री वेणुगोपाल जी। Thank you, sir. अभी टेबल भेज रखो। I raise today not just a representative of the people, but as a voice for a community that lives and dies by the sea. A community whose lives are deeply connected with the waves of ocean. Their cries are often drowned out by the roaring waves of indifference and neglect. I speak for our fishermen, the unsung heroes who have the unpredictable seas to bring food to our table. But they live in the shadow of neglect. Across the vast coast of Gujarat to Kanyakumari and Bengal to deep south and in the Andaman Islands and Lakshadweep, they live every day at the mercy of nature, stormy seas, harsh winds and uncertain fates. There are the people who feed our nation but struggle to feed their own families, sir. Sir, here in this country, there is only one job who didn't have the guarantee of getting wages. Every day, fishermen goes to sea for fishing. Morning, evening, night, all time they are going for the fishing. Sometimes they bring with fishes, bring back. Sometimes they come with empty hands. This is the only one. ഈ ഒറ്റ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ഈ ലോകത്ത്, ഈ രാജ്യത്ത്
ജോലി ചെയ്താലും കൂലി ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എന്ന് പറയട്ടെ, സങ്കടപൂർവ്വം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, വേദനകൾ പലവട്ടം സഭ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. പക്ഷേ ആ ചർച്ചകളിലൂടെയൊന്നും ഒരു പരിഹാരവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അനുവദിച്ച ഈ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Sir, they do not seek rich or luxuries. All they ask for the dignity of a life without fear, a life where their children can dream beyond the horizon. When I talk about the fisherman, my colleague from Kerala will remember in 2018 when the flood through Lordson country, it was the fishermen who came with their boats. They reached every corner. They rescued thousands of people. They were the army. They were the angels. But do we remember them, sir? നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു സർ. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യമാണെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി, പാവങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിൽ പോയി ഇവരെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നത്. അവരാണ് the army of Kerala. That point of time everybody called like them, but whether we are remembering them now, this is a question I need an answer, sir. India is one of the largest fish producing countries. Morning also Honorable Minister replied to a question. The sector provides food, nutrition and livelihood to millions. Yet what do we back to those who sustain? So GDP numbers are very good. Our fishermen contribute to a booming industry, 1.24% of Indian gross value added and 7.28% to agricultural GVA in 2018 and 19. With an average growth of 7.53% in fish production, India's marine fisheries potential is immense. Morning, you spoke about it. Our exclusive economic zone spans over 2.02 million square kilometers, yet the wealth from this remains concentrated in few hands. While the true custodians of the sea, the fishermen, remain in chains of poverty, sir. It breaks my heart, sir, Honorable Speaker, to witness this painful irony. Every time I travel across vast coastal such as my constituency, Alappuzha, I see men and women whose lives taste of salt. Not the salt of the ocean, but the salt of tears, sir. Tears of hardship, tears of neglect. These are the tears of those who have given everything to the sea and received nothing but despair in return. Sir, like coastal fishermen, inland fishermen are also there, sir. Apart from the sea-going fishermen, we have a considerable number of inland fishermen. The inland fisheries activities are conducted across an extensive network of rivers and canals, 1.95 lakh kilometers. Floodplain lakes, 8.12 lakh hectares. Backwaters, ponds and tanks, reservoirs with an estimated fish production potential about 17 million tons. Currently, the inland fisheries has emerged as a major contributor to the overall fish production in this country. Despite India being the second largest fish producer globally, the government policies and priorities are misguided, sir. The marine fishery sector is a unique and irreplaceable source of livelihood for millions and also our inland fishing communities. Yet, we lack even basic reliable data on the socio-economic conditions of our fishermen. How can we uplift the community when we cannot even measure the suffering of them? We have institutions like the National Fisheries Development Board, NFBD, and the Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI, producing extensive research on fish species and marine resources. But where is the data on those who bring those resources to our shores?
Where is the comprehensive national register of fishermen and their living standard? Are they not worthy of recognition, of being counted, of being seen? Sir, coastal zone, our coastal zone of India are among the most productive ecosystem in the world. Yet they were existential threats from sea level rise, coastal erosion and flooding. The government must answer a fundamental question. Who control our coast, sir? Who control our coast? Who is monopolizing our marine wealth while the traditional custodians are pushed aside? Honorable Speaker, sir, it is alarming that one company operates a port of terminal every 500 kilometers along India's 7,516 kilometer long coastline. Only one company has the monopoly. They have, within 500, they have their own one big endeavor. The group now controls 14 ports and terminals, representing 27% of India's total port volume. Ports from Halda in West Bengal to Vizhinjam in Kerala are under their control. Sir, the problem, what is the problem? In these areas, total privatization of these ports now creating problem for the poor fishermen. Thousands of poor fishermen are being displaced, their livelihoods snatched away, their futures are stolen, sir. Sir, rivers and backwaters, look at our, I told about inland fishermen, sir. We have much of rivers and backwaters. For my own constituency, I think you had been there. One of the beautiful backwater area in the world itself. Gateway of the backwaters. मुझे आप लेके कब गए जो मैंने देखा ही नहीं? बिल्कुल welcome. I am inviting, sir. Vembanad Lake, our parliamentary affairs minister like that. Vembanad Lake is one of the most beautiful lake. But nowadays, what is the poor fisherman is not in a position to fishing there because complete weed, all Vembanad Lake become weed and mud, and area is also sinking day by day. Therefore, our water bodies has to be purified, sir. Then only proper fishing can be done in that area. We need to clean our rivers and backwaters, remove the weeds, and bring life back to these waters. Our fishermen deserve a chance to live with dignity. Sir, ma'am, now I am coming to a major point, sir, which I bring into your notice earlier also. Now, Government of India is going for a seashore mining, offshore mining, sir. The government speaks of the blue economy, but for whom? Under the offshore areas, Mineral Act 2023, private company will soon drill our sea beds, extracting crude oil, gas and minerals. What will be left for the fishermen, sir? Whose livelihood is tied to these waters? I asked a question. Our IB Eden has asked a question in this session only. The reply given by the mining minister is that before notifying the above blocks in offshore areas, the central government had consulted several key ministries, including Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the Department of Fisheries under Ministry of Fisheries. This is a direct question to Honourable Minister. Whether the Fisheries Ministry has done a study on impact of this offshore mining. I have a data by our scientists. Geological Survey of India, National Institute of Ocean Technology, National Institute of Oceanography, National Center for Polar and Ocean Research, National Geophysical Research Institute and Earth System Science Organization are the agencies involved. These people are not studied any impact on sand mining, offshore mining. There are people who done this study. That type of people, I will tell you, sir, the studies suggest that offshore sand mining is often poorly managed, leading to severe environmental, social and economical consequences. There is a knowledge gap in offshore sand mining management and sustainability, and we need to conduct additional research to fill this gap. According to FAO Global Fish Research Program Volume 122, 2016,
The main expected impact from seabed mining are: 1. Changes in the seabed landscape by removing nodules from the sea floor. Number 2, changes in the marine habitat that sustain different forms of life. Number 3, sediment plumes, which will cause a reduction of oxygen and light in the water column and the introduction of metal into the water column. Next, disruption of the sea floor and redistribution of sediments, causing some benthic ecosystem and creatures to be buried. 5, very slow ecosystem recovery from the changes to the sea floor and displacement of marine life. Sir, this much serious impact, our scientists are predicting about this much serious impact on offshore mining. Our fisheries ministry department is already consented for this. For whom this fisheries department is working? This is for mining people or the fishermen? My direct question to you, sir. Are you working for the mining companies or the poor fishermen of this country? Sir, this is this much impactful mining. How can you allow, sir, without a proper study? Fisheries, sir, my point is coming. So without a proper study, they are doing. Premachandran already raised this issue. This Kollam area, Alappuzha area, my constituency, now they are already done tenders. Now they are going to do mining. Entire fishermen is in agitation. Kerala Assembly unanimously passed the resolution and they wrote to you, Minister. No action. The government has to come. Yesterday, our Honorable LOP Rahul Gandhi wrote to Prime Minister to withdraw the mine from the mining. Somebody has to stop this mining. Government side has to come forward onto mining to give a rescue for the poor fishermen of this country. That's why my valid points, sir, I am trying to tell that we cannot allow these things, sir. Because otherwise also fishermen are, you are not even allowing a construction of houses for the fishermen, poor fishermen. When the fisherman is going to construct a house, you will tell CRS norms are there, you are not allowed to construct a small house. Now, of large-scale mining, they can do in sea. No problem. No environmental impact study. Nothing is there. Now, what government is telling? After tender, if somebody took a tender company has to do environmental impact study. What is it? Like letting the folks guard the hen house. Honorable member, please address chair. Sir, okay, sir. Sorry, sir. Sir, this is what letting the folks guard the hen house. This is what happened. The company has to do environmental impact study. This is ridiculous. Basically, therefore, this reckless pursuit of profit is robbing our fishermen of their heritage, their dignity, and their means of survival. Our coastal communities, environmentalists, and marine scientists are united in protest. Majority of the political parties are in protest. Then why government of India is doing all these things? My submission to the fisheries minister, you are a senior most leader of the ruling party also. Tell the Prime Minister and to at least stop this mining process there. Sir, I am already talked about the housing issue, CRZ norms. Some amendments has been done. That also not sufficient. Poor fishermen is not having a position to construct the dwelling houses. The government has to come forward with a clear-cut, flexible idea on CRZ. The major point IB morning raised the issue of sea erosion. Sir, you see this is a shocking. 70% of the world beaches are vanishing in India. The ocean waves and currents are eating away our shores. In undeveloped place. 2 minutes. In undeveloped places, erosion comes and goes. But in developed areas, it is a disaster. A study of the National Center for Coastal Research shows Kerala is one of the worst states. More than 46% of Kerala coast has been eroded, sir, through this sea erosion. There were actually earlier times, sir, the coasts are not just land, sir. They are our borders. They are as important as our northern and western boundaries. The sea brings dangers, terrorism, sir, trafficking, sir, and drug smuggling happening through sea, sir, now. But erosion is threat too. So it is taking away and land and destroying the lives of fishermen and coastal communities. These are the same people
who risk their lives in flood to save others. Now we turn away the sea distortion bomb. Sir, one more point, sir. Kerosene, subsidized kerosene. Kerala alone has 1.95 lakh fishermen who go out to sea every day. The sea is their life. It gives a living to 8.04 lakh fisher folk. Those traditional fishermen are use small boats with outboard motors that run on kerosene. There are around 30,000 such boats in Kerala, but the kerosene they need is just there. Kerala fishermen need 51,000 kilometers of kerosene every year. But the central government keep cutting the quota. 2021, Kerala got only 11,640 kiloliters. In 2023, it's only 7,160, sir. In 23-24, sir, 7,160, sir. In 23-24, sir, just 3,300 kiloliters. And this year is shocking, only 648 kiloliters. This is nothing other than cruelty, sir. Sir, therefore subsidized kerosene has to be increased. Last, because they are not getting sufficient kerosene, they have to depend upon loans. Now entire fisherman is in a debt trap, sir. They are in a debt trap. They are in a suicidal mood. Sir, ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം, മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാനില്ല, കടലിൽ പോയ മീൻ കിട്ടാനില്ല, അവസാനം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ ആ കടം വാങ്ങിച്ച ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിദയനീയമായ സാഹചര്യം ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിടുന്ന ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സർ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഓഫ് ഷോർ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാക്കും. പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല. സർ, ആ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർ, I would request the Honorable Minister, kindly look into these issues. In favor of, you are given a statement. Our statement is covering up some issues, what we are doing central government. But what you are doing specifically for fishermen house, their drinking water, their debt, nothing is covered. So please think about the poor fishermen of this country. Thank you very much, sir. CTR बालू जी, आप केवल प्रश्न पूछना है. आप सीनियर लीडर है, कॉल अटेंशन में मेन व्यक्ति I understand, sir. I understand, sir. So I'll be very short. Kindly give me a few minutes. So actually, with a heavy heart, I should like to call the attention of the Honorable Minister for Fisheries about the sad plight of Indian fishermen, especially fishermen from Tamil Nadu, who are day in, day out, are subjected to hardship in the hands of Sri Lankan security forces. And every day, government of Tamil Nadu is writing to the state guards to intervene and see that proper action is taken, or the government of Sri Lanka should be advised properly so that things may not go wrong. Sir, on 18th February, I made an observation in this house itself. On 18th February, sometime back, I made an observation. On 18th February, Honorable Minister for External Affairs Jaishankar has written to me. But this is also it's a subject matter connected to the two ministries. So he has said, I quote, Prime Minister during the state visit of President Anurag Kumar Dissanayaka on 15th to 17th December 2024 urged the President of Dissanayaka to treat the fishermen issue as a humanitarian one with the livelihood concerns, as well as to avoid use of force under all circumstances. Further raised the issue of frequent arrests, longer sentences and penalties levied on Indian fishermen with the Sri Lankan President as well. In addition, we have requested President Dissanayaka for the early release and repatriation of detained Indian fishermen boats and convening of next round of fishermen levels. Sir, the things is different in the ground. The ground reality is different. Yesterday I had a discussion with the President of the Fishermen Association of Rameswaram. He categorically said, sir, ministry is saying something, but here in the grounds, in the fishing grounds, things are different.
Each and every day, fishermen, the security forces are coming and they are arresting, not only arresting the fishermen, but also arresting the boat. They are taking away everything to the destination. And finally, the fishermen were arrested. For your information, 20 fishermen is in jail for the past 6 months. What sin has they have done it, sir? More than 6 months. More than 6, not 1 or 2 months or few days. Not 1 or 2 months or few days. More than 6 months they are in the languishing in the jail. And more than 70 fishermen are in and out of Rameswaram and Pudukkottai and elsewhere. They are in the various jail for inquiry. They are keeping them for inquiries. So my only request, I won't take much time, don't. Sir, actually, the fishermen of that area who are going for the daily wages, daily bread, they are being harassed. A country who is having friendly connection with India, they are doing a very small country, they are just making a lot of nuisance to the fishermen. This is not fair, sir. So my only request is, Honorable Prime Minister is likely to go to Sri Lanka shortly, it seems. I don't know the exact date and thing. But during the discussion with Dissanayake, there should be a lasting peace agreement. There should be a discussion, and finally there should have a lasting peace agreement with all the stakeholders, especially with the fishermen of Sri Lanka, Tamil Nadu, India, and the both representatives of both the government. They should take immediate action, otherwise things will go wrong, sir. Thank you, sir. Sri N.K. Premchandan. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. This may be the first calling attention motion during this budget session. We are thankful to the Honorable Speaker for allowing such an important issue, and also thanks to Honorable learned friend Sri K.C. Venugopal for calling the attention of the Honorable Minister regarding the fisheries issue. Sir, I am not going to repeat the issues which have already been enlisted by my learned friend Sri K.C. Venugopal. Sir, the pathetic condition of the fishermen in the coastal area, there is no words to explain it. It is just like that of the tribal people in the mountain area. Sir, fishing is the only main source of income of the fishermen, is the fishing. But due to the unsustainable fishing practices, deplete the fishing stocks, impacting the livelihoods of the fishermen and the health of the marine ecosystem. Rising sea temperatures, changing ocean currents, and increased storm activity can disrupt the fishing grounds and threaten fish populations. And pollution from industrial and agricultural sources can contaminate fish population and make them unsafe for consumption. Sir, after the tsunami and Oki disaster in the state of Kerala and throughout the country, the quantity of the abundant fish wealth has declined like anything. In such a situation, I would like to know from the Honorable Minister, I am seeking the clarification. Clarification number 1 is regarding, we have passed, the Parliament has passed the law Right to Forest Act. During the UPA time, we have passed a very revolutionary enactment has been made, that is Right to Forest Act. The tribal people are having the right to enjoy the benefits of the forest. And likewise, I would like to seek a clarification or like to seek a response from the Honorable Minister, whether the government of India will think of passing a legislation, the Right to Sea Act, so as to protect the interests of the fishermen in the country. Number 1. Sir, number two is he has rightly explained regarding the offshore. Yes, sir. This is calling attention. Sir, the second one is regarding the Offshore Mines and Minerals Development Area Development Act, which was passed in the year 2023. Sir, pardon? Sir, as has rightly pointed out, that is deep sand mining in the offshore. And Parappu area in my constituency and Alappuzha, 85 kilometers of length is there.
Now the tender has been invited so as to have the sand mining. Definitely there is no doubt that the ecosystem, marine ecosystem will be disrupted like anything, and that will be adversely affecting the coastal fishermen at large. So my submission is whether, considering the agitation now which is going on in the state of Kerala, and even yesterday the leader of the opposition has rightly pointed out that it will be adversely affecting the interest of the fishermen, coastal fishermen. Would the government will reconsider and recall the tender? Because without having the environmental impact assessment, without having the social impact assessment, Sir. Let me conclude. Without having this is being done, so I would like to know from the Honourable Minister, would the government will recall the tender and have a discussion at large? Without having all these things, it cannot be allowed. These are the 2 points which I would. Thank you, sir. In fact, thank you very much for permitting this entire discussion. I do have 5 clarifications to ask the Minister, sir, because these are issues I have been raising for 15 years in this House without satisfactory response. I'll be very brief on each of them. Number 1, sir, coastal erosion. Yes, sir. I mean, coastal erosion, something that affects my constituency gravely. Ferocious monsoons have been devastating our coastline, destroying homes and livelihoods, and the fisher folk are suffering terribly because of a lack of adequate sea walls and groins. This issue was raised this morning by my colleague Haibi Eden. The minister's reply put the entire onus on the state government. The state government says they don't have the resources. So, Bharat Mata ki dharti ja rahi hai. Ye jo akraman ho raha hai samudra se, hamari dharti ja rahe, meri constituency se 64 square kilometers chale gaye hain. तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? I would like to request the minister to assume the responsibility for protecting Indian territory. Second, sir, lack of fishing harbours. You've talked about the PMMSY supporting 100 coastal villages, but the coastal villages are not enough. They need harbours. We have, in my constituency, we have 28% of Kerala's fishermen, sir, and they have absolutely no harbours other than one major port that's now coming up. Hundreds of fishermen are literally unable to make a living. They have long-standing demands for fishing harbours in places like Puntura and Valiyadura, but no action has been taken. We would appreciate some clarification from the minister. Number 3, sir, kerosene shortage. This has been raised by many members. I'll be very brief. 5 प्रश्न है, sir. तीसरा ये है that the question once again, is the government says they would like to encourage our fisher people to shift to cleaner fuels like LPG and PNG and so on. But they don't have engines. These are poor people. They have kerosene-fueled engines on their traditional fishing craft. Can the government, if they cannot give subsidized kerosene, can they subsidize new engines to use the fuel the government wants them to use? That clarification should be given, sir. 2 more on offshore mining, sir. One simple question. I had asked a question last month, to which I got a reply from the minister. No, sir, 1 second. And the reply from the minister says very clearly that they have not conducted an environmental impact assessment on offshore mining. When can that be done? And finally, sir, I have also raised in this House the persistence of illegal fishing practices such as bull trawling and pair trawling in the waters of Kerala. We have asked the government in this House, sir, to actually engage the Coast Guard and the Navy to protect our fisher folk and their livelihood. Again, will the government and the clarification let us know what they're doing about this? These issues have been raised in the House earlier. Thank you for this great opportunity. I would like to congratulate the Honourable Senior Member Sri K.C. Venugopal ji for the calling attention, which I wholeheartedly support because this is a very important matter, sir. Sir, my specific question to the Honourable Minister through you is, we have state-of-the-art institutions in India like the CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, SIFT, SIFNet, KUFOS, KUZAT, CSIR, and many other organizations related to scientific study of the ocean and the marine-related activities. Sir, does any of these organizations have done a scientific study on the offshore mining, its environmental impact? And sir, how can the government of India give the tender to the study? Sir, concluding. How can the government give the tender of the environmental impact study to the same company who does the offshore mining? Sir, it is disastrous, sir. I would like you to intervene in this matter
आप पूछना चाहते हैं? Sir, thank you, sir. I fully associate with the expression and the opinion expressed by Honorable K.C. Venugopalan and others. Sir, one question on, sir. Sir, the coastal belt faces frequent climate disruption like cyclone and extreme weather. Does the government of India have any large-scale climate resilience? Has the central government conduct any studies in mitigate this impact? And considering the success of the geotop offshore breakwater in some places in Kerala shore, does the central government envisage expanding this innovative mode of other coastal region with the provision of adequate funds? सर, शक्ति परमवीर, रामशंकर राजभर। हमारे संसदीय क्षेत्र में तुरहा ताल है और मैदानी क्षेत्रों में जितने ताल और नदियां हैं वहां की समस्या मानवर दूसरी है। नाव भी मछुआरों के नाम नहीं होती। बड़े बड़े ठेकेदार एक मछुआ को पकड़ते हैं और नाव का ठेका ले लेते हैं मछली मारने का पोखरों के, और मछुआरों के नाम से नाम और जाल नहीं होती, केवल वो मजदूरी पर रख लिए जाते हैं। मैं सरकार के ध्यान रखना चाहता हूं महोदय कि कम से कम मछुआरों को नाव से, जाल से और ठीके से इतना प्रतिबंधित किया जाए, दिया जाए इस तरह से कि वो स्वावलंबी हो। और दूसरा मानवर, यह नियम है कि मछुआरे नदियों के किनारे और पोखरों के किनारे, तालाबों के किनारे मछली मारते हैं, वही मंडई डाल के रहते हैं। यह व्यवस्था भी है मत्स्य पालन द्वारा कि उन मछुआरों का घर बनाया जाएगा, लेकिन यह अभी तक उन मछुआरों का कोई घर भी नहीं बना। यह मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। एक मिनट बोल ले कनिमोजी जी, एक सेकंड। थैंक यू सर। Sir, I'd like to ask the minister and get a clarification. Many boats, over 200 boats have been taken away by the Sri Lankan army, the Navy, and it has been nationalized by the Sri Lankan government. Will the Fisheries Department or the Government of India give some compensation to these fishermen who have lost their boats? Arvind Sawant. Earlier it was done, sir. I want to know whether they will give a compensation because the Tamil Nadu government is giving it. Arvind Sawant. थैंक यू माननीय अध्यक्ष साहब। मुंबई बंदर में जो सारी हमारे कोकण के बहुत बड़ा किनारा है, 720 किलोमीटर का किनारा है महाराष्ट्र, और वहाँ बेचारे फिशरमैन जो है मछुआरे अपना काम करते हैं। सबसे पहली समस्या उनको दो आती है। इसमें एक पहली आती कि केरोसिन नहीं मिलता, उनको डीजल और केरोसिन दोनों लगते हैं। तो केरोसिन मिलता है, डीजल सब्सिडी भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। उसके बाद में फिशरमैन और तकलीफ में आते हैं। और दूसरी बात है, जो हवामान में बदलाव आता है, तो कभी लाल झंडा बोलते हैं वो लोग, तो लाल झंडा कभी समय पे फैलता है, तब तक अंदर वो शिपिंग के लिए जाते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ये दो काम महत्वपूर्ण है। मुंबई, एक वाक्य और है, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जो कुछ डेवलपमेंट करती है वो मछुआरों को विश्वास में लेकर करे तो उनके लिए सहायता होगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका नहीं, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने कई बातों की चर्चा की। उसमें एक उनका है कि जो 30 मिलियन, लगभग 30 मिलियन मछुआरे भाई हैं और गरीब हैं, वास्तव में गरीब हैं, उनके प्रति सरकार का इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट, ये सही नहीं है अध्यक्ष। बल्कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ही उनकी गरीबी पर ध्यान दिया और उनके उत्थान के लिए योजनाएं, और आज उसका परिणाम है कि हमारा मत्स्य उत्पादन पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आपने भी वर्षों तक शासन किया इस देश में। 2013 तक आपने शासन किया, 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए। आपके समय में तो मछुआरे भाई जो हैं वो भूखमरी के कगार पर थे।
आज हम आपको बताएंगे अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जीते रहे और कुछ हद तक उनके दूर हुए हैं। आपको बताएंगे। आपको देखिए, आप वेणुगोपाल जी, आपको जब हम आईना दिखा रहे हैं तो अपना चेहरा देख के आपको क्यों चिढ़ हो रहा है? अरे अपना चेहरा तो देखिए, क्या किया आपने। अब ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का अध्यक्ष महोदय जवाब दे देते हैं। ऑफशोर माइनिंग का कोई कंसेप्ट इस देश में नहीं था। सबसे पहला ऑफशोर माइनिंग का कंसेप्ट अगर लाया तो यूपीए सरकार ने ऑफशोर एरियाज एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट 2002 यहाँ इस सदन में पास कराया और उसके बाद से हुआ। सुन लीजिए, अरे बैठिए, पूरा सुनिए, आप सुनिए बात, अरे सुनिए तो सही, अरे आप बतवा तो पूरा, अरे पूरा सुनिए तो सही, अभी पूरा बता रहे हैं ना। अरे आपको पूरा बात कहाँ सुन रहे हैं। उसके बाद 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए। आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरला में या किसी समुद्री तट में प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो उसके कहां सवाल है, उसके प्रभाव का, कुप्रभाव का कोई नहीं हुआ है। सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि एनआईटी, उसके लिए एनआईटी 13 ब्लॉक्स के लिए नवंबर में जारी हुआ है, नवंबर 2024 में, और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं जो केरला के हैं और वह भी 12 नॉटिकल माइल से बाहर के हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आप कहां से बात कर रहे हैं ऑफशोर माइनिंग की बात? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारंभ ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं। अरे आप सारी बात, और ये पूरा मामला खनन मंत्रालय से, हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त किया है उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं। अब ये हम इनको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मछुआरे समाज के इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट की बात कर रहे थे, हम इनको बताना चाहते हैं कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो हर क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी सोच रही है कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने फिशरी सेक्टर को किया। 2019 में उन्होंने इस विभाग को अलग किया, 2019 में अलग इस विभाग को किया। उसके पहले ब्लू रिवॉल्यूशन से उन्होंने शुरू किया इस क्षेत्र के लोगों के और मछुआरा भाइयों के कल्याण की योजनाओं का। 2000 नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके बाद फिशरी डिपार्टमेंट को अलग किया 2019 में उन्होंने, ताकि उस पर फोकस हो सके, उस पर ध्यान केंद्रित करके उन पर ध्यान दिया जा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उन्होंने चलाया, और इस सब के बाद उन्होंने फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF बनाया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और भी योगदान हो सके। और ये उनका प्रयास रहा, और उनके प्रयास के कारण, इसके कारण आज आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरे देश में बड़े पैमाने पर हुआ। अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे, शशि थरूर साहब मुझसे भी मिले थे। मुझको सहानुभूति है उनकी समस्या के साथ, मैंने उनको बताया भी है अध्यक्ष महोदय कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से थोड़ा रिश्ता ठीक कर लीजिए तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा। अब उनके पास पैसे नहीं है, आपको देने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए थरूर साहब नहीं है। आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका भी के लिए पैसा निकल आएगा। तो हमने आपको बताया है, उनके पास पैसे नहीं, हमारे पास ये तो अपोजिशन में रिश्ता क्यों सुधारेंगे? अध्यक्ष महोदय,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ। वैसल के लिए सुरक्षित लैंडिंग बर्थिंग बनाई गई। लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए और उसका परिणाम है FIDF के तहत हमने बताया कि FIDF के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट हुआ। केरला की बात वो कर रहे हैं, हम केरला की भी बात बता देते हैं। 1358.10 करोड़ की रुपए की योजना केरला राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई, इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि कोई भी राज्य के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तब देश का उत्थान होगा, तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरला में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। 1,69,316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में उनको सहायता प्रदान की गई। नाव दिया गया वहां के मछुआरा भाइयों को, जाल दिया गया जो गरीब लोग थे। कौशल विकास और क्षमता निर्माण स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला के उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण हुआ। मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 6 मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस हैं जहां पर जो वो चर्चा कर रहे थे पीने के पानी का, सारी सुविधा का, उन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल वहां प्रावधान किया गया है। मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस में 6 क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है, चयन उसका हुआ है और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को उसका नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका निर्माण होगा। तो मछुआरा भाइयों के लिए सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा इन्होंने कहा, मोदी जी की सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि मछुआरा भाइयों को जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, अगर गंभीर रूप से घायल है तो 2.5 लाख रुपए और कम बीमार है, घायल है तो 25,000 रुपए की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है। बीड कल्टीवेशन किसका सोच है? इस सरकार का सोच है। मैरीकल्चर उनके आर्थिक उन्नति के लिए। ओपन सी केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज को बढ़ाया गया ताकि उनकी आमदनी बढ़े। पारंपरिक मछुआरे के लिए जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनके लिए नाव और जाल की व्यवस्था की गई। डीप सी वेसल्स के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया। फिशिंग वेसल्स का अपग्रेडेशन हुआ। ट्रांसपॉन्डर, जो आज की तारीख में ट्रांसपॉन्डर जिसकी चर्चा बालू साहब कर रहे थे और कई साथी कर रहे थे कि बॉर्डर पार कर जाते हैं हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए, ट्रांसपॉन्डर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया पालघर से, महाराष्ट्र से। वह ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा हथियार है जो मछुआरे भाइयों को अपनी सीमा के क्रॉस जैसे ही करेंगे देश की सीमा, उनको सिग्नल देगा कि आप देश की सीमा क्रॉस कर रहे हो। वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से उनको सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको समुद्री तूफान की सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से इलाके में आपका कैच ज्यादा संख्या में उपलब्ध है, वहां फिशिंग करने का काम करिए। उनका डीजल बचेगा, उनका केरोसिन बचेगा, उनको मेहनत कम करना पड़ेगा, कैच उपलब्ध होगा। वो अपने परिवार के साथ
जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपोंडर के माध्यम से, वो अपने मालिक वेसल्स के मालिक के साथ जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपोंडर के माध्यम से। 1 लाख मछुआरा भाइयों को मुफ्त ट्रांसपोंडर्स देने की सरकार का फैसला है और कई राज्यों में उसका काम शुरू हो गया है, दिया जा रहा है मछुआरा भाइयों को, तो ट्रांसपोंडर्स की सुविधा हो गई। 100 कोस्टल विलेजेस को 100% वित्त सपोषण के साथ कोस्टल फिशरमैन रेसिलिएंट विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है, उनका चयन हुआ है। उसके अलावा मछुआरा भाइयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट हेतु फंड निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जीपीएस की सुविधा दी जाती है, लाइफ जैकेट उनको दिया जाता है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर उनको दिया जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन उनको दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसके लिए है? ये सारी सुविधाएं और ये सारा की व्यवस्था उन मछुआरा भाइयों के लिए की गई है। तो मछुआरा भाइयों की चिंता मोदी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने इतने दिन तक नहीं किया। और मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी प्रयास का परिणाम है, आज दिख रहा है वो प्रयास। 2013-14 में आप फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे वेणुगोपाल साहब कि मछुआरा भाई सुबह जाते हैं, शाम को बिना मछली के आ जाते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? वो भूखे मरेंगे। 2013-14 तक आपकी जब सरकार थी 95.7 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता था और मोदी जी की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 184.02 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है ये प्रोडक्शन? वही मछुआरा भाई कर रहे हैं, जो आज समुद्र से मछली मार के लाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए भी काम करते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा 2013-14 में, आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। आज 23-24 में दोगुना 60,523 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने का काम हुआ। 10 वर्ष में हमने दोगुना करने का काम किया है। तो इसलिए कोस्टल इलाके में इस प्रति झींगा के उत्पादन में आपके शासनकाल में 3.22 लाख टन होता था। मोदी जी के शासनकाल में 23-24 में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि फिशरी सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ, फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया, फिशरमैन नेग्लेक्टेड है, फिशरमैन इंडिफरेंस है। ये क्या तरीका है? ये नहीं है। जीबीए में, आपका जीबीओ में भी बता दें, जीबीए में 9.08% का रेगुलर ग्रोथ है हमारे जीबीए में फिशरी सेक्टर का। जीबीए में 2014-15 में 0.844% था फिशरी का कंट्रीब्यूशन जीबीए में, आज बढ़कर वो 1.12% हो गया है 22-23 में। ये है उपलब्धि। आप कह रहे हैं कृषि के टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर के जीबीए में, तो जीबीए में 14-15 में 5.12% था, आज बढ़कर 7.2% हो गया है, जो 41.79% का ग्रोथ है। आपको क्या समझ में आएगा? इसलिए आपको कोई समझ में नहीं आएगा, आपको कोई बात समझ में आती नहीं है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इन्होंने कहा, बालू साहब ने और कई सदस्यों ने श्रीलंका के साथ बात करने की बात बताई। श्रीलंका में जो नाव जब्त होते हैं, जब हमारे मछुआरे भाई श्रीलंका का बॉर्डर में चले जाते हैं, तब की बात है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 6 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने भी कई बार इस मामले को उठाया है,
विदेश मंत्रालय इस मामले को लगातार उठा रहा है और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, उसकी 6 बैठकें हो चुकी है। तो इसलिए मोदी सरकार में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, मछुआरे भाई का उत्थान हो रहा है, उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुबंधित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 12, तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the Coastal Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade and encourage domestic participation therein to ensure that India is equipped with a coastal fleet owned and operated by the citizen of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. Sir, Coastal Shipping Bill, a significant reforms initiative that seeks to unlock the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. At a time when our logistics sector is looking for low-cost, reliable and sustainable alternative to overburdened road and rail network, this bill offers the maritime sector a much-needed push with a dedicated legal framework for coastal trade. The provision of the Coastal Shipping Bill 2024 are also in line with the broad vision of the National Logistic Policy as dedicated development of the coastal shipping sector, which is one of the most cost-efficient sources of transport, can play a significant role in lowering the overall cost of logistics for the country. Additionally, coastal shipping is also a sustainable mode of transport, as the emission level of coastal transport are much less compared to rail and road transport. Therefore, increase in the share of coastal transport in the model mix of the country will lead to reduction in pollution caused by the logistics sector in the country. Sir, presently, regulation and licensing of coastal shipping is governed by the Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, which applies only to mechanized vessels. However, it does not provide a holistic or forward-looking framework suited to today's commercial realities in line with globally prevalent cabotage practices. Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958 is overshadowed by its primary focus only on providing licensing of Indian and foreign vessels for coasting trade in India. The result is regulatory gaps and procedural limitations that do not focus on development of coastal shipping sector in the country. As the current provision under Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958 have not led to desirable growth in the coastal shipping sector. Hence, a need was felt to give due weight to statutory provision related to the coastal shipping sector for dedicated focus on the growth. It is thus necessary to enact a separate legislation that consolidates, updates and simplifies the coastal shipping framework in line with the needs of a modern logistic economy and the global best practices. Madam, the Coastal Shipping Bill 2024 is designed to do exactly that, to make coastal trade easier, more competitive and better integrated with India's overall transport vision. Madam, this bill introduces several forward-looking provisions
Chapter 1, 2 clauses consist of provisions on commencement and definition for the bill. Chapter 2, 5 clauses deal with provision regarding licensing and regulation of foreign vessels participating in coastal trade of India. Chapter 3, 2 clauses provide for formulation of the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan and creation of a national database for coastal shipping. Chapter 4, 5 clauses provide for licensing and regulation of foreign vessels chartered by Indian entities. Chapter 5, 19 clauses consist of penalties and offences for any contraventions of the provisions of the bill. The provisions related to penalties are in line with the central government goal of decriminalization of law. Chapter 6, 9 clauses consist of provisions regarding power of DG shipping to seek information, issue direction, central government power to issue direction and provide exemption, among others. With respect to the key provisions of the bill, first and foremost, it does away with the requirement of a general trading license for Indian ship to engage in the coastal trade, that is clause 3. This step will significantly reduce compliance burden and promote ease of doing business for Indian shipping companies, which is in line with the Government of India's mission of enabling ease of doing business. Secondly, Madam, the bill provides that the foreign vessels may only participate in India's coastal trade under a license issued by the Director General of Shipping, Clause 4, and allows the imposition of statutory conditions on such licenses. This may include crewing requirement or stipulation that part of the vessel be built in India. This will not only support Indian shipyard and generate employment for Indian seafarers, but also protect our long-term strategic maritime interest. Madam, importantly, the bill mandates the preparation of a National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan, Clause 8, to be revised every 2 years. This will assess the condition of shipping routes, forecast future traffic, identify areas for improvement, and promote synergy with inland waterways. The plan being formulated under Clause 8 is rightly referred to as a strategic plan because it will provide the long-term vision and determine the roadmap to achieve the goal specified in the preamble of the bill. Further, the integration of coastal and inland waterways will promote regional development of riverine and coastal areas like in the country. This bill will also give impetus to the long-term vision of development of coastal and inland waterways transport in states such as Odisha, Karnataka, and Goa, among others. Another major step is the creation of a national database of coastal shipping, that is in Clause 9, containing details of the license issued, road use, vessel involved, and other key information. This will bring transparency, enhance coordination, enable data-driven and timely decision-making for regulators, shipping companies, and the broader logistic ecosystem. Additionally, the bill also provides for licensing of foreign vessels chartered by citizens of India, NRI, OCI, LLPs, as well as any other Indian entity as may be specified by the central government. That is Clause 11. This provision expands the category of charterers who can charter a foreign vessel in India. Respected Madam, a concern often raised about central legislation is whether they undermine the rule of state. I want to assure this House that the Coastal Shipping Bill 2024 is firmly grounded in the spirit of cooperative federalism. Far from centralizing powers, the bill provides for active representation of state and union territories in key institutional mechanisms. Under Clause 8.3, a committee to be constituted to prepare the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan. This committee will include representatives from every major ports, all state maritime boards, and other experts.
This ensures that the state will not only be consulted, but will actively shape the strategy, route, regulatory approaches for coastal shipping. Such an approach will help align national policy with local priorities and unlock region-specific opportunities. Furthermore, the integration of coastal shipping routes with inland waterways, which often traverse multiple states, call for collective planning and coordinated execution. By recognizing the role of state in this regard, this bill ensures that the growth of coastal shipping is inclusive, participative, and aligned with the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. Respected Madam, the proposed law built on the strong foundation laid by this government over the last decades, including prioritized berthing for coastal vessels, grain clearance channel, GST reduction on bunker fuel, and the right of first refusal scheme for Indian-built vessels. The result is visible. This is a very significant because of the adopting this kind of initiative. The result is visible. Coastal cargo traffic has grown by 119% over the last 10 years, rising from 74 million metric ton in 2014-15 and to over 162 million metric ton in 23-24. We now aim to grow this further to 230 million metric ton by 2030. To support this aspiration, we need legal clarity, regulatory stability, and investment-friendly rules, and that is exactly that this bill delivers. Internationally too, countries as the United States, Australia, and the European Union have adopted dedicated laws for coastal trade. This provision in this bill reflects the best of those practices adopted to suit Indian conditions. Madam, this bill is the outcome of consultation with stakeholders across the maritime sector. In addition to interministerial consultation, input were also received from several private stakeholders. In conclusion, this legislation is timely, necessary, and forward-looking. It will reduce logistic costs. What is the merit of the particular this initiative, this particular bill? It will reduce logistic costs, promote green transport, support Make in India, and create thousands of jobs in shipbuilding, port services, and manning of vessels. The overarching goal of the bill to develop a coastal fleet owned and operated by Indian entities will lead to reduce dependence on foreign vessels for critical areas relevant for our country's coastal shipping. Since coastal shipping is highly significant for movement of critical cargo, including food grains and fertilizer, greater number of Indian ships handling coastal cargo provides supply chain security and prevent escapement of revenue forex to foreign owners and enables a burgeoning local economy in terms of job, shipbuilding, and the likes. These goals are in line with the broad mission of self-reliance as envisaged in creating Atmanirbhar Bharat. Further, increasing the number of Indian fleet in coastal shipping and statutory regulation of foreign vessels operating in our coastal water is critical for ensuring our national and maritime security too. Hence, this bill has well accounted for the same. It aligns local aspiration with national goals and provides a framework for the next 25 years of coastal economic growth under the Maritime Amritkal Vision 2047. I urge honourable members to support this bill and help lay a strong modern foundation for India's maritime future. Thank you. माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी. Thank you, Madam Speaker. Respected colleagues and friends of the House, I rise today from Virudhunagar, a town far from the sea's call. Yet I speak the heartbeat of India's fishermen pulsing through me. From the India's Tamil Nadu's Park Bay to Gujarat Kutch, from Kerala's shores to Odisha's delta.
Their voices unite us. As a member of Indian National Congress, a party born out of freedom's fire, I open this debate not just as on the Coastal Shipping Bill 2024, but on the legacy and the stretches back on thousand years to the Cholas, whose ships ruled the seas, to VOC Pillai, who defied empires, and the East India Company, to the fishermen of today, betrayed by neglect and greed. This bill promises a maritime revival, Indian vessels in our waters, trade unleashed, ports reborn. From Madurai's bustling markets, I see its spark, goods flowing to Chennai's docks, prosperity weaving inland to shore. But, Honorable Ma'am, where is the fisherman in the tale? The man whose boat braves the dawn, whose net feeds our homes. Our history whispers their warmth. A millennium ago, the Cholas, masters of Tamil Nadu, built a naval empire that sailed through Tamil Nadu to Southeast Asia. Rajendra Cholan, in 1025, sent fleets of wooden ships, some say hundreds strong, to conquer now in Indonesia, Sri Vijaya. Their shipyards in Nagapattinam crafted vessels of teak and skill. Their miners mapped the Bay of Bengal. Their trade spanned China to Arabia. The Cholas did not just fish, they commanded the seas as a legacy enriched to our blood. Centuries later, VOC Chidambaram Pillai, VOC, the Kapalotiya Tamilan, revived that spirit. Born in 1872, he launched the Swadeshi Steam Navigation Company in 1906, India's first indigenous shipping line, with ships like SS Gallia and SS Lava plying Tuticorin to Colombo. Against the British might, he raised funds from every corner, vowing, "I'll return with ships or perish in this sea." They jailed him, broke him on the oil press, but his dreams endured. Today, this bill would echo the Cholas and VOCs, lifting our fishermen, honor our maritime soul. Instead, it drifts past them, mute on their safety, their stake, and their future. Let me widen this canvas, ma'am. For the fishermen's fight is India's fight. In Tamil Nadu, 843 fishermen have fallen to the Sri Lankan guns and jails in the past years. Boats seized, families shattered. In Gujarat, Pakistan looms. In Odisha, cyclones range. In Andhra, pollution poisons. Over 1 million fishermen, 70,000 households in Tamil Nadu alone, scrapped by less than 24,000 rupees a year. And now, in a new tide rises, the Prime Minister's favorite ports company in Villingam, where Kerala fishermen blockade Adani's 7,525 crore project. 600 displaced, beaches lost, fishes vanished as groins and dredges choke the coast. In Diggi, Maharashtra and Gangavaram, Andhra Pradesh, the same company's expansions turn fishers into strikers and laborers. Their seas sold. This builds vast powers to the Director General, to this government, would favor such giants over our fishers. The Congress party demands justice. Honorable Madam, as the Cholas ruled with strength, VOC fought with courage. First, safety, modern boats, weather alerts, life vest for every fisherman from Kanyakumari to Puri. Not words, but law. Second, ma'am, livelihood. Certify their boats for trade under this bill. Train them as the Cholas train their navy. Scrap 30% wage tax. Foreign crews escaped. Third, ma'am, diplomacy. End Sri Lanka and the Pakistani assaults. Free our boats. Show Cholas bravery, not cowards. Fourth, ma'am, environment, curb pollution, climate change, and probe the Prime Minister's favorite ports. Are they eroding our coast, starving our fish? We need independent
studies, not corporate tales, ma'am. The Cholas built empires on the sea. VOC built deviance. Yet today, this government props up Adani while fishermen sink. Birmingham delays, cyclones, granite storages, costs Kerala's crores. Yet, the company thrives. Gangavaram's coal stalls over fishermen strikes, but who hears? In 2021, fishers rejected the marine fisheries bill for its fines and neglect. Now they distrust this bill, seeing Adani's hands where Chola and VOC would be. The Congress party, which freed the nation, says consult them, form a committee, MPs from every coastal state, to rewrite this bill with our ancestors' vision. A shield for fishers, not a sword for typhoon. From Virudhunagar, I see this trend in view. Fish from Nagapattinam feeds my people. We fought for fireworks laborers when lives were attacked. Now we fight for fishers when ports and policies are threatened. This government must act not with slogans but with solutions, ma'am. Fund Sagarmala fully, not faintly. Build ports as Cholas did, not burdens them. Free our fishers, not foreign fleas or Modiji's favorite companies' ambitions. Let this bill be tide that lifts all, a tribute to the Cholas' ships, VOC's sacrifice and fishermen's sweat. I stand with this, Honorable Ma'am, with a challenge. Make this House the fisherman's voice. The Cholas echo, VOC's cry from the island to ocean, we are one. The sea is vast, but our resolve, forged by history giants, must be vaster. Let us begin. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लोकसभा में 2 दिसंबर 24 को पेश किया गया था। इस बिल का मकसद भारत के कोस्टल ट्रेड को बढ़ाना तथा भारतीय ध्वजवाहक समुद्री जहाज़ों को बिना किसी बड़ी फॉर्मेलिटी या लाइसेंस के कोस्टल ट्रेड की परमिशन देना है। अभी कोस्टल शिपिंग में विदेशियों का वर्चस्व है। 2005 में यूपीए सरकार ने जब देश के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच व्यापार के लिए रास्ता छोटा करना चाहा, राम सेतु को तोड़ने की साजिश की, तब पूरे देश का ध्यान कोस्टल शिपिंग और यूपीए सरकार द्वारा भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने की ओर गया था। तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी द्वारा भगवान राम को काल्पनिक बताने का एफिडेविट देने पर पूरे देश में यूपीए सरकार की घोर निंदा हुई और उन्हें वो एफिडेविट वापस लेना पड़ा। भारी जनविरोध के कारण तत्काल यूपीए सरकार राम सेतु को तोड़ नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2014 में राम सेतु तोड़ने की परियोजना को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन पर पूरे देश की धर्मपरायण जनता ने चैन की सांस ली। वास्तव में केंद्र सरकार की तेज निगाह से तटीय व्यापार भी छूटा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का मुंबई में उद्घाटन करने के साथ समुद्री क्षेत्र में इंटरनेशनल व नेशनल भागीदारी के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करके देश को समर्पित किए तथा 2047 तक भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। जनवरी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोच्चि में भाषण देते हुए कहा, जब भारत समृद्ध था तब भारत की असली ताकत उसके बंदरगाह व पोर्ट सिटी ही थे। आज भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और हम समुद्री ताकत बढ़ाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बिल से भारत की सुरक्षा और व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों के मालिकाना अधिकार वाले शिप कोस्टल शिपिंग में हेल्प करेंगे। भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कोस्टल शिपिंग के लिए इस युगांतरकारी बिल को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल में भारत की जल सीमा में इंडियन ओनरशिप के जहाज़ों को छोड़कर बिना लाइसेंस शिपिंग करने वाले दूसरे शिप्स को रोकने का प्रावधान है और भारतीय जहाज़ों को कुछ नियमों के साथ व्यापार की अनुमति इस बिल के जरिए दी जा रही है। शिपिंग के डायरेक्टर जनरल किसी भी शिप को भारतीय समुद्री सीमा में काम करने की अनुमति तभी देंगे
जब वो उस शिप पर काम करने वाले लोगों की नागरिकता सुनिश्चित कर लेंगे, या फिर यह कि वो जहाज भारत में बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार इस क्षेत्र में भारतीय लोगों के लिए नौकरी की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी और भारत में शिप बिल्डिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बिल के जरिए कोस्टल शिपिंग के विकास एवं वृद्धि के लिए नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार करने की भी योजना है। इस बिल को इसलिए भी न्यायसंगत कहा जा सकता है कि बिल के अनुसार किसी भी लाइसेंस को सस्पेंड, कैंसिल अथवा संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक दूसरी पार्टी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर न दिया जाए। भारत में कोस्टल शिपिंग की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है और ये कोस्ट लाइन दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों के नज़दीक है। हमारी कोस्ट लाइन से जहाँ एक और मॉरिशस, अरब, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि देशों को क्षेत्रों को व्यापार किया जा सकता है, वहीं अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। भारत को अपनी लंबी कोस्ट लाइन का एक बड़ा लाभ यह भी है कि कोस्टल शिपिंग के जरिए व्यापार करना व्यापार के दूसरे साधनों के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के कारण अगर बंगाल से केरल तक माल ले जाना है तो कोस्टल शिपिंग उसमें बहुत अधिक सहायक है। इसी तरह यदि केरल से गुजरात तक माल पहुंचना है तो उसके लिए शिपिंग सबसे सस्ता जरिया है। वास्तव में कोस्टल शिपिंग भारी कार्गो को एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट तक ले जाने में बेहद सहायक है और एक कोस्ट लाइन से 20 नॉटिकल मील तक कोस्टल शिपिंग मानी जाती है। कोस्टल शिपिंग देश के प्रमुख बंदरगाहों के बीच जहां व्यापार में सहायक है, वहीं कोस्टल शिपिंग के जरिए कंटेनर, बड़े साइज का कार्गो, ट्रक, सेमी ट्रेलर, कार, अनाज, फर्टिलाइजर, स्टील, कोयला, नमक, पत्थर, स्क्रैप, मिनरल्स सभी को कम दाम में परिवहन करता है। कोस्टल शिपिंग का एक और बहुत बड़ा लाभ यह है कि जहां सड़क परिवहन से प्रदूषण फैलता है, वहीं कोस्टल शिपिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस बिल के पास होने से परिस्थितियां भारतीय शिपिंग कंपनियों के पक्ष में बदलेंगी, रेड टेपिज्म कम होगा, स्थानीय व विदेशी व्यापार में भारतीय शिपिंग कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय ध्वजवाहक शिपिंग कंपनियों को कोस्टल शिपिंग में लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। इस बिल का उद्देश्य घरेलू शिपिंग कंपनियों की नौ परिवहन में भागीदारी व रोजगार बढ़ाना है। ये एक राष्ट्र हित का उद्देश्य है, अतः मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये विधेयक अच्छे इरादों की बात करता है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो हमारे देश के हितों को नज़रअंदाज करती हैं। मैं मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये विधेयक सारी शक्ति केंद्र के हाथों में देता है। शिपिंग महानिदेशक को लाइसेंस और नियम बनाने का अधिकार देना राज्यों की भूमिका को कम करता है। तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल जैसे तटीय राज्य इस विधेयक में अपनी आवाज़ खो रहे हैं। क्या ये संघवाद का सम्मान है? हम मांग करते हैं कि राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सरकार कहती है कि ये विधेयक रोजगार बढ़ाएगा, लेकिन ये बड़े कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है, ना कि मछुआरों या छोटे जहाज मालिकों को। मानवर 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह उंद्रा से अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गों का 1/4 हिस्सा संभालते हैं। औसतन हर 500 किलोमीटर तट पर एक अडानी बंदरगाह है। ये अभूतपूर्व विस्तार, जिसका ज़्यादातर हिस्सा अधिग्रहणों के जरिए हुआ है, पिछले 10 सालों में ये चिंता का विषय है। उसके बाद कि एक बंदरगाह खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है? कुछ मामलों में तो पिछले मालिकों पर छापे के बाद और इसके गंभीर सुरक्षा निहितार्थों के बारे में विचार किए बिना सितंबर 2000 में गुजरात के मुंद्रा स्पोर्ट पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मानवर अगर विदेशी कंपनियों को अधिक अधिकार मिलते हैं
तो असमानता बढ़ेगी। क्या गरीब तटीय समुदायों के लिए कोई ठोस योजना है? हमें समावेशी विकास चाहिए, ना कि चुनिंदा लाभ। 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुद्रा में अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा है। हमारी तट रेखा सुंदरबन से लेकर पश्चिमी तट तक संवेदनशील है, लेकिन ये विधेयक प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम नहीं लाता है। जहाजों से होने वाले उत्सर्जन और कचरे पर निगरानी का कोई प्राविधान नहीं है। मानवर, क्या हम व्यापार के लिए अपनी प्रकृति को दांव पर लगाएंगे? पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। मानवर, शिपिंग महानिदेशक को इतनी शक्ति देना नौकरशाही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय डेटा बात की बात तो हो रही है, लेकिन डेटा गोपनीयता का क्या? ये विधेयक पारदर्शिता के बजाय अस्पष्टता लाता है। हम संसदीय निगरानी और जन परामर्श की मांग करते हैं ताकि जनता की आवाज़ सुनी जाए। अंत में ये विधेयक बुनियादी ढांचे की कमियों को नज़रअंदाज करता है। बंदरगाहों में सुविधाएं नहीं हैं, अंतर्देशीय संपर्क कमजोर हैं। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग की हालत देखिए, गाद कम गहराई और टर्मिनलों की कमी इसे बेकार बनाती है। बिना गंगा जैसे जलमार्गों को ठीक किए तटीय नौवहन से जोड़े ये विधेयक सिर्फ कागजी वादा है। सरकार को निवेश करना होगा, न कि सिर्फ कानून बनाना। मानवर, मेरा जिला फतेहपुर गंगा यमुना के बीच में स्थित है। मेरे गृह जनपद में बहुत झीलें हैं। अखनई जैसी झील है जो अंतिम सांस ले रही है। इस झील की परिधि 7 किलोमीटर है, जो नैनीताल झील से भी अधिक है। इस झील में ससुर खरेदी नदी निकलती है, जो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना अंततः गंगा की सहायक नदी है। फतेहपुर में इसके अतिरिक्त कई अन्य झीलें हैं, जिनके पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार से मांग है कि इन झीलों के पुनरुद्धार हेतु नमामि गंगे योजना के तहत विशेष परियोजना लागू की जाए। मानवर, अभी सदन में मछुआरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा हो रही थी। मानवर, मेरे जिले में गंगा जमुना के किनारे मछुआरे बहुत बड़ी तादाद पर रहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उन मछुआरों की जीविका पर पूरा कुठाराघात किया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मछुआरों को आवास दिए गए। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको तालाब के पट्टे दिए गए, गंगा यमुना के किनारे मछली मारने के उनको ठेके दिए गए। लेकिन आज मानवर, उस डबल इंजन की सरकार में मेरे जनपद में माफिया हावी है। वो खनन से लेकर मानवर मछली के ठेके सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो लगातार मछुआरों को पेट में लात मार रहे हैं। मानवर, इस जो विधेयक है, मैं ये विधेयक केंद्रीकृत, कारपोरेट हितैषी और अधूरा है। हम संशोधन चाहते हैं। राज्यों की भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा और छोटे ऑपरेटरों के लिए समर्थन सुनिश्चित, ये देश का भविष्य है, इसे हल्के में न लिया जाए। मानवर, मेरी कुछ मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने वो बात कहना चाहता हूं कि भारतीय शिपिंग कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए, विदेशी कंपनियों को सीमित छूट मिले, तटीय राज्यों को इस विधेयक के निर्माण में परामर्श और भागीदारी का अधिकार मिले, भारतीय मछुआरों और समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस प्राविधान जोड़े जाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी जहाजों के प्रवेश और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में सख्त प्राविधान जोड़े जाएं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये विधेयक भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बिना जरूरी सुधारों के लागू करना आत्मघाती साबित होगा। हमारी मांग है कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और इसमें भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा ये विधेयक भारत के तटीय व्यापार और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनेगा। इन शब्दों के साथ मानवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सदस्य श्री सौगत राय जी। Thank you,
Madam, I rise to speak on the Coastal Shipping Bill 2024 brought forward by the Shipping Minister Sarbanam Sonowal. Madam, coastal shipping is a huge area. It covers 7,500 kilometers of our coast. Problem with our coast is that we have a long coastline, but it is not indented. If you compare it with Scandinavian coast, there are indentation so that ships can go straight into the harbor. We don't have that facility, but we have to make do what we have. Now, the main thing is that coastal shipping is cheaper. For instance, you are from Madhya Pradesh, you didn't realize we have a problem with Calcutta. From Calcutta to Chennai, we can carry coal very easily, easier than train or truck. And this was very prevalent. The minister wants to improve that. But at present, waterways account only 6.4% of our transport mix. Much lower than countries like China, Japan, and the EU. The bill seeks to increase the share to 7.5% by 2030 and 12% by 2047, reducing congestion on roads and railways. The minister has done some work on improving inland river connectivity. Mainly our national waterways are there, Ganga, Brahmaputra, and other places. Madam, you would be surprised to know that from Kolkata port, there are ships going to Kachar. How they go? They go down Ganges to the sea. Then from Bangladesh, they go up Brahmaputra to reach Kachar. There is a regular trip to Karimganj from Kolkata. Now, these are great advantages. There is no traffic jam on waterways, and the cost is less. But one thing, if we improve our coastal shipping, it will enhance India's marine competitiveness. Though 100% FDI is allowed in the shipping sector, complex regulations have hindered foreign investment so far. We must not allow regulations to hamper investment. This bill introduces uniformity and transparency, encouraging more ships to register in India and boosting maritime trade. Madam, you possibly know that there are mechanized vessels and non-mechanized vessels. For instance, if you take a barge, huge barge, going by the Ganges or going into Bangladesh, it is a non-mechanized vessel. If you look at the huge oil platforms through which we raise oil from Bombay High, they are also non-mechanized. Mechanized are those which use an engine. The engine may be petrol engine, but it is better
to have a CNG engine that will improve our marine competitiveness. This is one suggestion that we have. And we should have a provision in clause 3 requiring at least 50% of India's domestic cargo to be transported by Indian flagged vessels. In this house, few days ago, I mentioned that we have not given attention to the shipping sector. Mr. Sonowal, as a minister, is giving attention to the shipping sector. He is trying to improve both inland, coastal, and high seas ship transportation. That is a big way of improving our situation. Madam, the bill mandates the creation of a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the commencement of the Act. But one requirement is that we must not depend wholly on the Director General of Shipping. Director General of Shipping is the biggest bureaucrat in the shipping ministry after the Secretary. We must create an independent body to look after shipping matters instead of giving it to a single Director General of Shipping. Madam, there is a big problem of Indian seafarers or sailors finding jobs. The government should mandate a minimum quota of Indian seafarers in Indian flagged vessels. We should give more encouragement to the shipping companies that employ Indian seafarers through tax rebates. Lastly, Madam, the new National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan should be implemented in a hurry. Madam, from ancient times, ships have opened up India's doors. You know, in the 15th century, Vasco da Gama came from Portugal to Indian ships. But even before that, Samrat Ashok sent his children to the Southeast Asia. Shivaji had a fleet. Kanoji Angre was Shivaji's admiral. And Vijay, finest navy. Madam, also the Vijayanagar kings, they also Cholas, they also had fleets. So I would ask the shipping minister that he has got straight 4 years till the next election. So he should show some result in this Andhra Pradesh, having the second largest coastline in the country, will benefit from the bill. So will Maharashtra, which has got a big coastal line. So I don't want to prolong my speech. Bills should not be introduced only to establish or force regulations. There are too many regulations. You get a punishment because of this, you have to pay so much. No, bills or laws should be there to encourage shipping. And I would like this Indian shipping to benefit
totally from this bill. I look forward to Kolkata benefiting because Kolkata has a long time, though it is inland, ships go out from Kolkata to Chennai, to Bangladesh, and it will benefit very much if the shipping is improved. With this word, I have nothing to oppose in the bill. I have made some suggestions. I thank the Minister. Thank you. माननीय सदस्य श्री कादिर आनंद जी। வணக்கம் chairperson அவர்களே, esteemed members of this house, I stand before you today not merely as a representative but as a voice of Tamil Nadu, a state wronged by the Coastal Bill 2024. This legislation, draped in the garb of modernization, is an insult to our maritime legacy, a betrayal of our economic aspirations, and a dagger aimed at the heart of our coastal communities. Tamil Nadu, with its 1,076 kilometers of coastline, its bustling ports, and its indefatigable people, deserves better than its half-baked central-centric travesty. Let me tap through this passage and demand justice for my state, madam. First, this bill dares to dangle the carrot of ease of doing business by scrapping licenses for Indian flag vessels, a fine idea. If we ignore the stark of reality of Tamil Nadu, our shipyards are shadows of what they could be, our ports grown under decades of neglect, and our shipping firms struggle to compete. Where are the ships were meant to flag? Madam, Gujarat may boast about its maritime might, but Tamil Nadu languishes without the infrastructure to claim this so-called benefit. And yet, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, he has fought to rise above his apathy, pushing for port expansions at Tuticorin, modernizing Chennai, and dreaming of shipbuilding hub in our state, madam. Why then this bill offer us crumbs while others feast? We demand funding, not empty promises. Madam, the bill's grant talk of integrating our inland waterways with coastal shipping is a cruel joke for Tamil Nadu, madam. The Buckingham Canal, once a jewel of our trade network, lies choked, abandoned, a victim of central indifferences. Our Chief Minister has tirelessly championed its revival, allocating funds and drafting plans to link it to our ports. Yet, this bill offers no support, no commitment, just vague platitudes about coordination. Why must Tamil Nadu beg for what other states are handed? We will not be silenced while the center dreams of rivers that we do not have. Restore our waterways or admit this bill is a sham. Third, madam, the National Coastal and Inland Shipping Strategy Plan is a slap in the face of the state autonomy. Every 2 years, center will dictate our maritime fate as if Tamil Nadu needs can be scribbled on our bureaucrats' notepad. Our minor ports need dredging. Our fishing harbors need protection. Our industries need connectivity. Yet this bill chains us to centralized leash. Our Chief Minister has shown the way, fostering maritime growth with initiatives like Tamil Nadu Maritime Board and Coastal Economic Zones. Why should his efforts be shackled by a plan that ignores our voice? We demand co-ownership of this strategy, not subversive to it. Fourth, madam, the environmental stakes of this bill are a ticking time bomb for Tamil Nadu. Our Gulf of Mannar, our Palak Bay, these are not just waters, they are our lifeblood. Cradling biodiversity found nowhere else, madam. Increased shipping spurred by this bill promises oil spills, pollution, and ruin for our fishermen. The Ennore disaster still haunts us. Oil-stained shores, poisoned fish, broken livelihoods, yet enforcement falters.
fines of 15 lakhs, a pittance when our ecosystem hangs in balance. Our Chief Minister had stood firm, enforcing green norms and pushing for the sustainable ports. This bill must match his resolve with ironclad safeguards or its death sentence for our coast, madam. Finally, the bill's content for our small-scale operators is unforgivable. Tamil Nadu's maritime soul beats in the catamarans and mechanized boats of our 1.2 million fisher folks and traders. They are not footnotes. They are our backbone. Yet this bill fixates on grand vessels, leaving our small operators to drown in red tape and cost they cannot bear, madam. Our Chief Minister has uplifted them with subsidies, training and harbour upgrades. Efforts this bill ignores. We will not let you crush the very people who sustain us. Amend this bill to protect them or face our wrath, madam. Honourable members, Tamil Nadu is not a beggar at the table of progress. We are a titan demanding our due. Our Chief Minister has lit the path, expanding Tuticorin's capacity, greening our ports and dreaming of a maritime renaissance. But this bill dims that light with its neglect, its arrogance, its blindness. I say to the House, rewrite it, fund our ports, revive our waterways, respect our autonomy, shield our environment and honor our small operators. Anything less is affront to Tamil Nadu's pride, a mockery of our Chief Minister's toil and a betrayal of our Tamil Nadu people. We will not bow, we will not break. Give us justice or prepare for the roar. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री लाभू श्री कृष्णा जी। Thank you, ma'am, for allowing me to speak on this bill. I stand in support of Coastal Shipping Bill 2024, ma'am. Ma'am, we have a great history of seafaring, trading, and maritime, ma'am. As Dada has just mentioned earlier, from medieval times, we were trading with all the way from mainland Europe to Japan, ma'am. And also, our shipbuilding has been one of the world class until the time British have arrived into the country, ma'am. So we had great history in maritime. But somehow, in the last few centuries or so, we have really fallen behind. And recently, we have been so far behind with regards to the logistics costs that India is bearing. When we look at logistics cost that India does have on par with the GDP, we have almost 13 to 14% of the cost that we have to pay for the logistics, whereas the global average is around 8 to 9%. So this is actually hampering the MSMEs, the manufacturing sector that is there in India. So to bring down this logistics cost, this bill is definitely very much needed, ma'am. And also the second reason that this bill is needed is with regards to the only 6.4% of the transport mix across the country that is happening with the waterways, either inland waterways or outside in the ocean as well. So this is very less when compared to the world average. So this bill is very much necessary to increase this transport mix so that more goods can be transported, ma'am. And also the third reason that this bill is very much needed is with regards to there's a provision for a 100% FDI that can be brought into this sector, ma'am. Unlike aviation sector, unlike the national highway sector, where when the FDI was allowed, it was very much well taken up, and most of the projects are being funded, ma'am. But somehow, because of a lot of bureaucracy that is involved in this sector, this 100% FDI, even though it is allowed, it is not being taken into the account, ma'am. So this bill is very much needed for encouraging this. Coming to the suggestion that I want to make, there's 3 suggestions, ma'am. The first one being, I think Dada has already mentioned about this, that 50% of the Indian domestic cargo has to be mandated so that they can be transported via Indian flagged vessels. Example, China does that, wherein the China flagged vessels will have a mandatory condition that some percentage of the cargo has to be taken care of by the Chinese flagged vessels. So I hope the ministry will take this into the account. The second suggestion is with regards to there is a lot of Indian seafarers that are doing a lot of good work, not only in Indian vessels, but the vessels outside the country also. So mandate the minimum quota for these Indian seafarers so that they can get better jobs on Indian vessels. The third suggestion I want to make is with regards to there is a
49% of Indian coastal fleet, which is almost 20 years old or more than 20 years old. So the requirement that these people are asking is to provide low-cost capital and long-term financing, so that because we are shipbuilding as a whole, as an industry, it needs to be developed. We don't have a Indian shipping vessel fleet that when compared to even the small countries like France and Italy, they have their own shipping liners, but somehow India doesn't have it. Even China has it as a big nation. So I think we need to look into the direction. For that to happen, this low cost and long-term financing is the need of the hour. I hope the minister will take this into account. Coming to the Andhra Pradesh, when we have to talk about the shipping bill, we have to talk about Andhra Pradesh, ma'am, because we have one of the longest coastal line of 1,000 kilometers, and we have the 3 major ports and 12 non-major ports as well, ma'am. We have been coming on board with regards to the by becoming a hub for the shipbuilding and maritime trade. And our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu recently, I don't know if any other state have announced it, but in Andhra Pradesh there is a maritime policy that has been announced only 3 months back, because we understand the need of this industry, the need to develop this industry, so we have announced this policy. So because of this, there are 5 shipbuilding and ship repair clusters that the Union government has announced, and one is coming to Andhra Pradesh. I thank the Minister for sanctioning this. I can thank the Prime Minister also for sanctioning this, ma'am. But on top of this, on top of allocating this shipbuilding and ship repair cluster, what I request is there's a Buckingham Canal that goes, that's there from last 100 and 150 years, that goes via my district of Guntur all the way to Chennai, which will reduce the shipping cost and maritime cost. We have a lot of coastal line, lot of ports on the ports, ma'am, but at the same time, if there is a inland shipping process also with this Buckingham Canal, I think that will actually bring down the logistics cost I've mentioned earlier. So I request the Honourable Minister to look into this. And last 2 points, ma'am, that this sector needs to be developed. That's why we brought in, Andhra Pradesh brought in the maritime policy. But for this sector to develop, there are 2 things that needs to be kept in mind. One is robust security mechanism that has to be there, and there's a urgent need of safeguarding the port assets. Why I'm telling you, ma'am, there's robust security mechanism, because the one example I can give you is Visakhapatnam port. There's an incident that happened in the last year around February, March, ma'am, wherein there's a shipping container that have come from Brazil to Andhra Pradesh. They've imported seafood, ma'am, so that seafood for some industry related to the shrimp industry, ma'am. They imported the seafood. Somehow that Interpol has sent a message saying there is a cocaine that has been coming in. And because someone has alerted, the container that has come into the Vizag port, it has been stopped. Okay, they stopped it. I understand that. But there's a process, due process that needs to be followed. Maybe take 10 days, take 20 days, take 1 month. But the whole process extended by 9 months to clear that there's no cocaine that is being transported in that shipping container. If the process takes 9 months, ma'am, imagine if someone has to come and invest in the sector in India. So how will they be encouraged when this whole process can take 9 months? Eventually, I have to say it in the house, even my name was dragged into that incident. My name was that somehow it is associated or something, but eventually there's nothing that is been found. But why I'm telling this example is 9 months of clearing a small issue doesn't sound well when we are asking for FDI to come in, 100% FDI to come in. So I request the minister to look into this issue. Second issue, ma'am, with regards to the Kakinada port. Kakinada port, my fellow MP is also sitting here, and I'm mentioning this issue because we need to safeguard the port assets. Because I'll give an example of what has happened. There was, in the previous government, what has happened was this Kakinada port, which was valued around 2,500 crores for the 40% stake. It has been taken by force by 494 crores. Whereas where it is owned by 2,500 crores, it has been taken out for 494 crores. Ma'am, this might happen, this might happen, maybe in the inside trading or whatever it is. But the problem, the crux of the problem here is the maritime trade gets affected. Whatever the goods that has to be transported from this port gets hampered because of this non-protection of the port assets, ma'am. So I request the minister
to actually look into how these transactions are being done, so that there is some transparency. Because as a country, we also don't want to lose any of this. Whenever this transaction happens, there is some income that the government gets, either central government or the state government also gets. Definitely, there are so many people that are involved. There are so many employees that are involved in the port, working in this port. They also get affected. So I request the minister to look at it. When we are looking for 100% FDI to come in, when we want the whole thing to be streamlined and much more process-driven, I request the minister to look into issues with regards to the security as well as safeguarding of the port assets, ma'am. With this observation, I support this bill wholeheartedly, ma'am. Thank you. माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे द कोस्टल शिपिंग विंग 2024 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में 7,500 किलोमीटर का समुद्री किनारा माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए शामिल है, और यह समुद्री किनारा विश्व में विभिन्न देशों के लिए माल ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है महोदय, जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी भी है। यह भी देखा गया है कि समुद्र के रास्ते से माल ढुलाई आसान ही नहीं है बल्कि सस्ता भी है। महोदय, द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिले, समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिले तथा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। हमारे पुराने कानून जैसा कि द कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 और द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में एकरूपता का अभाव था। यह भी जरूरी है कि हम इस नए विधेयक में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पोल्यूशन जैसे विषयों को भी एड्रेस करें। वर्तमान विधेयक पास होने से लाइसेंस रिक्वायरमेंट सिंपल होगा तथा इंडियन फ्लैग वाले जहाज़ों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय जहाज़ों को तटीय शिपिंग में भाग लेने का अधिक मौका मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। महोदय, तटीय शिपिंग यातायात में पिछले 3 वर्षों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 133 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम और वर्ष 22-23 में 151 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, वर्ष 2023-24 में 162 MMTPA रहा है और सरकार के समुद्री अमृत विजन काल 2047 के अनुसार देश में परिवहन किए जाने वाले तटीय कार्गो की संख्या बढ़ाकर 1300 MMTPA करने की योजना है महोदय। इससे ट्रेड और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विधेयक के सेक्शन 41 में यह प्रावधान है कि कोस्टल शिपिंग में जो भी समस्याएं होगी उसका निष्पादन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में भारत के तटों से माल ढुलाई में तेजी आई है। शिपिंग मंत्रालय के डाटा के अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकारी बंदरगाहों की तुलना में निजी बंदरगाहों में वृद्धि दर ज़्यादा रही है। मेरा इस बिल में सुझाव है कि सरकारी बंदरगाहों को भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। महोदय, अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच सरकारी बंदरगाहों द्वारा संचालित कोस्टल शिपिंग में केवल 1.3% की वृद्धि हुई है और कुछ बड़े तटीय केंद्रों में तटीय आवाजाही में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 में प्रमुख बंदरगाहों में 750 लाख टन तटीय कार्गो का संचालन किया है, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों से 550 लाख टन की ढुलाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित किए जाएं। इस विधेयक से निश्चित ही कोस्टल शिपिंग में मजबूती आएगी। वर्तमान विधेयक के पास होने से भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आएगी महोदय। द कोस्टल शिपिंग बिल के पास होने से देश में जल मार्ग के नए राजमार्ग बनेंगे, देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस बिल में मेरा एक सुझाव भी है कि हर मौसम में काम करने वाले गहरे पानी के अंदर बंदरगाहों को भी बनाने का प्रावधान किया जाए ताकि हम समुद्री क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकें।
महोदय, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो कि यूज ऑफ ओशियन सीज और मेरीन रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हरित ईंधन और हाइड्रोजन संचालित जहाज़ों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि समुद्री प्रदूषण को भी अधिक से अधिक कम किया जा सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chair Madam. Coastal Shipping Bill 2024. I have few points to make out of this bill. I think Shipping Minister is missing from the House. This bill envisages, and it has got a main objective to enhance and strengthen the water-based trade. The trade, India has a more than 7,500 kilometers coastline, out of which around 750 kilometers which is there in Maharashtra. As far as Maharashtra is concerned, the laws which are there, which shipping industry goes to or observes them, that major ports are connected and regulated from the central government, and minor and intermediate ports are being taken care by the maritime bodies of the state governments. Sir, Madam, when nothing was in sight and when India was ruled by the Britishers, much before that, and the Mughal emperors, they reigned India, it was Chhatrapati Shivaji Maharaj, who you could call or describe him as a visionary who was real admiral of the naval fleet. Kanoji Angre, who was the chief commander of Chhatrapati Shivaji Maharaj naval force. And since then, that Maharashtra, what we have witnessed, what we have seen, but unfortunately over the years, kind of the infrastructure which ought to have been robust infrastructure in place, which is not so here in India. Now that waterways we are looking at, that it's a basic mode of transportation, which is the cheapest in fact as compared to rail or even road transport. But what laws we are going to follow? Now here in the bill, if we have, whatever time has been allotted to me to speak on this, but I would say that, as has been mentioned earlier by, I think, Saugata Royji, that DGCA, the kind of powers which are given to through this bill to the DGCA, Director General, that concentration of power, that will hamper the objectives and the aims of the bill, what you envisage. There are revision in penalties also. These are the things when we think of encouraging one part, and if government really thinks very seriously to come out with something to dole out to the people who your participation of private players is also envisaged in this, you have thought, you've given a lot of encouragement through that also if private players come into this. If you want to have that, the kind of liberty which should be given, of course regulation has to be there to check, but check the accountability, check the regulation of the law, but at the same time, that kind of liberty be given. If you see the internationally what is happening, compared to that, we are nowhere near international benchmarks. We go by, like for compounding of offences, these are the powers which are with the principal officer and the DGCA, the authorities. Now, offences which happen, one who is a regular history sheeter, one can understand that revocation of licensing and all that. But those who are there by oversight or inadvertent mistakes when they happen, forgetting the main documents or, absence of main documents when they are asked for the
asked at the time of check. If they are not found, if severe penalty is given, I mean, that hampers not only the growth of that individual or that organization, but it hampers in a big way. That ecosystem itself gets disturbed. The another potential what you have seen is regarding the recruitment of good people. What Indian seafarers today are finding, because foreign shippers are the main players who have captured this complete industry. And if Indian vessels, Indian flag vessels are to come into the play, then we have to compare with what is happening internationally. Internationally, total exploitation of our seafarers, sailors is happening. And there has to be check as far as this new regulation is concerned. Their emoluments, their remuneration, and really that kind of scope need to be there, that crew is developed, that other technical staff is developed. One more, this thing is, it is not only for carrying or carriage of goods and the passengers. Besides that, non-propelling vessels like drilling units, they are also included in this, because coastal, by way you are encouraging trade out of coast. So coastal trade, if it is to take place and really it has to progress the way it is being designed, then these are the things where we have to, I think government will be giving much more attention than what is only come out by way of this legislation. And once it is done, then I think we will be at par, or we should have an objective that India would be one of the best, or internationally, that we compete with foreigners, we compete with advanced countries, and that kind of infrastructure we build and the encouragement be given. Thank you, Madam. I support this bill. Dhanyavad. Report of the Business Advisory Committee, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Madam, with your permission, I rise to present the 9th report of the Business Advisory Committee. Thank you. Honorable members, Srimati Supriya Sule ji. Thank you, ma'am. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party, SP, to speak on the coastal shipping bill. So as mentioned by my earlier colleagues, that India has had a history of maritime trade and a strong naval fleet for generations. Be it Chhatrapati Shivaji Maharaj, be it the Chola dynasty, be it the Pandyan dynasty. These are several dynasties which initially, whenever history is written about the maritime boards and the trade, these are huge contributions which actually made our global trade much closer and effective. While this happened in India's history, then came modern India under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. And then Maharashtra has a long coastal route, as you say, which is connected to other states in the south. And in our long coastal line that we have, we in Maharashtra had the JNPT, which is one of the finest ports in India. We have Port Trust, which is a very old but a very effective port in Maharashtra, in Mumbai. And we have the new Vadhavan port, which is coming in Maharashtra, which we discussed just last week. I appreciate the efforts of the Honorable Minister, but I have noticed that every week he comes up with one bill. I request him that if he brings a large consolidated bill of making effective changes in his ministry, it will make a larger impact on this maritime trade that this government is trying to bring in. I would like to make a few suggestions to the Honorable Minister and ask him a few questions for clarification of the industry as well. That there was a 1838 and a 1958 Vessels Act, which talked about regulation, safety, security, pollution, prevention. Now, while he is covering all these points and consolidating several of these issues every week in his mantralaya, in his department, I request him that he should even make sure that every fisherman, because we just debated a lot of fishery, dairy, allied businesses and agriculture today. So the fishermen have to be protected and looked after every time we do any kind of this endeavor. My colleagues sitting here from the DMK, I know how much they suffer every time
when some fisherman by default goes across the border, he has no clue, there are really no borders there, and how they are caught, punished. So I think while we have policies for port and maritime trade, we must be very, very sensitive to the fishermen of this country, which are very critical part of an economy of this country as well. They do participate in the growth of this country. Just because they don't have a loud voice, that doesn't mean, or they don't create crores of infrastructure, that doesn't mean they don't deserve a voice in this house that we are standing on. I would like to ask them a few questions which we need to seek clarification, ma'am. Streamlining of licensing in these procedures. I appreciate the efforts of the government to bringing the foreign and the Indian vessels together on the same thing. But while you are bringing this great introduction by using technology, I would like to ask that will there be a license which will be approvals or rejections in a timeline manner? So if you are using so much technology, it has to be very effective and it has to be time bound. Only then this industry would really grow. Nobody wants harassment. The second thing is they've used the word services. Now in services, after GST has come, there are various services. The income tax bill which we have in the, all of us, several of us in this committee, there is a word service. GST has the word service. Every industry has the word service. Now this also they have brought in a service. So while there is taxation and services, the definition of the word services must be totally uniform in all these cases is something that the government must clarify. And if they haven't done it, I urge them to bring it under one meaning in every bill and make sure it is the same everywhere so there is no confusion in any industry. Next thing is modernization and digital integration. Now they've talked about making a database. With so much technology, it is so easy. But this real data name, it has to be analytical driven and make sure that policy making and investments in this industry have to be tracked. Because most young people who are looking for jobs are always confused. They don't know where to apply. Even if they apply, the skilling is not good enough. There's always upgrading of skills required with so much change in technology. So be it policy or employment, what is the specific intervention this government is doing, they must clarify. While just last week, my colleague and friend Kani Moriji talked about extensively during question hour about environmental safeguard. She herself comes from a constituency which has a very big port, which was mentioned by my colleague earlier. Now, the whole thing is decarbonization efforts for making sure there is no or less pollution. I won't say no pollution because that's not possible. It's too idealistic to expect that. But can we not work towards making it a zero pollution business and making sure that the fuels in this entire shipping industry are clean? India has a huge ammonia efforts that we have. We have a lot of ammonia. Is it possible to integrate it, which is an international demand? From January, I'd like to just quote this, from January 1st, 23, all ships must comply to an International Maritime Organization's Energy Efficiency Existing Shipping Index and a Carbon Intensity Indicator. I think this is very, very critical. And she also, Kani Moriji also talked about it in the question hour. So I think we need, while you're making these policies, environment has to be at the center of any growth of any great infrastructure project in this country. Conflict resolution, Professor Roy talked about it. I will not repeat it, but I'd like to make a small point. What he has suggested, I'd like to reiterate that the Director General is going to be made in charge of all this policy. Will it be too much consolidation of power in one place? So I'd like to reiterate what Professor Roy has said, that please rethink it. It's not that we don't mistrust anybody, but to consolidate energy in one place may not be the idealistic situation in any business for that matter. The other small point is that ease of doing business. This government constantly talks about ease of doing business. So they have used the word penalties, restrictions. These are not words anybody likes in a growing economy anywhere in the world. So I urge them, like we have made in other laws, that you either give them a first warning, second warning, and third warning, or even a case which my colleague Krishna, I may not have agreed with his entire speech, but I do value the intervention that he made, that if there is an industry which is suffering, and if somebody has a penalty, and for 9 months, somebody who has really not done anything wrong has to suffer, the business suffers, and not only the business or the owner suffers, thousands of stakeholders of that company suffer who are very poor and hardworking and honest citizens of the state.
So while you are talking about penalties and ease of doing business, I think this government must focus. Don't put fear in. Even in taxation, I spoke in my finance bill, don't put fear in the industry. Investors are honest. Indians by nature are honest. So don't threaten them or bring fear, be it income tax, be it in GST. We don't want tax terrorism or any policy to scare investors. If you are making policies, make them people friendly. Show people that you are faith in them, and Indians will deliver superior results, and make sure it's India's growing economy which they want, from the fifth to the third to the first. We are very happy if they reach by 47, 57 or whichever year they want to go into. But these are all idealistic things on paper. I think they need to walk the talk for making sure that they are good in ease of doing business. And the last small point for good investors in India operation and shipbuilding, there are three very serious interventions this government needs to make. Is make sure there's a good and easy tax policy, make sure there's good access to credit and easy access to credit, and the infrastructure support that governments need to go and encourage maritime trade. I again take this opportunity. I appreciate all the good work done by the very honorable minister, but if he consolidates it, I think he'll be far more effective. He is effective, but he'll be far more effective if he consolidates all his bills together. Thank you. Honorable Member Shri Ravindra Vaikar ji. इस बिल के ऊपर कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज called the father of the Indian Navy. हमारे देश में समुद्र का पहला महत्व जो सोचा था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी के कारण उन्होंने तट के ऊपर अपने किले भी बनाए थे, अपनी सेना अपनी फौज भी रखी थी। हमारे मुंबई में पोर्ट्रस कहा जाता है, गोदी, वहां से हम इसी प्रकार से व्यापार करते हैं। गोदी से माल यहाँ और लेके जाते हैं, वर्ल्ड में कहाँ भी। वाडवन बंदर हमारे यहाँ अभी शुरू होने जा रहा है। देश के 10 पोर्ट्रस के जैसे एक उसमें नाम वाडवन का आने वाला है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। ये विधेयक केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की शक्ति को डेवलप करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत एक समुद्र राष्ट्र है जिसमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा केवल पर्यटन या सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का आधार बन सकती है। आज अब वैश्विक व्यापार का 90% समुद्र मार्गों से होता है, तब कोस्टल शिपिंग हमारे देश के लिए एक कोस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट विकल्प बनकर उभरा है। ये विधेयक भारत को लॉजिस्टिक हब में बदलने का दृष्टि से एक मजबूत नींव डालता है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 के तहत अब केवल भारतीय जहाजों को कोस्टल ट्रेड करने की अनुमति होगी और विदेशी जहाजों को उसके लिए डायरेक्टर जनरल शिपिंग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिनका कई लोगों ने अभी जिक्र किया कि लाइसेंस तो उनको लेना ही चाहिए। जिस प्रकार हमने हमारी सुरक्षिता देखनी है तो उनको कौन आता है कौन जाता है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत ही वो लेना जरूरी है। क्लास 3 और 4 में और 5 के प्रावधान कोस्टल वाटर के अनुशासित और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने वही क्लॉज 8 के अंतर्गत एक नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजी प्लान तैयार किया जाएगा जो शिपिंग सेक्टर के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप साबित होगा। सभापति महोदय, इस विधेयक में माध्यम से 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के पार्ट 14 को समाप्त किया जाएगा और अब सभी प्रकार के जहाज चाहे वो मोटराइज हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हो या सेलिंग वेसल हो इस कानून के दायरे में आएंगे। बिल में सर्विस जैसे रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी कॉस्टिंग ट्रेडर के शामिल किया जाए जो मैरीटाइम इकोनॉमी को विविधता प्रदान करेगा। ये कानून इस बात की भी व्यवस्था करता है कि अगर जहाज पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हमारे लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रही है। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।
बिल में पेनल्टी जो आधुनिक बनाया गया है, बिना लाइसेंस संचालन पर अब 15 लाख तक जुर्माना होगा। यानी कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए, उसी के माध्यम से ये कानून बनाया गया है। यानी रुपए 15 लाख तक जुर्माना या मुनाफे का 4 गुना लगाया जा सकता है। यानी एक स्ट्रांग होना चाहिए, बाबा गलती मैंने की तो हमें भुगतना ही है, चाहे कोई भी हो। तो उसी प्रकार से डायरेक्टर जनरल ऑफ अधिकार दिया गया है। ये आवश्यकता पड़ने पर जहाजों को रोक भी सकता है। ये केवल एक नियम नहीं बल्कि मैरीटाइम सेफ्टी और इसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये विधेयक जैसे समय में आया है जब भारत में शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो गई है। 2014 के बाद इनलैंड वाटर में 320% की वृद्धि हुई है। इससे कम लागत पर माल की आवाजाही सुनिश्चित हुई है। सभापति महोदय, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप में 25,000 करोड़ का कोष व्यवस्था की गई है, जिसमें सरकार 49% की भागीदारी करेगी और बाकी योगदान मेजर पोर्ट, PSES, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंटाइटल्स को दिया जाएगा। यानी किसी को ना किसी को तो हमें मदद करना ही है, यानी हमारा भी पार्ट होगा और बाकी के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। शिपिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी 2 के तहत 18,090 करोड़ की राशि स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय CPR को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सक्षम बनाना है। इसके साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल 2025 तक संचालन शुरू करेंगे, जो हमारे टूरिज्म बेस्ड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रतीक होगा। सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि 150 मैरीटाइम प्रोजेक्ट को 6 सितंबर 2025 तक पूरा किया जाए। ये केवल समयबद्धता बल्कि परिणाम केंद्रित शासन का उदाहरण है। कोस्टल शिपिंग विधेयक भारत की समृद्धि अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने की क्षमता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि भारत के लॉजिस्टिक लागत को कम करने की मदद कर सकता है। तो वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP 13 या 14% से सब्दी वैश्विक औसत 8.9 के बीच है। सभापति महोदय, कोस्टल शिपिंग विशेष रूप से कोयला, इस्पात और सीमेंट जैसे भारी मालों के लिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में एक कम लागत वाला और प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। ये विधेयक सड़क और रेल परिवहन से कोस्टल शिपिंग की और एक मॉडल शिप की प्रोत्साहन करता है, जिससे परिवहन लागत में आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। लेकिन इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिनमें और बेहतर किया जा सकता है। मंत्री महोदय, जिसके माध्यम से सबसे पहले हमें उन देशों से सीखना है आवश्यकता है जिन्होंने कोस्टल शिपिंग को अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जैसे कि अमेरिका के जॉन्स के तरह भारत में इंडियन फ्लैग शिप्स और इंडियन स्क्रू की अनिवार्यता सुनिश्चित करे। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से हम सीख सकते हैं कि कोस्टल शिपिंग को रोड और रेल ट्रांसपोर्ट में कैसा जोड़ा जाए। ये जोड़ने से हमारा और व्यापार वृद्धिगत और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ये बिल सुनिश्चित करता है कि कोस्टल शिपिंग पर भारतीय नाविकों को की अनिवार्य नियुक्ति हो। जब हम आत्म भारत की बात करते हैं तब मैरीटाइम जॉब्स को सृजन हमारी प्राथमिकता से होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन जहाजों पर भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक शिपिंग ओनर और ऑपरेटर्स को फाइनेंशियली बर्डन उठाना पड़ता है, खासकर टैक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट में रूप में। यदि भारत को लॉन्ग टर्म कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम बनाना है तो इन चैलेंजेस को दूर करना होगा। टैक्स रेजिम को सिंप्लीफाई बनाना और वेसल फाइनेंसिंग को सस्ता या सुगम किया जाए। चौथा, भारत की कोस्टल शिपिंग का मॉडल शेयर 6.4% की, जबकि चीन, जापान और यूरोपीय देशों में 30% से अधिक है। इसका सीधा असर सड़कों के ट्रैफिक प्रदूषण, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ता है। हमें कार्गो मूवमेंट को इंडियन फ्लैग वेसल पर अनिवार्य करना चाहिए ताकि भारतीय शिपिंग को मजबूती मिले और विदेशी निर्भरता घटे। भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी GDP 13 से 14%, जबकि ग्लोबल में खाली सुझाव देता हूं, मेरे 3 सुझाव है खाली। बंदरों का आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण,
करना चाहिए। भारत के बंदरों का आधुनिकरण तकनीक से लेस करना और प्रक्रिया को डिजिटल बनाना महत्वपूर्ण है। इससे दक्षता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और लागत कम होगी। तटीय नौवहन को बढ़ा देना, तटीय नौवहन को बढ़ा देने के लिए नीतियां बनाना आवश्यक है। इससे सड़क और रेल परिवहन पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण और यातायात की भीड़ कम हो जाएगी। अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, नदी और नहरों से अंतर के जल मार्गों का विकास करना माल परिवहन के लिए एक किफायती और परिवहन के अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए बंदरों को जोड़ने वाली सड़कों और रेल लाइनों को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना आवश्यक है, जिससे माल की आवाजाही आसाम से तेज हो जाएगी। कौशल्य विकास को बढ़ाना देना चाहिए। इसी के साथ मैंने मुझे बोलने को कहा, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुमारी आर सुधा जी। Thank you, Speaker sir, for the opportunity. I represent a core stretch of a famed historically significant Coromandel coast of the Great Cholas. My Mayiladuthurai Parliament constituency alone has a 50-kilometer of core coast, which once used to be among the top fishing destination. Even now, besides fishing community, Mayiladuthurai has such historically renowned ports like Tarangambadi, Pumbugar, Paliyar of Sirgari. Places like Karaikal and Kodikarai and Nagapatna are not far away. So I represent a critical stretch of our coast, which has been neglected for long and for which this government does not have any plan to develop. First of all, here are the salient features of bill under debate. The Coastal Shipping Bill 2024 was introduced in the Lok Sabha on December 2nd December 2024. Territorial waters extend up to 12 nautical miles from the coast, about 22 kilometers. Adjoining maritime zones extend up to 200 nautical miles, about 370 kilometers. The bill seeks to regulate all types of vessels, including ships, boats, sailing vessels, and mobile offshore drilling units, regardless of them being self-propelled or not. The bill expands this definition to include provision of services including exploration, research, and any other commercial activities except fishing. The Coastal and Inland Shipping Strategy Plan. The bill requires the central government to prepare a national coastal inland shipping strategy plan within 2 years of the commencement of this act. My sincere concerns stem from only a couple of provisions, which are: number one, bringing all the vessels, including the ship, boats, sailing vessels, under the ambit of this law. Secondly, mobile offshore drilling units under the ambit of this law. Sir, the bill lays down too much of importance of power and regulatory jurisdiction of the union government and less importance of the people who own, manage and run the vessels for general welfare and development of the nation. I request this August House ask itself as to what has been done to help develop ports like Tarangambadi, Pumbugar and Paliyar and Sirgari, unless berthing capacity, cargo handling capacity and repairing facilities are created and improved in these ports. This bill will mean a little or nothing to my constituency, in particularly the Tamil Nadu in general. I would like to know that what budgetary allocation and policy proposals are there for my constituency. The next important issue is the offshore drilling, which are notoriously high from my Mayiladuthurai constituency right up front to the ecological fragile Gulf of Mannar. Even in this latest report, the union government had admitted that it had either granted or was considering offshore drilling permission for private companies as well as public sector undertaking. Such joint destruction of my Coromandel coastal stretch along my constituency and beyond is impermissible for social
political, economical and environmental reasons. I seek to know if the key stockholders who are the fisherman community has been consulted before this provision are drafted and placed before the August House for the debate. Speaker Madam, this government has three enemies. One is farmers, another one is weavers, another is fishermen. It has done nothing for these three communities which have given India its identity in the commitment of the nations. Of course, your other bias against women, underprivileged communities and social justice will make the issue only worse. I want this House to first debate what is the amendment proposed to do for fishermen. Whether the fisherman community has been consulted before it is drafted and then cleared for the further proceedings. Madam, in my Mailaduthurai constituency, in Tamil Nadu, there are 14 districts or coastal districts. 1076 kilometers are coastal line. கடல் பகுதிகள் அந்த கடல் பகுதிகளில் 608 மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்கள் அமைந்துள்ளது. இதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி, பூம்புகார் என்ற 2 சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டுமே 46,636 மீனவ குடும்பங்கள் இருக்கின்றது. அதில் குறைந்தபட்சமாக 15,000க்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் தன் வாழ்வாதாரமாக மீன்பிடி தொழிலை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு மீன்பிடி தொழிலை மட்டும் நேர்மையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீனவ மக்களின் நிலைமை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், கடல் பகுதிக்கு சென்று மீன் பிடிக்கும் பொழுது இலங்கை கடற்படையால் மிகவும் மோசமாக துன்புறுத்தப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் படகுகள் பிடிக்கப்படுகிறது, அவர்களை அரசு செய்கிறார்கள். சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்கள் எல்லாம் இலங்கை கடற்படையினர் இந்திய மீனவர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்திய அரசாங்கமும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் பாதிக்கின்றார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு பார்க்காமல், அவர்கள் இந்திய மீனவர்களாக பார்க்காமல் தமிழக மீனவர்கள் என்று பார்த்து அவர்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய மறுக்கிறார்கள். இது ஒரு மிக மோசமான உதாரணம். ஏனென்றால் ஏற்கனவே இந்த அவையில், மாண்புமிகு அவையில், நான் போன மாதத்தில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன். அந்த கேள்வி கிடைத்த பதில் என்னவென்றால், இந்தியாவில் கடற்பகுதியை சுற்றி இருக்கின்ற தேசங்களில் இந்திய மீனவர்கள் எங்கெல்லாம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கார்கள் என்று கேள்வி கேட்டதற்கு, பங்களாதேஷ் மற்றும் பாகிஸ்தான், துபாய், ஸ்ரீலங்கா போன்ற தேசங்கள் எல்லாம் இந்திய மீனவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு, அவர்கள் படகுகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு, அவர்கள் வாழ்வாதாரம் மிக மோசமாக இன்றைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்ற சூழல் இருக்கின்றது. இந்திய அரசாங்கத்தின் கடமை மீனவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும். இன்றைக்கு போர்ட் என்ற ஷிப்பிங் பில் எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு இந்த மசோதாக்கெல்லாம் இன்று நாம் அவையில் அறிமுகம் செய்கின்றோம். ஆனால் ஃபிஷர்மேன் இல்லை என்றால், மீனவ மக்கள் இல்லை என்றால், கடல் பகுதி என்ற ஒன்று இருப்பதற்கான அர்த்தமே இல்லாமல் போகும். கடல் பகுதி என்ற அர்த்தமே இல்லை என்றால் அங்க இருக்கின்ற வணிகம் நடக்காது, அங்க போர்ட் இருக்காது, போர்ட் ட்ரஸ்ட் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் மீனவர்களை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இந்த அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தால் வருங்காலத்தில் மீனவ சமுதாயமே அழிந்து போகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும். இந்தியாவில் 3 கோடிக்கு மேலாக மீனவ மக்கள் தொகை இருக்கின்றது. அதற்கு 20 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் மீன்பிடி தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் இந்த கூட்ஸ் அண்ட் கேரேஜ், போர்ட் அண்ட் ஷிப்பிங் பில் போன்ற பல்வேறு மசோதாக்களை இந்த நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதற்காக கொண்டு வருகின்றோம். ஆனால் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் அவர்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக நம்ம சிறு துருமை கூட மத்திய அரசாங்கம் எடுத்து வைக்கவில்லை என்பதுதான் மிக மோசமான சூழலை இன்றைக்கு பார்த்தால், நம்ம டோல்கேட்டில் அதிகமான வரியை கொடுத்து, டோல்கேட் என்ட்ரி ஃபீ கொடுத்து இன்றைக்கு மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 75 ரூபாய் இருந்த டோல்கேட் ஃபீ இன்றைக்கு 150 ரூபாயை உயர்த்தி மிக மோசமான ஒரு சூழலுக்கு இன்றைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. காலையில் எழுகின்ற ஒரு இந்தியன் இரவு தூங்கும் வரை இந்த தேசத்திற்கு வரி 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 என்று கட்டிக்கொண்டு தன் வாழ்வாதாரத்தை ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மத்திய அரசாங்கம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தா, அது ஒரு சாதாரண எளிய மக்களின் வயிற்றை கிழித்து அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்தையும் அவர்கள் பொருளாதாரத்தையும் எடுத்து அவர் ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளுகின்ற ஒரு தேசமாக இன்றைக்கு இந்தியா சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக ஏடிஎம் நிலையங்களுக்கு சென்று நம் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால்
ஒரு முறை 2 முறை எடுத்தால் ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம். ஆனால் 5 முறை எடுத்தால் 23 ரூபாய் எடுப்பார்கள், ஃபைன் எடுப்பார்கள் என்றால் அதுக்கு பெனால்டி போடுவார்கள் என்றால் 23 ரூபாய் என்பது ஒரு சக மனிதன், ஒரு சாதாரண எளிய மனிதனின் ஒரு நாள் உணவுக்கான பணம் என்பது 23 ரூபாய். அதை நீங்கள் வரியாகவும் ஃபைனாகவும் பிடித்துக் கொள்வதாக சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் பேக்கெட்ல இந்திய மக்களின் பேக்கெட்டில் இருக்கின்ற பணத்தை ஒட்டுமொத்தமாக சூறையாடி கொண்டு கொள்ளையடித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற தேசமாக இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கிறது. அன்றைக்கு வ.உ.சி. சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து சுதேச கப்பலை இயக்கினார். எதற்காக என்றால் பிரிட்டிஷ்காரிடம் எதிர்த்து போட இந்தியாவிற்காக ஒரு பெருமையாகவும் இந்தியன் ஒரு வணிகம் செய்ய முடியும், சுயமரியாதையாக தன்மானத்தோடும் பிரிட்டிஷ்காரரை எதிர்த்து சேவை செய்ய முடியும், பிரிட்டிஷ்காரை எதிர்த்து இந்திய தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் சுதேச கப்பலை இயக்கினார். ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே இன்றைக்கு மீண்டும் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது மிகப்பெரிய அவமானம். இது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். வரி 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 என்று தினந்தோறும் மக்களின் பேக்கெட்டில் கொள்ளடிக்கின்ற இந்த அநியாயமான பிடித்த இந்த சேவையை தயவு செய்து நிறுத்துமாறும், இந்த வேலையை நிறுத்துமாறும் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி இன்றைக்கு இந்த பில்லில் நிறைய பல விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கின்றது. 3 கோடி மீனவக மக்களிடம் இந்த பில்லை குறித்து ஒரு கேள்வி கூட, ஒரு கருத்தை கூட நீங்கள் பெறாமல் இந்த பில்லை நிறைவேற்றுவதற்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது மிகப்பெரிய அநியாயமானது. குறிப்பாக சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் என்கின்ற all the Indian officers and engineers who got their competency licensing from foreign countries which are white flag nations. Madam, all the Indian officers and engineers who got their competency license from foreign countries which are white flag nations, that is England, Singapore, New Zealand, etc. As per IMO, International Maritime Organization, should be given an opportunity to work on Indian coastal ships. It has been observed that there is shortage of highly trained officers and engineers to work on ship like coastal tankers. So Indian nationals who have taken competency certificates from white flag nations can be employed on these vessels. Presently rules and regulations are in the places, but it has been reported that lot of difficulties are being faced by owners and authorities recruiting agency in getting the certificate of equivalence. Madam, 1 minute I complete. In Marine Department, Mercantile Marine Department, so amendments need to be done so that these Indian officers and engineers transition from working in foreign shipping to coastal shipping is easy. Coastal shipping will get a lot of benefits from the experience and highly skilling training of these and these safe years. Class 3 member, madam, I conclude within 1 second. I conclude. Class 3, this class prohibits the engagement of vessel other than Indian vessel. Thank you very much, Honorable Speaker, Madam, for giving me an opportunity to speak on Coastal Shipping Bill. I have risen to speak to support Coastal Shipping Bill 2024. Indian shipping industry is crucial part of our economy, involving both public and private players, and encompasses of port, shipping and waterways. India's location is crucial for global shipping routes. India has 12 major ports and 205 minor ports handling large volumes of cargo traffic. In 2024, they handled 897 million tons of cargo, showing an increase of 4.5% from previous year. Madam, India's maritime industry dates back to 13th century and 16th century. India is one of the world's top 5 shipping recycling countries and holds as large as 30% share in the world market. India ranks 18th in the world shipping tonnage. 16th, India is the 16th largest maritime country in the world and has a merchant fleet of 1,491 sea-going ships with a total capacity of 13 million GT. अगर ports होंगे तो ships होंगे और ships होंगे तो shipping industry होगी. The Coastal Shipping Bill 2024 was approved by the Union Cabinet, which aims to simplify and modernize regulation in Indian
coastal shipping sector and to enable the statutory imposition of specific licensing conditions engaged in coastal trade, thereby promoting the regulation of such activities and boosting the domestic coastal shipping economy. The bill will also benefit ship owners and shipyards in India, non-vessel operating common carriers and cargo owners besides seafarers. It will repeal and replace certain provisions of the Merchant Shipping Act 1958 and aims to enhance the share of coastal shipping from the current 6.5% to 7.5% by 2030 and further to 12% by 2047. The bill is set to benefit ship owners, shipyards in India, in 5 states: Gujarat, Maharashtra, Kerala, Andhra Pradesh and Odisha. These clusters will not only generate employment opportunities but also bolster India's position as a global hub for ship manufacturing and maintenance. The bill also seeks to integrate the coastal maritime transport with inland waterways. Sir, Madam, Congress never invented and invested in ports and shipping. Madam, with your kind permission, I may recall that on June 1924, the Modi government approved plans to invest over 800 billion rupees in the construction of Vadhavan Port located in North Mumbai, which is going to be one of the top ports in the world in future. Madam, it is also heard that to boost the shipping industry of India, the government is planning to establish a new shipping company to expand its fleet by at least 10,000 ships in the next decade. ये है मोदी का विजन और मिशन. On July 26, 24, Modi government announced new shipping financial assistance policy, providing financial aid of rupees 337 crore to enhance India's competitiveness against foreign shipyards. Since the inception of the policy, 313 vessels orders worth rupees 10,000 crore has been secured. Our Gujarat has also a vast coastline of 1,600 kilometers, which has 3 ports, Kanla, Mudra and Hazira, which has great potential if developed to generate employment and fisheries business in the state. Hazira near Surat is the less developed, and I demand that some fund may be provided for development of Hazira fund. Apart from that, seashore is near to Surat, Dimmas and Rafari and Dandi. These seashore if developed fully and if provided fund, then they have great potential for the fishermen of the city. The proposed bill is a key component of India's comprehensive strategy to accelerate the growth of its maritime sector. The country aims to double its container handling capacity within the next 5 years, potentially creating an estimated 20 lakh jobs. By fostering a more favorable regulatory environment, the bill is expected to play a pivotal role in achieving these ambitious goals. Additionally, the government plans to establish shipbuilding, repair clusters in 5 states. These clusters will help to boost development. This bill is unique in the sense of licensing reforms, integration with inland waterways. It will also boost comprehensive database development for the shipment and, most importantly, boost seafarers and shipbuilding in the country. To conclude, the bill represents a transformative step towards revitalizing India's maritime industry by simplifying processes, reducing bureaucratic hurdles, and fostering a more business-friendly environment by introducing standardized and expedient clearance. The bill mechanism and simplifying regulation, it aims to make this sector more attractive to operators and investors. It will attract FDI and foreign investment in the future. The removal of licensing reforms will streamline coastal shipping operations, enhancing efficiency and cost effectiveness, while driving growth and investment in the industry. Ultimately, this reform will boost the competitiveness
of India's coastal shipping sector, improving its global standing and creating new opportunities for innovation and expansion. In all, I support the shipping bill, which will carry the India towards developed Viksit Bharat to 2047 vision of Narendra Modi. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, madam. Thank you for allowing me to discuss on the Coastal Shipping Bill 2024, madam. I would like to highlight its transformative potential for India's maritime sector by emphasizing its key positives, madam. Madam, Clause 4 of this bill simplifies regulatory process, madam, by allowing the Director General to grant license for costing trade, madam. Madam, it encourages more domestic operators to engage in coastal shipping and boosting domestic shipping activities, madam. Madam, Clause 8 of 2B integrates coastal shipping with inland waterways, madam. It creates a seamless multimodal transport network, madam. This enhances connectivity and reduces transportation costs, benefiting both domestic and international trade, madam. In Clause 8 of 2F promotes the use of Indian-built vessels supporting domestic shipping and repair industries, madam. This clause of 8.2F fostering self-reliance in maritime infrastructure and it creates jobs, madam. In Clause 9 of this bill, establish a national database for coastal shipping to ensure transparency and aid in information sharing, madam. This enhancing transparency and facilitating better decision making, madam. These provisions collectively aim to modernize India's maritime sector, promote domestic participation, and enhance national security through the robust coastal fleet, madam. Madam, I would like to seek clarification from the Honorable Minister for the following questions, madam. On Clause 3, how will the statutory imposition of different licenses conditions on foreign vessels affect international trade and foreign investment, madam? Especially considering this clause, which prohibits foreign vessels from engaging in coasting trade without a licenses, madam. Madam, on Clause 15 and 25, will the stringent penalties introduced disproportionately affect smaller business persons, madam? And if so, what measures can be taken to mitigate this impact, madam? On Clause 37, how will the government ensure consistent enforcement of the law under this clause, which allows for exemptions and delegation of power to prevent favorism or uneven application of laws, madam? On Clause 8.2b, what steps will be taken to ensure the seamless integration of coastal shipping with inland waterways as proposed in this clause to maximize its benefits for domestic trade and in especially states like Andhra Pradesh, which has second longest coastal line, and we took major strides to developing new ports and harbors, madam. On the environmental compliance, how will the integration of environmental standards under the bill be enforced, and what specific measures will be taken to ensure compliance, madam? Thank you, madam. I support this bill, madam. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदया, मैं इस सदन में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक के शीर्षक में शिपिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे शब्दों के माध्यम से एक आधुनिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का आभास दिया गया है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को गहराई से पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि विधेयक दरअसल सरकार की उसी केंद्रीकृत नीति और निगरानी परक शासन प्रणाली का विस्तार है जो लगातार विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार या आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं खड़ा हूं। मेरा विरोध इस दृष्टिकोण से है जिसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, क्षेत्रीय विविधता
और व्यवहारिक जरूरतों की उपेक्षा की गई है। सरकार यह दावा करती है कि यह विधेयक देश में नौवहन क्षेत्र में को गति देगा, परंतु तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। कारण साफ है, नीतियों की अस्पष्टता, प्रक्रियाओं की जटिलता और सबसे अहम भारतीय नागरिकों और श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने की गारंटी नहीं। यह विधेयक रोजगार निर्माण की बात तो करता है, लेकिन इसे कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय नागरिकताओं को भी प्राथमिकता मिलेगी। न कोई न्यूनतम प्रतिशत तय किया गया है। अगर सरकार वाकई इस क्षेत्र में को रोजगार उत्पन्न करने वाला इंजन बनाना चाहती है तो कम से कम 50% नौकरियां भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे नौजवान दुनिया के अन्य देशों में नौ परिवहन में काम कर रहे हैं। लोग लगातार खबरें आती हैं कि विदेशों में जो हाईजैक कर लिए जाते हैं समुद्री जो जहाज और बरसों तक उसमें फंसे रहते हैं। इस विधेयक में 2 वर्षों के भीतर एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात की गई है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों, मछुआरों और विशेषकर क्षेत्रीय विशेषज्ञों की कोई भागीदारी नहीं दिखती है। यह भारत की व्यापक परिवहन और व्यापारिक आकांक्षाओं से स्पष्ट रूप से कटा हुआ प्रतीत होता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ढांचे में आंतरिक जलमार्गों को एकीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता के संदर्भ में कोई यहाँ चर्चा नहीं है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक लागत को कम करने की बात करती है, लेकिन यह विधेयक नदी परिवहन की क्रांतिकारी संभावनाओं को पूरी तरह से बेदखल कर देती है। खासतौर से बिहार जैसे राज्यों में जिन्हें प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। बिहार में 7 प्रमुख नदियाँ गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, कर्नासा और पुनपुन नदी बहती। यह प्राकृतिक राजमार्ग अभी भी भारी रूप से उपेक्षित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से कई जैसे NW1, NW37, NW58 मुख्य रूप से बिहार होकर गुजरते हैं, जिससे नेपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देने की बात कही गई है। और समुद्री मार्ग से नेपाल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है भारत का, वो इन्हीं नदियों के माध्यम से संभव हो पाएगा। इसलिए इन नदियों पर भी कोई बिना जोड़े हुए हम नेपाल को समुद्री व्यापार का रास्ता दे नहीं पाएंगे। गंगा नदी विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर जाती है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय जलमार्ग परियोजना में से एक बिहार के व्यापार को बदलने की असीम संभावना रखती है। उपलब्ध आंकड़े की दिशा में स्पष्ट रूप से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई की लागत 1 रुपये 30 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल से 2 रुपये 41 पैसे और नदी के जरिए 3 रुपये 62 पैसे खर्च आ रहा है। वहीं जो साहिबगंज टर्मिनल पर लागत 4.5 रुपये प्रति टन है। यह आंकड़े मामूली नहीं है, यह आर्थिक क्रांति के वाहक हैं। साथ ही IWT न केवल 4 गुना कम ईंधन कम करता है, बल्कि कम प्रदूषण, न्यूनतम शोर और लगभग 0 दुर्घटना लागत के साथ माल परिवहन का सबसे टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत तरीका है। बिहार जैसे राज्यों में जहां रोजगार और औद्योगिक संपर्क दोनों की नितांत आवश्यकता है, IWT आर्थिक दक्षता और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को प्रदान करता है। हमने इसके सफल उदाहरण भी देखे हैं, जहां गंगा के जरिए विदेशों से उर्वरक पटना फतुहा तक, सीमेंट पटना तक और गाड़ियों और कलपुर्जों की सप्लाई वाराणसी तक देखने को मिला। हाल में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के अनुसार गंडक और कोसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नेपाल को समुद्र तक पहुंच मिलेगी और बिहार को क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। लेकिन परियोजनाओं के लिए गहरी जलधाराएं, उच्च क्षमता वाले बार्ज, सीमा पार लॉजिस्टिक समन्वय की आवश्यकता है, जो कि एक स्पष्ट, समर्थक और दूरदर्शी कानूनी ढांचे के बिना संभव नहीं। यह विधेयक दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करता, सिर्फ समुद्री वाहकों और विदेशी शिपिंग कंपनियों तक सीमित रहता है। बिहार और पूर्वी भारत के लाखों उत्पादकों, व्यापारियों, किसानों को पूरी तरह अनदेखा करता है, जिनके लिए सस्ता और विश्वसनीय व्यापार संपर्क जीवन रेखा बन सकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बिहार की यही नदियाँ जो हर साल मानसून में बाढ़ बनकर तबाही लाती हैं, यदि समझदारी से प्रबंधित और नेविगेट किया जाए तो समृद्धि की रीढ़ बन सकती है। गंगा, कोसी या सोन के डरने के बजाय हमें उनकी ताकत को आर्थिक धमनियों में बदलने की आवश्यकता है।
हर साल तटबंध बनाना और बाढ़ राहत देना कोई समाधान नहीं, जबकि नदियों की खुदाई, ड्रेजिंग, टर्मिनल निर्माण, फ्लड प्लेन्स, इंडस्ट्रियल हब, बाढ़ नेटवर्क में निवेश करना एक दूरदर्शी रणनीति है। नियंत्रित नौ परिवहन के लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसमें खुदाई, तट मजबूती, ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है, और यह साल भर रोजगार देता है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों को आंतरिक लॉजिस्टिक गलियारों में बदलना उन्हें आपदा क्षेत्र से विकास क्षेत्र में बदल सकता है। हर टन माल जो नदी से ढोया जा सकता है वह केवल पैसा और ऊर्जा नहीं बचाता, यह शांति, स्थिरता, गरिमा की बुनियाद भी बनाता है। उन क्षेत्रों में से जो अब तक सिर्फ विस्थापन और पीड़ा के प्रतीक रहे, यह बदलाव है जिसके बिहार की जनता हकदार है। और माल परिवहन पर कोई भी गंभीर कानून, चाहे समुद्र के जरिए या नदी के, इतनी हिम्मत और कल्पना होनी चाहिए कि इस परिवर्तन को संभव बना सके। यही वह कानून जिसकी भारत को जरूरत है, न कि खोखला विधेयक जो शिपिंग कंपनियों को सेवा करता है लेकिन भारत के जलपोत निर्माताओं को भूल जाता है। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री टी उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, I rise today in strong support of Coastal Shipping Bill 2024, a crucial step towards unlocking India's immense maritime potential. Despite having a 7,500 kilometers coastal line and key access to global shipping routes, coastal shipping accounts only 7% of India's total freight movement. This is a missed opportunity, especially when coastal shipping is 60 to 70% cheaper than the road transport and 30 to 40% cheaper than the rail transport. Strengthening this sector can help reduce India's high logistic cost of 14 to 15% of GDP compared to the global average of 8 to 10%. The Coastal Shipping Bill 2024 stands as a cornerstone reform designed to regulate, modernize, and revitalize India's coastal shipping industry. One of its most significant provisions is the expansion of the definition of coasting trade. Beyond just transports of goods and passengers, it now includes vital services such as offshore exploration, research, and commercial activities. This is a game changer because nearly 50% of Indian flagged vessels operate in the offshore sector. By bringing them under a structured regulatory framework, this bill will attract investment, enhance operational safety, and strengthen India's position in offshore oil, gas, and maritime services. Additionally, this bill eliminates licensing requirements of Indian-owned vessels, removing bureaucratic hurdles and making operations more seamless. This is an essential reform because today, only 1.2% of global shipping tonnage is registered under the Indian vessels, far below our economic potential. Prioritizing Indian-built and Indian crewed vessels will create thousands of jobs for our Indian seafarers and reduce our reliance on the foreign flagships. Sir, this reform is not just economic. It is about protecting our people. India is the third largest provider of seafarers globally, contributing nearly 10% of maritime workforce. At most, Indian seafarers are employed on foreign-owned vessels, leaving them vulnerable to exploitation. Disturbingly, India recorded the highest number of abandoned seafarers in 2024. To safeguard our maritime workforce and ensure stable employment, this bill can incorporate provisions to mandate minimum quota of Indian seafarers and Indian flagged vessels. Honorable Speaker, a key feature of this bill is establishment of National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan, aimed at integrating our 14,500 kilometers of inland waterways with coastal shipping. This integration is essential to make maritime transport a cost-effective and efficient mode for goods and passengers. However, this vision cannot be realized without better maintained waterways. Sir, in the past 5 years, not even a single capital dredging project has been undertaken by the Inland Waterways Authority of India. Only maintenance dredging has been carried out. If we truly want to unlock the potential of our waterways, we must invest in large-scale planned capital dredging to ensure navigational depth and modernize India's dredging fleet with advanced technology. This bill lays the foundation for a coastal fleet which is owned and operated by Indian citizens, but
truly realize this vision, we must build a fleet that is built, owned, and operated by Indians. Strengthening our domestic shipbuilding industry is critical. The government has already taken commendable steps such as the revamped shipbuilding financial assistance policy, the Maritime Development Fund of 25,000 crore, the establishment of shipbuilding clusters in 5 coastal states, including Andhra Pradesh. However, to maximize this impact of these initiatives, they must be expanded. My constituency, Kakinada, is the ideal location to drive growth of this sector. With its natural deepwater port, strategic location, and well-developed industrial infrastructure, Kakinada is primed to becoming a leading shipbuilding hub. If we channel the right investments and policy support, Kakinada can be at the heart of the India shipbuilding renaissance. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the NDA government is charting a new course for India's maritime future. Through bold reforms and strategic initiatives, we are not just boosting coastal shipping, but transforming India into a self-reliant maritime powerhouse, which is built on Indian ships driven by Indian talent and sailing towards global leadership. I conclude by extending my full support to the Coastal Shipping Bill 2024. Thank you, Madam. Jai Hind. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी. सभापति महोदय, ये बिल अपना पर्पस को शुरू में ही रखता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग, प्रमोट कोस्टिंग ट्रेड एंड इनकरेज डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन therein, to ensure that India is active to a coastal fleet owned and operated by the citizens of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto. मैं इस बिल के विरोध में इसलिए खड़ा हूँ कि एक शब्द शुरू में चला था पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन इसको हमने कुछ ही दिन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हुए देखा था, और अब ये 4P में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इस बिल से. वो है पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स. इस बिल के जरिए ये कोशिश की गई है और निजी मुनाफे को देश की सुरक्षा और देश हित में बताने की कोशिश की गई है. अभी वेणुगोपाल जी ने, माननीय सदस्य ने रखा था कि हल्दिया से लेकर के केरल के पोर्ट तक धीरे धीरे एक ही व्यक्ति का मोनोपोली बन रहा है. इस बिल में कहीं से भी इस मोनोपोली को चेक करने का, कंट्रोल करने का कोई प्रोविजन नहीं है. न तो भाड़ा नियंत्रण के मामले में, न ही मान लीजिए कि ड्रग्स बड़े पैमाने पर प्राइवेट पोर्ट से, प्राइवेट वेसल से आ जा रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के मामले में, इसी तरह से इलीगल अन्य चीज़ों के मामले में कोई प्रोविज़न इसके भीतर दिखाई नहीं देता है. मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की गई है और ये निजी मुनाफे को ही नेशनल सिक्योरिटी बताने की कोशिश कर रहा है. तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे मध्यकाल में राजाओं ने अपने व्यापार के लिए भिन्न भिन्न वेसल चला रखे थे, प्राइवेट ढंग से वो यूज करते थे, उसी तरह से इस पार्लियामेंट को अपना नेशनल ग्रिप कमजोर करते हुए प्राइवेट के हाथ में हवाले कर देने के लिए बिल लाया गया है. और सबसे दुखद बात यह है कि इसको कहा जा रहा है कि ये आज़ादी के 75वें साल में ये एक्ट हम स्वीकार कर रहे हैं. ये लगता है कि राष्ट्र हित और राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं इस बिल के जरिए, और इसीलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, इसके खिलाफ मैं बोलता हूं. धन्यवाद माननीय सदस्य. माननीय सदस्य श्री के नबस्कानी जी. நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. துறைமுகங்கள் சம்பந்தமான மசோதாவில் பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய தமிழர்கள்
1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ராஜராஜ சோழன் வியட்நாம், கம்போடியா, லாவோஸ் என்று சைனா வரை கப்பல்களை வைத்து துறைமுகம் மூலமாக ஆட்சி செய்தவர் கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயரும் உண்டு. அதுபோல வ.உ. சிதம்பரனார் சொந்தமாக கப்பலை வாங்கி ஆங்கிலேயரை மிரள வைத்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர். இப்படி துறைமுக மேலாண்மைக்கு தமிழர்கள் பெயர் பெற்றவர்கள், சிறந்து விளங்கியவர்கள். அந்த காலத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட துறைமுகங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வந்தது. அதன் மூலமாக வணிகம் செய்ய முடிந்தது. இன்றைக்கு 2-3 துறைமுகங்களை தவிர மற்ற அனைத்து துறைமுகங்களும் செயல்பாட்டிலே இல்லாமல் இருக்கின்றது. இயற்கையாக அமைந்த துறைமுகங்கள் எல்லாம் மூடிவிட்டு இன்றைக்கு செயற்கையாக துறைமுகங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. கிட்டத்தட்ட 5000 கோடி ரூபாய் குஜராத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி, மகாராஷ்டிராவுக்கு அருகிலே நிதி ஒதுக்கி துறைமுகத்தை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எங்களுடைய துறைமுகம் எல்லாம் மூடப்பட்டு கிடக்கின்றது. நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் குஜராத்துக்கு அமைச்சரா, இந்தியாவுக்கு அமைச்சரா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பாக செயல்பட்ட கடலூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் கடற்கரை ஏரியா முழுவதும் சீர்காழி என்று தொண்டி வரைக்கும் இருந்த அந்த காலத்தில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை எல்லாம் மேம்படுத்த வேண்டும். அப்படி மேம்படுத்துகின்ற போது பல நாடுகளோடு வணிக ரீதியான தொடர்பு, கலாச்சார தொடர்பு ஏற்படும். அப்படி அந்த காலத்தில் சிறப்பாக முறையில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இதில் வேதனை என்று சொன்னால், அந்த துறைமுகங்களை எல்லாம் தனியார் மயமாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த அரசு, அத்தனையும் அதானிக்கு தாரை வார்த்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. அதெல்லாம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். கடல்களை பாதுகாக்க வேண்டும். கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள், ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் தொடர்ந்து சிறைபிடிக்கப்படுவது, அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது தொடர்ந்து இந்த அவையிலே தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். பலமுறை ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து இதை சொல்லியிருக்கின்றோம். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கும் மாண்புமிகு பிரதமருக்கும் இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது, அந்த படகுகளை எல்லாம் இலங்கை அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கிறது, ஏலத்தில் விடுகின்றது. அவர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் எங்களுடைய தமிழக அரசு சார்பில் அங்கே இலங்கைகளை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு படகுகளுக்கும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் 6 லட்சம் ரூபாய் உதவி கொடுத்தார்கள். இப்போது அதை உயர்த்தி 8 லட்சம் ரூபாயாக அந்த நிவாரணம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் 1 ரூபாய் கூட அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்க முடியவில்லை. அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை இந்த அரசு தடுக்கவில்லை. அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இலங்கை அரசு அதிகமான அபகாரத்தை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாயை அந்த படகுகளுக்கும் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பிணையிலே வருவதற்கும் அந்த அபகாரத்தை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இலங்கை அரசை கட்டுப்படுத்த முடியாத அரசா நம்முடைய இந்திய அரசு இருக்கு என்ற ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்தில் மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் மூலமாக வைக்கின்றேன். இலங்கை அரசு பாதிக்கப்பட்ட போது, பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது மனிதாபிமான அடிப்பிலே இந்தியா மிகப்பெரிய உதவி செய்தது. அதையெல்லாம் வரவேற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மீனவர்கள் அங்கே பாதுகாப்பாக மீன்பிடிக்கக்கூடிய உரிமையை இந்த அரசு பெற்றுத் தர வேணாமா? கச்சத்தீவு பகுதியிலே தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதை, பாதுகாப்பாக மீன்பிடிப்பதை, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். மீனவர்கள் தான் இந்த கடலுக்கு பாதுகாப்பு. அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் இந்த துறைமுகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய இந்த மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும். நீங்கள் கடல் போக்குவரத்தை சீர்படுத்த முடியும். கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள். குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழக மீனவர்கள், குஜராத் மீனவர்கள் பாகிஸ்தானுடைய கடற்படையால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய இந்த அரசு, தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படும் பொழுது அத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழக மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இரு நாட்டு மீனவர்களுடைய அமைப்பு பிரதிநிதிகளுடைய பேச்சுவார்த்தை மீனவ பிரதிநிதிகளோடு நடத்தி இந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வரணும். பல நாடுகளில் அண்டை நாடுகளோடு மீன்பிடிக்கக்கூடிய மீனவர்கள் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் மீன்பிடிக்கின்றார்கள். இந்த இலங்கை தமிழக இந்திய மீனவர்களுடைய பிரச்சனை மட்டும் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கிறது. ஒன்றிய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. Honorable Member Shri Anand Bhadoria ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपनी राय अपनी पार्टी की तरफ से रखने का अवसर प्रदान किया है। सभापति महोदय,
हम लोग इस सदन में जब से चुन करके आए हैं, सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन ज्यादातर जो बिल आए हैं उसके दो कारण हमें समझ में आए। एक तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना कि हम इतने अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, हमने इतने पुराने नियमों में संशोधन किया है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके व्यापार के बिना पर, उसकी जरूरतों के बिना पर, उसके व्यापार के हितों की अनदेखी करके जो बड़े व्यापारिक मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक, अमेंडमेंट, बिल लाने का काम हो रहा है। जो दर्जनों जो तटीय पोत परिवहन विधेयक आया है, सभापति जी, हम कहने को तो मछुआरों के और तटीय इलाके के लोगों के हितों को लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। हम 1 अप्रैल को जब आज चर्चा कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं ये मछुआरों के लिए एक धोखा साबित होने का काम हो। हमने रामचरितमानस में भी, सभापति महोदय, इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो उन्हें निषाद समाज के लोग निषाद समाज के अंतर्गत आते हैं, केवट समाज के अंतर्गत आते हैं। ये वही केवट और निषाद समाज के लोग हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नौका में बैठा करके गंगा पार कराने का काम किया था और उतराई भी नहीं ली थी, लेकिन आज वो मछुआ समुदाय संकट में है। सभापति जी, देश के समुद्री व्यापार मछुआरों और छोटे जहाज मालिकों के हितों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस बिल में कहा गया है कि भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि जब आप विदेशी कंपनियों को भारतीय तटीय व्यापार में शामिल कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन हमारे पास अपने जहाजों की तो संख्या नगण्य है सभापति जी, अपने जहाज है ही नहीं। तो फिर सरकार विदेशी जहाजों को भी तटीय व्यापार में लाने का काम करेगी और जिससे भारतीय शिपिंग कंपनियों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। क्या सरकार को अपने जहाज बनाने पर, अपने जहाज लाने पर काम नहीं करना चाहिए था? कबीरदास जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन सरकार गहरे पानी में नहीं उतरना चाहती, केवल विदेशियों को लूटने का रास्ता देना चाह रही। इस बिल में सर्विसेज को तटीय व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें तेल, गैस की खोज, समुद्री शोध जैसे काम आते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तटीय इलाकों में ड्रिलिंग और खनन का अधिकार मिलेगा, भारत के लाखों मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी होगी। क्या यही सरकार का सबका साथ और सबका विकास है? कहीं ना कहीं मछुआरों की आवाज को दबाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी, कुछ मछुआरों के हितों पर भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मछुआ आवास देने का काम किया था। मछुआ समुदाय के केवट निषाद समाज को उन्होंने तालाबों के पट्टे देने का काम किया था, उनके पेंशन देने का काम किया था। तो क्या माने मंत्री जी को इस तरीके की कोई योजना नहीं लानी चाहिए जिससे इस मछुआ केवट निषाद समाज के लोगों का कल्याण हो सके? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये जो जातियां हैं इनको SC ST का दर्जा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव बना करके भेजा, लेकिन वो भी अभी लंबित है। सरकार निषाद केवट समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती। सभापति जी, हम कहना चाहते हैं, पुराने कानून में
बिना लाइसेंस तटीय व्यापार करने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस बिल में बढ़ा करके 15 लाख या कमाई का 4 गुना कर दिया है। ये किसके हित में है माननीय मंत्री जी? बड़ी कंपनियों के लिए तो ये छोटी रकम है, लेकिन जो छोटे जहाज मालिक हैं, जो मछुआरे हैं, वो कैसे इतना बड़ा अर्थदंड दे पाएंगे? इसलिए सभापति जी, इस बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जहाज को जब्त कर सकता है। ये प्रावधान सरकारी दमन को बढ़ावा देगा कि क्या ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ हरेसमेंट नहीं है? इसलिए सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, आज मछुआरों का खाली हाथ और आंखों में पानी, मछुआरों की यही कहानी। सरकार उनका समंदर छीन रही है और आंखों में पानी भर करके छोड़ रही है। सभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें 2 साल का समय दिया गया है। यानी सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं है, वो बिना सोचे समझे कानून ला रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, ये बिल राष्ट्र विरोधी है। इस बिल में भारतीय समुद्री हितों को बेचने की तैयारी है। ये छोटे जहाज मालिकों, मछुआरों, देशी शिपिंग उद्योग के लिए विनाशकारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साबित होगा कि सरकार विदेशी कारपोरेट के एजेंडे पर काम कर रही है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सत्ता के दीपक जल रहे हैं पर मछुआरे अंधेरे में हैं। चौराहे पर खड़ा हुआ विकास सिर्फ भ्रष्ट तंत्र के फेरे में है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable Member Dr. Rani Sri Kumar ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. I rise to talk on the significant coastal shipping bill, which this government claims will promote coastal trade and encourage domestic participation. Despite being a country with about 7,500 km coastal length, 14,500 km inland waterways length, and being strategically located near major international shipping lanes, we have not utilized our crucial waterways to our full potential. Inland freight transport is, just as per Niti Aayog, maritime transportation, particularly coastal shipping, is widely recognized as a more cost-effective alternative to other modes of transport. So, when this bill was introduced, we hope that this bill would facilitate coastal shipping and promote employment opportunities for our people. But this bill has not only failed to address the crucial issues, it has also made it worse. As per Section 345, the Director General has been given considerable discretionary power in assessing applications and imposing additional conditions. While flexibility is necessary, excessive discretion without clear guidelines could lead to inconsistent or biased decision making. The Director General is given broad discretionary powers to suspend, revoke or modify licenses. While such powers are necessary for regulation, there are concerns about the lack of checks and balances. If misused, this could lead to arbitrary action without sufficient oversight. The criteria for suspension, revocation or modification of the license are broad, including violations of any conditions of the license or failure to comply with any applicable law. This could be seen as overly vague, leading to uncertainty and potential misuse. These sections does not clearly mention about any appealing process or mechanism for challenging the suspension, revocation or modification of a license. This could leave licensors without an effective way to contest decisions they perceive as unfair or unjustified. The term reasonable opportunity to be heard could be interpreted differently, leading to arbitrary application of the law. A more defined process could ensure fairness and clarity without giving undue power to the Director General of Shipping. As per Section 8 of this bill, the Union Government must publish a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the Act's commencement and update it every 2 years. The plan will include assessments of coastal shipping routes, operational improvements, long-term traffic forecasts,
best practices, new routes, promotion of Indian vessels, and other necessary matters. A committee will be formed to draft the plan, including members from various relevant agencies such as Director General of Shipping, Inland Waterways Authority, major ports, state maritime boards, ship owners, seafarers, and maritime experts. The problem with this section is that the strategic plan is mandated to be drafted and updated every 2 years. But who is responsible for its execution? There is no mention of performance monitoring to ensure that improvements are implemented. The committee is only responsible for drafting, not ensuring the implementation. The committee consists mostly of government representatives and some industry players. Key stakeholders like cargo owners, logistic providers, and coastal community representatives are missing. Sir, the strategic plan mentioned promotion of Indian vessels, but how this will be done is unclear. No specific incentives, examples of subsidies, tax benefits are mentioned to encourage domestic vessel participation. Developed countries like China, European countries, and USA are giving incentives, and they are giving tax benefits to their own crews, and they are giving more efforts to develop the ports to enhance the shipping traders. But in India, despite playing Indian flags and employed Indian crew, Indian shipping companies has to pay high taxes, but the foreigners are enjoying the exemptions. The exemptions and the cost advantages should be given to the Indian shipping traders also. Very good, very good. The Coastal Shipping Bill 2024 introduces stringent penalties to ensure compliance, but a balanced approach is necessary to foster industry growth. While strict enforcement is essential to maintain safety and efficiency, excessive penalties without remedial provisions could discourage new entrants and smaller operators. Currently, penalties under Section 15, 16, 18 impose heavy fines, imprisonment, and vessel detention for violations like unauthorized operations, expired licenses, and false reporting. However, the absence of grace periods or rectification opportunities may create intended barriers. To promote compliance without stifling participation, the bill could incorporate graduated penalties, warning mechanisms, or rectification periods for minor infractions. This would ensure regulatory discipline while allowing businesses, especially new entrants, to adapt to compliance requirements without disproportionate deterrence. Sir, India's coastline is not just a trade route. It is in a line of defense. We have seen smuggling, illegal fishing, and even security threats from the sea. But this bill is silent on coastal surveillance, naval coordination, and security measures. Nowadays, drug trafficking through Indian ports remains a growing challenge. One of the most critical measures India must adopt to curb drug trafficking is the enhancement of the port surveillance and the integration of advanced technology in security operations. If India fails to modernize its port security infrastructures, its port will remain soft targets for international syndicates, undermining national security public health efforts. Sir, கடைசியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். அண்டை நாடுகளுக்கெல்லாம் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது உதவி செய்கின்ற இந்த ஒன்றிய அரசு அண்டை நாடுகளால் எங்களது தமிழக மீனவர்கள் பாதிக்கப்படும் போதும் துன்புறுத்தப்படும் போதும் மௌனமாக கையை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இந்த ஒன்றிய அரசு எங்கள் தமிழக மீனவர்களிடம் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி அல்ல. இந்திய மீனவர்கள் எல்லாரையும் எங்களது சகோதரர்களாகவே கருதுகிறோம். எனவே இந்த மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் கொண்டு வரப்படும் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் நாங்கள் அதை ஆதரிக்கவும் மாட்டோம், அதை நாங்கள் அமல்படுத்தவும் விட மாட்டோம். Therefore, Tamil Nadu government under the able leadership of our Chief Minister are taking lot of steps and measures to uplifting the traders.
So I request the union government to follow the steps of our able leader, our honorable chief minister, in uplifting the traders. Therefore, I ask the union government to modify this bill accordingly, taking into the concern of the coastal state governments, industry stakeholders, and the fishermen community. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member N.K. Premchandranji. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, sir. I rise to support this bill with certain strong reservations and concerns and seeking clarifications from the Honorable Minister. Sir, this bill, there is a Coastal Shipping Bill 2024, that is 2025, seeks to repeal Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, except Section 411, capital A. So the primary advantage of having coastal shipping is that it can result in shaping necessary national and state policies, state-level policies and programs targeted towards transportation, logistics and trade. So this coastal shipping bill, the government is forced to bring this bill according to my limited information, limited knowledge. This coastal shipping bill 2024 is brought in because of the competition with the foreign flag vessels and the Indian flag vessels. So it is giving a preferential treatment to the Indian flag vessels. That is why I am supporting this bill. So a large number of coastal population is depending on the activities related to the seas and bays. By means of this legislation, government intends to improve the modal share of the coastal shipping from the current rate of 6.4% is the rate, model rate of, as per the present rate of coastal shipping, and it is to be increased to 7.5% by 2030 and ultimately 12% by 2047. Sir, the share of coastal shipping in Japan, European Union, is 5 to 6 times higher than that of India. And as far as China is concerned, it is 7 times higher than that of India. This is the global scenario, global situation prevailing as far as the coastal trade is concerned or coastal shipping is concerned. My specific question to the Honorable Minister is whether the government is able to achieve the target of 12% modal share by 2047 through this legislation alone. According to me, it is not possible unless and until the government have a strong political will to implement the program, implement the provisions of this bill in a better way. Sir, through the bill, though the bill is a welcoming step as far as Indian flag vessels and operators are getting preferential treatment in coastal trade to foreign flag vessels, I have some reservations, strong reservations and concern. I would like to flag it as one by one. Sir, number one, that is regarding, I am seeking the explanation or the clarification from the Honorable Minister. That is regarding the applicability of the Act. Sir, clause 1 of the Act says that this Act shall apply to every clause A. Clause 1, subclause A, every vessel other than the Indian vessel engaged in coasting trade irrespective of the place of residence or domicile of the owner. Clause B, every chartered vessel referred to in Chapter 4. This is the provision which is given applicability of the Act according to Clause 1. Sir, coming to Clause 6 of the bill, it is very specifically stated that every vessel, including Indian vessels, engaged in coasting trade shall report to the Director General the following information in such form and manner as may be prescribed, namely. So, applicability of the Act is, I have clearly mentioned in Clause 1, applicable to only this vessel, vessels other than, it is applicable only to every vessels other than the Indian vessel, but Clause 6 is very clear that is Indian vessels also it is applicable. I am not going to Chapter 6 of the Act. There is a specifically it is stated that Indian vessels will be applicable according to Chapter 6, but this 6 it seems to be contradictory because one way it is applicable only to these vessels and here it is in a different way by virtue of Clause 6. That is the first clarification I am seeking. And second one is regarding the definition of cooperative society and the limited liability partnership is not provided.
definition for these two terms, cooperative society, as well as the limited liability partnership, is not provided in the bill, either in this bill or in the Merchant Shipping Act or in the Notified Merchant Shipping Bill. It is not specifically, the definition is not provided. That is the second concern I would like to make. And the third one is regarding clause 18A, clause 18 subclause A of the bill. When the licensee failed to furnish the information required by Director General within the stipulated time, it attracts harsh punishment. Just now, my learned friend has already spoken about it. That is, what is the punishment? Punishment is imprisonment for 6 months and fine up to 50,000 or both. If a operator or vessel owner is not providing the information as required by the DG Shipping, then there is a punishment for 6 months imprisonment or 50,000 rupees fine, or both means that is a disproportionate punishment is provided in clause 18A. That is not fair according to me, so that has to be looked into. And also further, at the same time, it is in section, so another point to be noted is under section 35(2), clause 3, the Director General can ask any other matter as may be prescribed. So absolute discretion is provided to the DG. When you are having disproportionate punishment on one side of 6 months imprisonment and 50,000 rupees fine or both, and at the same time it is a discretionary power is given to the Director General that any matter as may be specified can be asked for information or require information from the concerned persons. That means unfettered authority, discretionary powers is vested with the Director General. That has to be looked into, as it is arbitrary in providing excess powers to the Director General. And the fourth concern is regarding under section 26(1) and section 30 clause 5 of the bill. That is, the offences mentioned under section, the penal provisions under section 15 to 25 all are compoundable. That also, one side it is harsh punishment and other side all are compoundable offences. It may lead to bureaucratic corruption and thereby harassing the operators or licensees. And the fifth point is there is no dispute resolution mechanism for promoting ease of doing business. The government is always talking, almost all the legislations are for ease of doing business. If you want to achieve this ease of doing business, there should have a dispute resolution mechanism should be there. Unfortunately, in this bill, it is missing. That is to be looked into. Sir, I would like to conclude my speech with 2-3 suggestions also. Sir, number one suggestion is, since large part of the coastal shipping in India is in the unorganized sector, state government and district authorities should also be allowed to issue licenses for small vessels and country boats which are conducting voyages on shorter routes and are at the cross-border level in border areas. The second suggestion is the process of getting vessels registered should be made easy with fewer documents in transparent and digitalized manner, and special assistance should be provided to vessel owners. Number two. And the third one is the National Register of Coastal Shipping must be made available in the public domain with the integration from other relevant organizations such as Director General of Foreign Trade. And sir, I'm finishing. And the fourth one is dispute resolution mechanism, which I've already explained that should be established. Sir, I'm concluding the success of the regulatory framework depends on the efficiency and transparency of enforcement mechanism, as well as the capacity of the Director General Shipping to handle the increased responsibility. Hope that the government will consider these suggestions and concerns, then that will be addressed in future amendments. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member D. Ravi Kumar ji. D. Ravi Kumar. தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற மசோதா என்பதால் முதலில் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக ஈட்டப்படுகிற வருவாய், கடல் வணிகத்திலே ஈட்டுகிற வருவாய் என்பது பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் மிக குறைவாக இருக்கிறது. சீனா நம்மை போல 7 மடங்கு இதன் மூலமாக வருவாய் ஈட்டுகிறது. எனவே இப்பொழுது அந்த வருவாயை கூட்டுவதற்காக எடுக்கப்படுகிற இந்த நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது. இந்தியாவிலே நீண்ட கடற்கரையை கொண்ட 2வது பெரிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.
1076 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள கடற்கரையை கொண்ட மாநிலம். 3 பெரிய துறைமுகங்கள், சென்னை, எண்ணூர், தூத்துக்குடி துறைமுகங்கள், 17 சிறு துறைமுகங்களை கொண்ட மாநிலம் எங்கள் தமிழ்நாடு. அங்கே இருக்கின்ற இந்த கடல் வளங்கள், கடல் வணிகத்தை பெருக்குவது, இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2023ஆம் ஆண்டிலே இதற்கான ஒரு கொள்கையை வகுத்திருக்கின்றார்கள். அதிலே இந்த கடல் வழியை பயன்படுத்தி வர்த்தகத்தை அதிகப்படுத்துவது, குறிப்பாக சரக்கு போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்துவது. ஏனென்றால் சாலை போக்குவரத்து இன்றைக்கு நெரிசல் மிகுந்ததாக மாறிவிட்டது. எனவே கடல் மார்க்கமாக சரக்கு போக்குவரத்துகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக அந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான நிதி உதவியை அவர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் கோரியிருக்கிறார்கள். எனவே அதற்கான நிதி உதவியை ஒன்றிய அரசு கொடுத்து அதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அங்கே இருக்கின்ற 17 சிறு துறைமுகங்களில் சில துறைமுகங்கள் கேப்டிவ் போர்ட்ஸ், அது குறிப்பான ஒரு நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற துறைமுகங்களாக இருக்கின்றன. அவற்றை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதற்கும் ஒன்றிய அரசு ஒத்துழைக்க வேண்டும், நிதி உதவியை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதில் இந்த சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான அம்சம், இது டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அதாவது கடற்கரையிலிருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல் வரை இருக்கிற அந்த கடற்பரப்பை டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்று நாம் அழைக்கிறோம். அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது ஏற்கனவே மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றன. மாநில அரசுகள் தான் அதன் மீது அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த சட்டம் அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அட்ஜாயினிங் வாட்டர் இரண்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கிறது. எனவே இது மாநில அரசுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுவதாக இருக்கிறது. எனவே இந்த அம்சத்தை நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். இந்த அம்சம், அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது அதிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். மாநில அரசுடைய அதிகாரத்திலே தலையிடுவதை ஒன்றிய அரசு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக கடந்த 17வது நாடாளுமன்றத்திலேயே அவர்கள் இந்த ஸ்மால் போர்ட்ஸ், மைனர் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், சிறு துறைமுகங்களை எல்லாவற்றையும் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள். 2021 மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அங்கே பொறுப்பேற்றதும் அதை எதிர்த்து ஒரு கடிதத்தை எழுதினார்கள். அதன் பிறகு அந்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. எனவே இன்றைக்கு மறைமுகமாக இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அதே வேலையை ஒன்றிய அரசு செய்ய முற்படுகிறது போல தோன்றுகிறது. எனவே மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுகிற போக்கை ஒன்றிய அரசு நிறுத்த வேண்டும். அதற்கான அம்சத்தை இந்த சட்டத்திலே நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். இன்னொரு முக்கியமான அம்சம், இங்கே பேசிய உறுப்பினர் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியது போல இதிலே இருக்கின்ற தண்டனை அம்சங்கள், அதில் குறிப்பாக சர்வீசஸ் என்பதும் சேவைகள் என்பதும் இதிலே வர்த்தக நோக்கத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக கடல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்கிறவர்கள், ஆராய்ச்சிக்காக போகிறவர்கள் அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்காக போகிறவர்கள் எல்லாவற்றையுமே வர்த்தக நோக்க கீழ் இது கொண்டு வருகிறது. இது தேவையில்லாத மக்களை சிரமத்துக்கு ஆளாக்கும். குறிப்பாக மீனவர்கள், அவர்களை சித்திரவதை செய்வதற்கு அவர்கள் ஏற்கனவே அங்கே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை மேலும் துன்பத்துக்கு ஆளாக்குவதற்கு இது வழிவகுத்துவிடும். எனவே அந்த சர்வீசஸையும் இதிலே சேர்த்திருப்பதை நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே 19 மீனவ கிராமங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக மரக்காணம் என்பது புகழ்பெற்ற, வரலாற்று புகழ்பெற்ற ஒரு துறைமுகமாக இருந்த பகுதி. அங்கே ஒரு துறைமுகத்தை அமைப்பதற்காக அங்கே நீண்ட காலமாக ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது. கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களையும் சந்தித்து நேரடியாக அவர்களிடத்தில் இந்த கோரிக்கையை வைத்திருக்கின்றோம். ஒன்றிய அரசு அந்த கோரிக்கையை ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசின் மூலமாக ஒன்றிய அரசுக்கு அது பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் பரிசீலித்து அந்த மரக்காணத்திலே ஒரு துறைமுகம் அமைப்பதற்கான நிதி உதவியை ஒன்றிய அரசு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இங்கே பேசிய பல உறுப்பினர்களும் சுட்டிக்காட்டியது போல மீனவர்கள் இன்றைக்கு கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக இலங்கை கடற்படையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் நேரடியாக நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களை சந்தித்து இலங்கை கடற்படை நம்முடைய மீனவர்களை கைது செய்து அவர்களை சிறையில் அடைப்பதற்காக நீங்கள் அவர்கள் எல்லையை மீறி சென்றால் நீங்களே கைது செய்து அவர்களை அழைத்துவார்கள், இல்லை என்றால் இது 2 நாட்டு பிரச்சனையாக மாறுகிறது என்று நாங்கள் சுட்டிக்காட்டினோம். இப்பொழுது சீனா
அங்கே இலங்கையிலே இருக்கின்ற தமிழ் மீனவர்களுக்கு பெரிய படகுகளை வாங்கி கொடுத்து அங்கே அவர்கள் தலையிடுவதற்கு அவர்கள் முற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களும் வந்தால் இது சர்வதேச பிரச்சனையாக மாறும். எனவே மிகுந்த விரைவில், அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இலங்கைக்கு செல்ல இருக்கின்றார். காலையிலேயே நம்முடைய மூத்த உறுப்பினர் அண்ணன் தியா பாலா அவர்கள் அதை சுட்டிக்காட்டினார்கள். அங்கே போகும்போது இந்த இலங்கைக்கும் இங்கே இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை சுமூகமாக ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு நம்முடைய அரசு உட்பட வேண்டும். அதற்கு பிரதமர் அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, honorable member. Mananiya Mahasasi. Sir, I have to report that Rajya Sabha has passed the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. Sir, I lay on the table the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025 as passed by Rajya Sabha on 1st April 2025. माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह सदर जी। सभापति महोदय, ये अभी एक सदस्य हमारे बोल रहे थे 1 अप्रैल, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये चैत्र के नवदुर्गा चल रहे हैं, नवदुर्गा का 3रा दिन है। चंद्र घंटा मैया की पूजा आप करें तो आपका भी कल्याण होगा और सद्बुद्धि भी आएगी। तो मैं नवरात्रि की बधाइयां देते हुए और आज के ये जो हमारा बिल है, इस बिल के समर्थन में बोलना चाहता हूं। तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा है कि रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राज ऋषि रत्नाड्यम वंदे भारत मातरम। हमारी भारत माता की सीमाएं 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और एक तरफ से हिमालय इसकी रक्षा करता है और समुद्री तटीय, और इसके लिए कानून लाना, उनमें सुधार करना, जो बरसों से पंगु कानून बने हुए थे उनमें सुधार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इस कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का समर्थन करता हूं। इसलिए भी समर्थन करता हूं कि इस बिल के माध्यम से हमारे तटीय क्षेत्रों में समुद्री व्यापार परिवहन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। मैं इसके प्रमुख बिंदुओं में बताना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन इससे होगा। यह विधेयक तटीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देता है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी, व्यापार को गति मिलेगी। वर्तमान में भारत में कुल बंदरगाह की लगभग क्षमता 3600 मिलियन टन प्रति वर्ष है और जिसे माननीय मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना 2047 तक करी है, उसमें इसको 10,000 MTPA बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तटीय शिपिंग सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह विधेयक हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे समुद्री परिवहन को और अधिक पर्यावरण मित्र मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आज मैं इस बिल का भी समर्थन करता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा। हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इससे उन्होंने उदाहरण दिए आदिकाल के, तो हम उस आदिकाल को भी जानते हैं। हम तो उन परंपराओं को, क्योंकि हमने राम सेतु पर भी विश्वास किया, लेकिन आपने तो शपथ पत्र दिए उसके विरोध में। तो मैं तो कह रहा हूं कि राम न मारे काहू को और पापी नहीं है राम, और आप उनसे मर जात है कर कर खोटे काम। और इसलिए मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि राम सेतु को आपने तोड़ने की कोशिश की, हमने उसको शिपिंग और बंदरगाह को मजबूत करके हमने न केवल व्यापार बढ़ाने का काम किया, हमने विरासत भी दी
और विकास भी दिया। ये हमारा मोदी जी का मूल मंत्र है, क्योंकि राम काज करने की खातिर राम की भक्ति समाई और पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। और भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने के लिए तटीय शिपिंग के विस्तार में स्थानीय उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए गुजरात सरकार ने 2047 तक 2000 मिलियन टन का प्रति वर्ष की कार्गो क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बंदरगाह अवसंरचना का विकास विधेयक के तहत बंदरगाहों को बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। वर्तमान में 56 परियोजनाएं, इसकी कुल लागत लगभग 41,480 करोड़ रुपया है, कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इससे बंदरगाह की क्षमता में लगभग 550 मिलियन टन प्रति वर्ष वृद्धि होगी। और इसलिए मैं यहाँ के जो संशोधन इसमें लिए गए हैं उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर इसमें जोर दिया गया है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आम गरीब जनता, उनकी चिंता, क्योंकि अंत्योदय का लक्ष्य जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ऐसे नौवहन सेवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुरक्षा मानकों के सख्ती में पालन, और इससे आप बार बार हमारे विपक्षी मित्र ये शंका, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब विदेशियों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको दूसरा दिखाई देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तटीय शिपिंग दौरान सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे समुद्री दुर्घटनाओं में की संख्या में कमी आएगी। यात्रियों तथा माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इस बिल से हमारी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बंदरगाहों और जहाजों के में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के बंदरगाहों में हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना बनाई है। और ये भी अपने आप में जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है, ऐसे जल के क्षेत्र में इससे हरित ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। नवाचार और अनुसंधान, मैं 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। नवाचार और अनुसंधान में इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम हैं, उनमें यदि शिपिंग और क्रूज की व्यवस्था हो जाए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे समाज रह रहे हैं जैसे कीर समाज है, उसको आरक्षण मिल जाए, जिससे कि उनको न्याय देने का काम हो जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, वह इस बिल के माध्यम से ही होकर गुजरता है। और मैं आपसे इसी भाव के साथ न केवल इस बिल के माध्यम से, चूंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का ये 100वां जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके माध्यम से कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। और मैं तो आपसे इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्ति पर ले जाता हूँ। ये मोदी जी के लिए इस सागर की अपनी क्षमता है, पर पांजी भी कब रुकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पिछवार। यह है असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने, और हम सब के नेता मोदी जी ने कभी न मारी हार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और इसके माध्यम से ये यदि शिपिंग बिल को मैं
मैं पूर्णतः समर्थन करते हुए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। नंदा मैया की जय, भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय और समुद्र देवता की जय। जय हिंद, जय भारत। Honorable member Sri Biriato Fernandez. Thank you, sir. The introduction of the Coastal Shipping Bill 2024, introduced in Lok Sabha in December 24, aims to fundamentally revise India's regulatory framework for coastal and marine trade. Sir, I want to point out certain sections which can create a problem for stakeholders operating in the shipping industries. First of all, there is discretionary authority of the Director General and central government. The bill grants significant discretionary powers to the Director General and the central government, raising concerns about potential favoritism and lack of transparency. The broad authority to direct vessel routes, prioritize cargo or passengers, restrict port entry, and exempt certain vessels from the Act's provisions could lead to preferential treatment of specific entities, undermining fair competition. Next, centralized decision-making and the absence of clear criteria for granting exemptions or imposing penalties may disadvantage smaller operators and create an uneven playing field. Additionally, the lack of independent oversight and transparency in decision-making processes heightens the risk of market distortion and raises questions about accountability and impartiality. Safeguards such as independent reviews and other accountability mechanisms are critical to mitigate these risks. Sir, there is a document that is minimum safe manning document. This is a certificate issued by the registrar of the ship, certifying the ranks and qualification required to work on a particular ship. It has been observed that inland vessel seafarers are eligible to sail on Indian coastal ships and river sea vessels. But in many cases, the documentation, training and certification that is required to comply with this is not easy to get. It is very difficult, sir. Hence, the owners and the recruitment agencies of the coastal ships find it difficult to get such inland vessel crew. The registrar should be aware of the ground situation about the crew training. Sir, there is also a certificate called Certificate of Equivalence. All the Indian officers and engineers who get their competency license from foreign countries, which are white flag nations like England, Singapore, New Zealand, etc., as per International Maritime Organization, IMO, should be given an opportunity to work on Indian coastal ships. It has been observed that there is a shortage of highly trained officers and engineers to work on ships like coastal tankers. So Indian nationals who have taken competency certificates from white flag nations can be employed on these vessels. Presently, rules and regulations are in place, but it has been reported that a lot of difficulties are faced by the owners. And it has been reported that authorized recruiting agencies are finding it difficult to get the certificate of equivalence in MMD. That is Mercantile Marine Department. So amendments need to be done so that these Indian officers and engineers transition from working in foreign shipping to coastal shipping is easy. Coastal shipping will get a lot of benefits from the experience and highly skilled training of these seafarers. So there is a clause 3. This clause prohibits the engagement of vessels other than Indian vessels in coasting trade in the coastal waters unless the license for the same has been granted by the Director General of Shipping. In circumstances, if in circumstances a ship required for a particular specialized operation and research is not available in India,
then on case-to-case basis, the Director General of Shipping should give a specialized license for that shipping foreign registered vessel after verifying all the documents and ensuring that the Indian ship owners do not have such vessels so that the particular operation can be completed. Clause 7 in the bill, sir. This clause provides that no proper officer of customs shall grant clearance to a vessel other than an Indian vessel engaged in coasting trade to enter or depart from a port unless a license is produced by the licensee or agent of such a vessel. It further provides for the detention of a vessel which fails to comply with the requirements of the bill. All the concerned departments which are related to coastal shipping, especially the government agencies such as customs, immigration, port authorities, should be well aware of the latest circulars, orders and notices. So I'll complete by giving some important suggestions, sir. So Indian shipbuilders should be encouraged to install machinery and equipment on the board the coastal ships which are far as possible are made in India, and Indian MSCs should be involved in the ship design. Next, the authority to delegate the statutory certificate of the ship should be given to the ISCS Classification Society. Only two more points, sir. Fuel subsidy to be given for coastal vessels. Furthermore, government should support infrastructure for hybrid vessels like battery stations at reduced tariffs and port. When the coastal vessels comes alongside a port, shore power should be made easily available to all the ships. This will reduce the carbon footprints and also enable the ship staff to carry out equipment maintenance. Presently, not many Indian ports have the facility of giving shore power to the ships. Last, collateral free loans for construction of coastal vessels, with the vessel itself being the collateral with an affiliation to the government and same to be mentioned Honourable in the Member registry certificate. K. Francis Thank you, sir. Darji. K. Francis. Sir, I rise to address the Coastal Shipping Bill 2024, a legislation that, while aiming to revitalize India's maritime sector, presents several concerns, sir, particularly for coastal states like Kerala. So the bill's centralization of authority over coastal shipping diminishes the role of state governments, potentially undermining the federal structure enshrined in our constitution. So the states like Kerala, with extensive coastlines and unique maritime needs, risk losing autonomy over local shipping activities. Sir, this centralization could hinder Kerala's initiatives to develop and manage its coastal resources effectively. So Kerala's economy heavily relies on coastal trade for transporting goods such as spices, seafood, and coir products. The bill introduces stricter licensing requirements, particularly affecting vessels not wholly owned by Indian entities. So this could increase operational costs and reduce the availability of vessels, adversely impacting states like Kerala's exporters and importers who depend on affordable coastal shipping options. Such measure may diminish the competitiveness of Kerala's products in both domestic and international markets. So Kerala Maritime Board has been proactive in promoting short sea shipping services to alleviate road congestion and enhance regional trade. The centralized control proposed by the bill may impede these localized efforts, stifling innovation and responsiveness to regional maritime challenges. So the state's plans to integrate coastal shipping with inland waterways could face bureaucratic hurdles, delaying progress and economic benefits. Stakeholders within the shipping industry have criticized the bill for imposing excessive control over the hiring of foreign flag ships. Exporters and importers fear that increased transaction costs will undermine the global competitiveness of Indian exports. Sir, the requirement for licenses when chartering foreign vessels, even for operations between international ports, adds layers of bureaucracy that could deter business and inflate costs. Sir, while the bill seeks to streamline coastal shipping operations, the introduction of new licensing regimes and regulatory measures risks creating additional bureaucratic obstacles. So this could deter private investment and participation in the coastal shipping sector, which is vital for states like Kerala's economic interests. So the increased penalties and stringent compliance requirements may disproportionately affect smaller operators, leading to a consolidation that favors larger entities.
So the concerns raised by various stakeholders suggest that the drafting of the bill may have lacked sufficient consultation with state governments and industry participants. A more inclusive approach could ensure that the legislation addresses the diverse interests and challenges faced by coastal states like Kerala. So engaging with local authorities, industry experts, and community representatives would lead to more balanced and effective maritime policies. So the bill proposes to integrate coastal maritime transport with inland waterways. So if the aim is to, as suggested in the bill, to lower the transportation costs and promote competition within the sector, smaller ports like, Kottayam port in my constituency should be developed. I hope the minister will pay particular attention to this matter. Sir, one last point, sir, Vizhinjam International Seaport. So I would like to invite the attention of the Honorable Minister to this particular issue. Sir, Vizhinjam is poised to be the deepwater container international transshipment hub of the country. Sir, it is in the final stage of commissioning. It developed on a PPP basis, private-public partnership basis. This will bring home the Indian cargo Trans-Silesia, Salalah and Dubai. Sir, the Maritime India Vision 2030, the Maritime Amritkal Vision 2047. Okay, I don't remember. All these. Please, 1 minute. I'll complete, sir. Just 1 minute. Of the Ministry of Shipping, Ports and Waterways gives top priorities to this project. So why I am raising this is, sir, this is the first project to get in principle approval for viability gap funding under the scheme for financial support to private-public partnership in infrastructure. Thank you, Honourable Member. Thank you. So the Ministry of सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 2 अप्रैल 2025 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. Multinational corporations, he founded the concept of the barefoot manager. He created the concept of rural management. That is how IRMA was born. It is a brainchild of Dr. Verghese Kurian. Mr. respected Tribhuvan Das Patel and Dr. Kurian enjoyed a father-son relationship. Sir, today, Mr. Verghese Kurian's daughter calls Tribhuvan Das Patel Kaka. Tribhuvan Kaka is what she calls him. They had a father-son bond. It was Tribhuvan Das Patel who pleaded with Dr. Kurian to stay on in Anand and build the milk cooperative with new technologies, new machines. History did not start in 2014, sir. The cooperative movement was built decades before Narendra Modi became Chief Minister of Gujarat. There is a long line of the great Nehruvian nation builders, like Dr. Verghese Kurian, like Dr. Manmohan Singh, that this government cannot bring itself to credit and to acknowledge. This government has an antipathy to the great Nehruvian nation builders like Dr. Kurian, but this antipathy and hostility to the Nehruvian nation builders must not get the better of good sense. Dr. Kurian founded IRMA, and as a proud son of Gujarat, Dr. Verghese Kurian's name must find place in this new university. Sir, they are trying to rewrite history, but those who try to rewrite history will never be forgiven by history. Thank you. History will never forgive those who rewrite history. Thank you, sir. Thank you. Yes.
238 क्या ए यस गो अहेड। माननीय सदस्य ने इस कोऑपरेटिव बिल को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के साथ जोड़ा है कि इसलिए वर्गीज कुरियन को इग्नोर किया गया कि वो माइनॉरिटी क्लास से हैं। ये सरासर गलत है और इसमें कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या लोकसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध मान हानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा, जबकि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दी हो, ताकि मंत्री उत्तर दिए जाने के प्रयोजन के लिए इसमें जांच की जा सके। ये सभापति जी इसको डिलीट करना चाहिए। Honorable members, on this, whether this House can reflect on the conduct of persons who are not members of this House, there is a detailed ruling given by the chair. I will examine it in that perspective. It is on twofold situations. If there is anything which is inculpating the person or incriminating the person, then the mechanism is different. If it is assertion of a fact situation, then it is different. The matter will be examined. Shri Praful Patel. सभापति महोदय, आज हम यहाँ पर त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 इसको पारित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और मैं इस बिल का पूरे तरह से समर्थन करते हुए एक जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं और बड़े गर्व के साथ देना चाहता हूं कि त्रिभुवन दास पटेल जो इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के संस्थापक रहे, हमारे पूर्वज भी वहीं से आते हैं जहां से त्रिभुवन दास जी ने शुरुआत की। हमारे पूर्वज वहीं से आते हैं सर, और जो आनंद शहर है वहाँ से मेरी पत्नी भी वहीं से आती है। तो ये कहकर आपने बहुत आनंदित किया है। आनंदित किया क्योंकि उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं गया था तो उनका टावरिंग फिगर एंड यू वर ओनली असिस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके इलाके में गया था, अच्छा कार्यक्रम था। बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी, कोई नाराज हो रहे थे, तो मैंने बोला जरा मूड बदलने का काम किया जाए। हमारे मित्र जयराम भी थोड़ा मुस्कुरा दे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अक्सर हाउस में रहा करें। तो हाउस हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। सर एक जानकारी और भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने इस बिल पे चर्चा की। अमूल नाम कैसे आया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसलिए अमूल, उसका शॉर्ट फॉर्म है अमूल। हम लोग अमूल बटर, अमूल की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, और इसलिए मैंने सोचा कि पूर्वज वहाँ से आए तो इतनी जानकारी तो मेरे पास होनी चाहिए और मैंने शेयर करने की भी यहाँ कोशिश करनी चाहिए। सर ये जो बिल है, इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की बात हो रही है, नो डाउट बहुत एक अच्छी संस्था है, लेकिन उस संस्था का एक स्वरूप आज के आधुनिक युग में कोऑपरेटिव सहकारिता का जो एक महत्व है उसको और बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है सहकारिता से समृद्धि, ये बहुत ही एक नेक लक्ष्य है और इसको आगे और भी हमको सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और इस बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो हमारा कोऑपरेटिव क्षेत्र है, नो डाउट हम अमूल की बात करते हैं, वहाँ से
जो लाखों परिवारों के जीवन में एक उन्नति और परिवर्तन आया, और ख़ास करके महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि जो दूध का उत्पादन करने वाले हैं वो 99% महिलाएं ही उसमें इस धंधे से जुड़ी रही, और उन्होंने अपने परिवार को एक अधिक आय का एक साधन इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने प्रदान किया। और त्रिभुवन दास जी पटेल की जो बात यहाँ हुई, नो डाउट वर्गीज कुरियन साहब का भी कहीं योगदान की कोई किसी ने कोई कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन कोई अगर व्यक्ति, महान व्यक्ति, और वो भी स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर यहाँ पर गुजरात में इतनी बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की, अगर उनका नाम अगर इस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है तो उसका सहर्ष सबने स्वागत करना चाहिए। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो एक कदम है लोगों को प्रेरित करेगा और लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात जहाँ तक कुछ हमारे साथी कर रहे थे, नो डाउट उनके बारे में किसी के मन में भी कोई कति भर भी कोई प्रश्न चिन्ह होना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत इस देश के किसानों को और ख़ास करके दूध उत्पादन के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया, वो भी कहीं किसी को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र ने उनको कई बार सम्मानित किया है और अवश्य ऐसा कहीं ना कहीं मौका आएगा कि उनका और भी सम्मान किसी न किसी माध्यम से ज़रूर होगा। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ, गुजरात में हमारे पूर्वज थे, मगर महाराष्ट्र और गुजरात खास करके ये दोनों जो राज्य हैं ये बहुत ही कोऑपरेटिव। आपका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से काफी और प्रांतों में भी है। जी सर। तो महाराष्ट्र तक सीमित क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, मैंने कोऑपरेटिव क्षेत्र के मामले में मैंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात इसमें, और हमारे भाई दिग्विजय जी ने भी वही बात पहले अपने भाषण में दोहराई थी कि महाराष्ट्र और गुजरात ने इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब पहल की थी, और अब पूरे देश में निश्चित मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य राज्य हो, आपका प्रांत राजस्थान हो, सभी जगह पर आज कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। और केवल कोऑपरेटिव अब एक ही कुछ लिमिटेड दायरे में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आज कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। हमारे महाराष्ट्र में पहले एक ज़माना था कि हम लोग कहते थे कि कोऑपरेटिव मतलब शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, बस वही एक कोऑपरेटिव है। ऐसा नहीं है सर। दूध संघ है वही कोऑपरेटिव, ऐसा नहीं है सर। आज आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कॉटन ग्रोइंग हमारा स्टेट काफ़ी बड़ा है। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी सारी टेक्सटाइल की स्पिनिंग और वीविंग मिल्स हमारे वहाँ पर निर्माण हो गई है। आज हमारे वहाँ पर फिशरीज़ में, इनलैंड फिशरीज़ में कोऑपरेटिव क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर प्रगति का काम हुआ है। आज कृषि क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कहो, अन्य जो भी कोऑपरेटिव हमारे जो संस्था है उसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पर अपना जीवन बदलने में उसका एक मौका मिला है। आज जंगल कामगारों के लिए भी जो वन में काम करते हैं, आपके उड़ीसा में जैसे काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र में, वन कामगारों की भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और उनको भी वन उपज के माध्यम से, चाहे महुआ फ्लावर हो, तेंदुपत्ता हो, बाकी भी बहुत सारी उत्पादन को वो कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आज बैंकिंग में एक बात निश्चित है सर, कुछ अपवाद इधर उधर कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं बैंकिंग क्षेत्र में कोऑपरेटिव में हुई होगी, लेकिन आज अगर आप मोटा मोटी देखें तो जो बैंकिंग की रीच है, आज हमको जरूर नेशनलाइज्ड बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स का पूरा जाल पूरे देश में नजर आता है, मगर आज भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां पर बैंकिंग की ज़रूरत हो और बैंक पहुंची होगी तो केवल कोऑपरेटिव बैंक पहुंची हो, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आज ये जो बिल है इसमें खाली यूनिवर्सिटी तो एक माध्यम है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को अच्छे ट्रेनिंग मिले, अच्छे वहाँ से मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स तैयार हों,
अच्छी फैकल्टी वहाँ पर जाकर उनको सिखाए, नई नई टेक्निक्स। आज कोऑपरेटिव देखिए सर, नाम के लिए कोऑपरेटिव है, लेकिन साथ साथ में आज आधुनिक युग में उनके लिए स्काई इज द लिमिट। और उस वजह से उनको अगर नई टेक्निक्स, नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है तो उसका हम लोगों ने सहर्ष स्वागत करना चाहिए। और इस वजह से ये जो बिल है कोऑपरेटिव क्षेत्र को एक सशक्त बनाने के लिए, हमारे देश में नई दिशा देने के लिए, नई पीढ़ी को, क्योंकि नई पीढ़ी साहब मैनेजमेंट में बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, कोई फाइनेंस में जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, लेकिन रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए आज पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए और इनका भी इसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अच्छी उनके भविष्य को बना सकते हैं, ये भी इस बिल का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस वजह से मैं इसको पूरी तरह से समर्थन करते हुए पुनश्च सरकार को भी बधाई दूंगा कि त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन काका जो उनको कहते हैं गुजरात में, हर व्यक्ति, हमारे नरहरि भाई भी, हम दोनों एक ही जिले के पूर्वज हमारे भी हैं, और नरहरि भाई को भी मालूम है कि पूरा गुजरात त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन दास पटेल के योगदान को बहुत महत्व देता है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। Honorable members, I have to inform that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 1st of April 2025, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Immigration and Foreigners Bill 2025 as passed by Lok Sabha, 5 hours. Consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha: the Waqf Amendment Bill 2025 as reported by the Joint Committee, the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024, 8 hours to be discussed together. The Indian Ports Bill 2025, 2 hours. The committee also recommended that the House may dispense with the lunch hour on 2nd and 3rd April 2025 and also sit late to complete the listed business on both days. That the Indian Port Bill will not be taken up during this session. That is what they said. So it is not 3 hours in this session. I just want to clarify. Your point is noted. Point is noted. Shri P.P. Sunir. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to speak on the Tribhuvandas Sahakari University Bill with a sense of concern. While the university is meant to serve the cooperative sector, its governance structure tells a different story. In true BJP fashion, decision-making is excessively centralized. The proposed governing board is packed with bureaucrats and not a single expert from the field of education has been included. What does this reveal? A government that is short-sighted, that does not recognize the importance of educational expertise in running a university, let alone one dedicated to the cooperative movement. The story of the man after whom this university is named, Tribhuvandas Krishibai Patel, is a story of grassroots empowerment. The foundations of AMUL were laid by him, and it was the technological innovations and social entrepreneurship of Varghese Kurian and H.M. Dalaiya that transformed it into a globally recognized branch. The cooperative movement was strengthened with technology and innovation by Varghese Kurian and paved the way for India's self-sufficiency in the dairy sector. That same spirit is the need of our allying the cooperative movement with the technological innovations. Sir, while the government pats itself on the back for the rise in startups in recent years, how many of these startups follow a cooperative ownership model?
What incentive has the government provided to promote cooperative-based startups? The answer remains unclear. How does the government plan to integrate technological advancements with the cooperative movement? That too remains unanswered. The government must address these concerns. Further, if the government is truly committed to honoring the cooperative movement, why has the IMRA not been named after Dr. Varghese Kudian, the architect of India's white revolution? His contributions transformed India into a self-sufficient dairy nation, and I demand that the Institute of Rural Management, Anand, be named after its founder, Dr. Varghese Kudian, as part of the bill itself. The cooperative sector cannot be strengthened through mere slogans and bureaucratic control. It needs real investment, real innovation, and real participation from those who understand both education and cooperatives. A university in name alone will not serve the movement unless it is structured to embody the true spirit of cooperation and democracy. Thank you, sir. Shri Mayank Kumar Naik. साहब धन्यवाद इस महत्वपूर्ण बिल के बारे में बोलने के लिए आज मुझे आपने मौका दिया। पहले तो मुझे कांग्रेस के मित्रों को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज अन्य परिवारों के नाम लेने के बजाय माननीय सरदार पटेल जी को आज याद करके इस सहकारिता आंदोलन में जोड़ने की बात की है, तो मैं कांग्रेस के सभी मित्रों का आज आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी की सोच है कि अंत्योदय की योजना के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी इस देश में मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए उनके तक विकास पहुंचे, इसीलिए माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय जब अलग किया तो देश के गृह मंत्री और प्रथम सहकारिता मंत्री का रूप में आदरणीय अमित भाई साहब को उन्होंने जिम्मेवारी दी और उस जिम्मेवारी को लेकर सहकारिता मंत्रालय में आमूल परिवर्तन लाके गांव को मजबूत करने के लिए सहकारिता आंदोलन के माध्यम से गांव में किसान, पशुपालन और सहकारी मंडलियों के साथ जुड़े हुए किसान और खेत मजदूर इस सहकारिता आंदोलन के अच्छे परिणाम और उनकी जो आय है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो उस दिशा में कार्य करने के लिए पूरा मंत्रालय पिछले जब से मंत्रालय बनाए तब से कार्य पे लगा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को जोड़कर उसी क्षेत्र को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसी श्रेणी में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब पेट्रोलियम क्षेत्र हो तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई थी, न्याय क्षेत्र के लिए लॉ यूनिवर्सिटी बनवाई थी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनवाई थी, कामधेनु यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसी अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने के लिए और टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और इसी क्षेत्र में स्वर्गीय त्रिभुवनदास जी पटेल जी जो सहकारी क्षेत्र में नींव रखी थी इस आंदोलन को, और 1940 में जब किसानों का शोषण हो रहा था तब उन्होंने आंदोलन माननीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में शुरू किया था। और 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की और उसी के प्रोडक्ट अमूल की जो ब्रांड है वो न केवल भारत मगर विश्व के बाजारों में भारत के किसान की बात और किसान के प्रोडक्ट सभी जगह पहुंच गई है। 1973 में अमूल की जब 25वीं सालगिरह मनाई गई तब दुनिया देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी हो चुकी थी। अमूल जो 250 लीटर दूध से शुरुआत हुई थी सहकारी डेयरी आज गुजरात में पूरे गुजरात को लेकर करोड़ों लीटर दूध आज देश में गुजरात में के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के शासन में इस
मंत्रालय के पीछे 300 करोड़ रुपए की आवंटन किया जाता था, मगर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में इस विभाग को 600 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दिया गया है और इस सहकारिता विभाग को मजबूत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जाए और देश के सभी किसान जुड़े लोगों को जोड़कर गांवों को मजबूत करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको शिक्षा और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षित करके देश को और गांव को मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया है। करोड़ों दूध उत्पादक किसान और खेत मजदूर की आमदनी इस बिल के माध्यम से जो नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण और उसके लिए सहकारिता मॉडल ये पूरे विश्व में और पूरे भारत में नंबर 1 है। गुजरात में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से सेवा सहकारी मंडली के द्वारा किसानों को 2 लाख रुपया और अभी हमारी सरकार ने 5 लाख रुपया किया है। वो 0% ब्याज पे किसानों को दिया जाता है। ये पूरे भारत में एक ऐसा हमारा स्टेट है कि पूरे किसानों को 5 लाख रुपए का ऋण 0% पे सूद पे दिया जाता है। करोड़ों किसान इस योजना के माध्यम से अपनी खेती और खेत पैदा करते हैं और खेती की उपज के लिए MSP पर जो किसान की बिक्री खरीदी की जाती है वो भी ये सहकारी मॉडल के माध्यम से की जाती है और उसकी उपज को खरीदने के लिए भी सहकारी संस्थाओं को भी ये दायित्व दिया जाता है। इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसे आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी के साथ सर्च करना और दुनिया के मार्केट में अपनी किसान की प्रोडक्ट वैल्यू एडेड करके हो जाए, वो सब ये बिल के माध्यम से टेक्नोक्रेट होके देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अभी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नई नई प्रोडक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान का मुनाफा और उसकी लागत वो पहले से ही तय हो जाती है। इसी मॉडल में इस मॉडल के कारण किसान ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी नए नए आयामों को छू सके। इसीलिए एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए नए टेक्नोक्रेट इस फील्ड में आएंगे और पूरे देश में और देश की प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में दिखाएंगे। सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध और दूध की प्रोडक्ट की तो बात हुई, मगर जो पशु है उसका गोबर को भी इकट्ठा करके उसकी बैंक बना के हमारे वहाँ एक मॉडल हुआ है कि गोबर गैस के माध्यम से CNG प्रोडक्ट करना और CNG का पेट्रोल पंप बना के 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में डाल के हमारे बनासकांठा में भी शुरू हुआ है। तो सहकारी संस्था के माध्यम से इस गोबर का भी जो किसान और किसान के गाय भैंस का जो गोबर है उनसे भी उनको आय मिल सके, इस तरह का मॉडल गुजरात में स्थापित किया है। अभी ये मॉडल के माध्यम से आधुनिक खेती हो, स्प्रिंकलर से माध्यम से किसान खेती करे जिससे पानी की बचत हो सके, नए नए प्रयोग करके सरकारी बैंक और डेयरी जैसी संस्थाओं किसानों की इनकम बढ़े, इसीलिए कार्य कर रही है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे वहाँ गुजरात में सहकारी संस्थाओं के द्वारा भी मेडिकल कॉलेज चलानी हो, स्कूल चलानी हो, कॉलेज चलानी हो या सैनिक स्कूल जैसा मॉडल भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। तो इस बिल को जिस तरह से माननीय मोदी साहब ने पेश किया है और माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब ने पेश किया है, ये बिल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए माननीय मोदी जी का जो प्रयास है और ये बिल लाया जा रहा है उसको भारत की जनता के सामने रखा जाए, संसद के माध्यम से जो रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं और मेरी गुजारिश है कि ये बिल भारत के जो किसान है और किसान के द्वारा जो पशुपालक है और पशुपालक के सिवा भी जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, शुगर फैक्ट्री है, उनमें मजबूती आएगी और आने वाले दिन में जो माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2047 में
भारत को विश्वगुरु बनाने का जो स्वप्न देखा है उसको पूरा करने के लिए ये बिल एक महत्व का बिल होगा। इसी बात के साथ मैं बिल का भरपूर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नायक साहब। श्री संजय राउत जी। धन्यवाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सर। देश में एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है और यूनिवर्सिटी को विरोध करने का कोई कारण नहीं रहता, और वो भी देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन भाई का नाम कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत आदर से लिया जाता था। उनका काम भी बड़ा है, अमूल की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर और हमारे गुजरात के सभी भाई जो भाषण कर रहे थे, वो एक व्यक्ति को भूल गए जिसका नाम है वैकुंठ मेहता। वैकुंठ मेहता जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के पायोनियर रहे, फाउंडर रहे और डोयन रहे। और वैकुंठ मेहता जी के नाम से महाराष्ट्र के पुणे में एक सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। मोहल साहब आपके कार्य क्षेत्र में है, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। और कांग्रेस की सरकार ने 1967 में बनाई है, जिसे वेमनिकॉम नाम से जाना जाता है। 70 साल से काम कर रही है। 70 साल से ये वो काम कर रहे हैं जो मंत्री जी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अभी करना चाहते हैं। आप गिन लीजिए, बाद में हम बैठेंगे। वैकुंठ मेहता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और विश्व के लगभग 40 देशों के साथ उनका नेटवर्क है। पुणे के सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन है। जो युवा कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में अपना करियर करना चाहते हैं, उनके लिए सभी एजुकेशनल फैसिलिटीज उस वेनिकॉम में आज भी है। तो मेरा कहना है, एक नई यूनिवर्सिटी बन रही, स्वागत है, लेकिन ये भी एक यूनिवर्सिटी है, उनको भी आप कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का दर्जा देने अगर प्रयत्न करते तो 2 यूनिवर्सिटी हो जाती। वैकुंठ भाई गुजरात से थे। त्रिभुवन पटेल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है? टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी फैकल्टीज वैकुंठ मेहता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में चल रही है। उनका प्रोग्राम देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, हाउसिंग कोऑपरेटिंग, डेयरी मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव लॉ, शुगर, फॉरेस्ट, कंप्यूटर्स, ये सभी सब्जेक्ट वैकुंठ इंस्टीट्यूट में आज भी पढ़ाए जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंस्टीट्यूट कंसल्टेंट फॉर इवैल्यूएटिंग द वुमेन्स डेयरी प्रोजेक्ट। देश का बेस्ट कोऑपरेटिव जनरल यहाँ से निकलता है। समाप्त करें माननीय। यहाँ हॉस्टल है और हॉस्टल में 200 कमरे हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए, और क्या चाहिए। ये सबसे बड़ा काम यहाँ चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि त्रिभुवन पटेल यूनिवर्सिटी देश के लिए एक मार्गदर्शक रहेगी, अच्छा काम करेगा। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उसके साथ साथ वैकुंठ भाई कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो चल रहा है इस देश में, उनको भी उस यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएट करिए और एक बड़ी यूनिवर्सिटी देश के लिए, हमारे एक युवा जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी एक योगदान रहेगा। उसके साथ मैं आभार व्यक्त करता, आपने मुझे धन्यवाद बहुत बहुत। श्री अनिल सुखदेवराव बोंडे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज त्रिभुवन सहकारिता विधेयक विद्यापीठ का विधेयक है, वो विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका लक्ष्य सहकार से समृद्धि है, और वो पूरा करने के लिए हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह, और मैं नाम लेना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोळ, इन्होंने जो ये बिल लाया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। और
प्रधानमंत्री जी का इतना सहकारिता के ऊपर ख्याल है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 के लिए अभी 6 मार्च 2025 को उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें सहकारिता मंत्री थे, सहकारिता राज्य मंत्री थे, सेक्रेटरीज थे, और सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रामीण की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए और यूथ और महिलाओं को प्रायोरिटाइज करने के लिए कोऑपरेशन पॉलिसी में क्या बदलाव कर सकते हैं और नई पॉलिसी कैसे ला सकते हैं, वो भी सहकार से समृद्धि की। और इस सहकार के समृद्धि की जो पॉलिसी है, इसमें सब कुछ आ रहा है। अभिमान की बात ऐसी है कि जिन्होंने सहकारिता की नींव रखी, ऐसे वैकुंठ जी मेहता रहो या त्रिभुवन जी पटेल रहो या हमारे महाराष्ट्र में सहकार महर्षि बहुत सारे हो गए, धनंजय जी गाडगे भी हुए, विठलराव विखे पाटिल हुए, ये सहकार महर्षि उन्होंने उस वक्त से सहकार से समृद्धि लाने की कोशिश की। और आज त्रिभुवन काका पटेल, इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी हो रही है, वो यूनिवर्सिटी सच में उनका सम्मान कर रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को सच में पूछना चाहता हूँ कि इतने 70 साल में जिन्होंने अमूल का ब्रांड बनाया, उनका सम्मान करने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का उनके दिमाग में कभी नहीं आया। ऐका संजयजी राऊत, तुम्हाला आपल्याला जर चांगलं दिसत असेल, सर्वात महत्वाची गोष्ट आपको पता है कि वैकुंठ जी मेहता इनके नाम से इंस्टीट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कांग्रेस ने, इंस्टीट्यूट बनाया। और आप अभी डिमांड कर रहे हैं कि उसको एफिलिएट कीजिए, उसको यूनिवर्सिटी बनाइए, आपके भी दिमाग में नहीं आया। और कांग्रेस के दिमाग में तो वैकुंठ जी मेहता इनका भी सम्मान करने का नहीं आया। और पहली बार ये सम्मान मिल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी अनोखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रहती है, सरकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स ओन काइंड, ये पहली बार पूरे भारत देश में पहली यूनिवर्सिटी हो रही है। ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, कारपोरेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका फंडिंग भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से होने वाला है, इसका फंडिंग भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से रहेगा। और महत्वपूर्ण बात आपने समझना चाहिए कि ये कोऑपरेशन अभी ग्लोबल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डेफिनेटली स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सभी स्टेट में सहकार उतना समृद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि आज सहकार के माध्यम से हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जाना पड़ेगा। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जाना पड़ेगा तो नॉलेज, इनोवेशन, रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त सहकार, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें जब हम सहकार में लाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसमें रूल्स और रेगुलेशन टू बिकम ट्रांसपेरेंट लाएंगे, तभी हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के में एंट्री कर सकते हैं। और ये सब चीजों के लिए जो पहल की है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, उसके लिए मैं सहकार मंत्री जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। सहकार से समृद्धि मोदी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने करके रखी है। 63,000 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, पैक्स सब गांव में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। अब ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करना, ये अभी तक हुआ नहीं मोदी जी के पहले। ये सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, पूरा उसका डाटा लेना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना, सभी को एक ही सॉफ्टवेयर देना, और सभी का जो कार्यभार रहेगा वो पूरे ग्लोबल नेटवर्क में रखना। कितना इन्वेस्टमेंट? 2516 करोड़, 2516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हम सिर्फ जानते थे, मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूँ, सहकार से ही आता हूँ, और हम जानते थे कि सिर्फ खेती का कर्जा देने के लिए रहती थी। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। अभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जनऔषधि भी ले सकती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पेट्रोल पंप भी ले सकती है,
कॉमन सर्विस सेंटर ये भी 30,000 प्राइमरी पैक्स को दिए गए, 5,000 तो जनऔषधि केंद्र है, और प्रधानमंत्री केंद्र जिसमें खाद भी बेचा जाता और अनाज भी खरीदा जा सकता, वो भी पैक्स कर रही है। यानी 28 काम इनको दिए जा सकते। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इन्होंने, मोदी सरकार ने सर्टिफाइड सीड, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट, ये तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण की है, और नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारण इसमें तीन प्रकार की निर्माण की है। तो उसके कारण जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड का कर रहे हैं, उनको वहां से हेल्प अच्छी तरह से मिल सकती है। मैं सभापति महोदय, ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बाकी के ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से बहुत सारी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस आता है, फंडिंग कभी कभी मिलता नहीं, आउटडेटेड करिकुलम रहता है जिसका कोई संबंध नहीं रहता जीवन से। लेकिन ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, एक कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी स्टेक होल्डर्स जो है ये सोसाइटी में से आ रहे हैं, ये सहकारिता में से आ रहे हैं, ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर से इक्विटी उसमें ली जा सकती है। ये पहली इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, और इसके डिफरेंसेस बिल्कुल डेफिनेटली समय मिला तो मैं बताऊंगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और कोऑपरेटिव्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा रोल रह सकता है। देखो, सहकारिता बहुत पहले से आई, लेकिन सहकार क्षेत्र में जो लोग ईमानदार थे, जिन्होंने सोसाइटीज भ्रष्टाचार मुक्त रखी, वो लोग अच्छे से प्रगत हो सके। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता था। 112 करोड़ रुपए वार्षिक बजट रहता था। अभी सेंट्रल का बजट 10 गुना है, 1012, और डेयरी सहकार स्कीम 5,000 करोड़ की अलग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 अलग, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट का फंड आ रहा। यानी ये सब चीजें जब हो रही है तब इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना भी रहती है। यानी सभापति महोदय, सहकार से समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सहकार से स्वाहाकार नहीं होना चाहिए, और उसके लिए 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 का था, उसको अमेंडमेंट मोदी जी के सरकार ने लाई है। उसमें दो चीजें होती है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी ट्रांसपेरेंसी आती है, आर्थिक व्यवहार में भी ट्रांसपेरेंसी आती है, और उसके वजह से बहुत सारी जो पैक्स थी, बहुत सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो स्टैग्नेंट हुई थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे तरह से काम करने लगी है। सभापति महोदय, ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी करेंगी क्या? ये करेंगी कोऑपरेटिव लीडरशिप की कैपेसिटी बिल्डिंग। जो नेतृत्व करने वाले, उनको ग्लोबल एटमॉस्फेयर मालूम होना चाहिए कि यूएस में, यूके में कोऑपरेटिव में क्या चल रहा है और कमर्शियल कंपनीज में क्या चल रहा है। बेसिकली रूरल से अटैच करने के लिए जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन यह करने के लिए ये यूनिवर्सिटी का बड़ा काम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्किल डेवलपमेंट करना है कोऑपरेटिव में, विभिन्न प्रकार के, सिर्फ कृषि के हिसाब से ही नहीं। मुझे दिग्विजय सिंह साहब बोल रहे थे तब आश्चर्य लगा कि उन्होंने बोला कि कृषि मंत्रालय में ये मंत्रालय था। साहब, मंत्रालय नहीं था, ये डिपार्टमेंट था, सहकार डिपार्टमेंट था। अब सेपरेट मंत्रालय मिलना, उसको सेक्रेटरी खुद का मिलना, ये बहुत बड़ी बात है कि सहकार मंत्रालय मिला, नहीं तो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रहता था। मोदी जी ने दो इम्पोर्टेंट काम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किए हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का भी विशेष मंत्रालय बना दिया,
उसका एक मंत्री बना दिया, वैसा ही सहकारिता मंत्री बना दिया और वो भी ताकतवान मंत्री बना दिया। और सहकारिता में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, हाउसिंग भी आता, एग्रीकल्चर फिशरी भी आती, एनिमल हस्बेंड्री भी आती, इवन घास उगाने वाले भी एग्रीकल्चर अपना यूनिट बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव में ये यूनिवर्सिटी काम करेंगी। भारतीय कोऑपरेटिव संस्थाएं, सहकारी संस्था है, उनका कितना ग्लोबल कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टेक है वो बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, स्पेशली यूएस, यूरोप और G20 देश जो एशिया के देश है। एंड इंटीग्रेशन विद द नेशनल डेवलपमेंट गोल, हमारा गोल क्या है? विकसित भारत 2047 तक। वो विकसित भारत का गोल निर्माण करने के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। इंक्रीज बजट एलोकेशन के साथ में पूरा नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन भी सही करना चाहिए, उसको फंडिंग भी करना चाहिए। और टैक्स एग्जेम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 155 में शुगर कोऑपरेटिव मिल जो थी महाराष्ट्र की, 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स उनका बकाया था। यानी सभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, सहकारिता मंत्री अमित जी शाह इनके पास में गए, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वो शुगर मिल भरते थे तो चला ही नहीं सकते थे शुगर मिल। ये 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पूरा माफ करने का काम माननीय अमित जी शाह इन्होंने किया। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट NCDC के माध्यम से ये कोऑपरेटिव शुगर मिल यह मजबूत करने का काम किया। और 1 करोड़ के ऊपर इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लगता था 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, वो 12% से 7% किया। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट फ्रॉम कोऑपरेटिव्स वो कंपनी से कंपेयर करके जो 18.5% था वो 15% तक लाया गया। अभी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ या 1 करोड़ से 3 करोड़ का पैसे बैंक में से निकाल सकती है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स और TDS, वी कैन सी TDS के सिवाय वो निकाल सकती है। अध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव सेक्टर इतना बड़ा है और उसके माध्यम से अच्छे से समृद्धि हो सकती है। आज संत तुकाराम, महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ संत तुकाराम कहते थे, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, आणि सर्वजन मिळून सब जन मिलके हम समृद्ध होंगे, ऐसा उनका कहना था। और वही माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी सरकार का, मोदी जी का, अमित जी शाह इनका, पूरे सरकार का एक ही ध्येय है, एक ही विचार है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। अंत्योदय और महिलाओं की एक ही पुकार है कि उन्नति का मार्ग है सिर्फ सहकार, समृद्धि का एक ही मार्ग है ज्ञान और तंत्रज्ञान युक्त संपन्न पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट सहकार। इसलिए मैं त्रिभुवन काका पटेल इनके नाम से जो सहकारी विद्यापीठ हो रहा है, वह सहकारी विद्यापीठ एक बड़ी स्टेप है विकसित भारत के लिए। ए नेशनल लीडर कोऑपरेटिव सेक्टर में निर्माण करने की स्टेप है। इसलिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और सहकार मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। दोनों हमारे राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोळ और सहकार मंत्री अमित जी शाह, इनका अभिनंदन करता हूं। और विकसित भारत के लिए हम सब ग्रामीण इलाकों के युवा, महिला, गरीब लोग सहकार के माध्यम से भारत को समृद्ध बनाएंगे, यह संकल्प करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर फौजिया खान अनुपस्थित। श्री सतनाम सिंह संधू। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का अवसर दिया। सभापति जी,
इस विषय के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और एजुकेशनिस्ट भी हूं। किसान का बेटा होने के नाते मैंने बचपन से लेकर अपने घर में अपने दादाजी से लेकर सहकारिता लहर के साथ काम किया है, इसको देखा है, इसको जिया है। और पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन में सेवा कर रहा हूँ, एजुकेशन को जी रहा हूँ। और मुझे अपने जीवन में 2 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का अवसर भी मिला है। और मुझे लगता है कि इस विषय पे बोलने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब विषय है। चेयरमैन सर, ये एक ऐतिहासिक मौका है जब भारत विश्व की पहली डोमेन स्पेसिफिक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। निश्चित तौर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही भारत कोऑपरेटिव क्षेत्र में विश्व का एक सबसे बड़ा थॉट लीडर बनकर उभरेगा। चेयरमैन साहब, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि सहकारिता का ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। यह दुनिया की पहली फुल फ्लेज कोऑपरेटिव डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होगी जहां कोऑपरेटिव फाइनेंस, एग्री बिजनेस, डिजिटल कोऑपरेटिव और स्टार्टअप पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करवाए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग भी करेगा, जिससे भारत की सहकारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर पहचान बना पाएंगी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से कोऑपरेटिव सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी, प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा, कॉम्पिटेंट लीडरशिप पैदा होगी और वर्ल्ड क्लास रिसर्च के साथ नए अवसर भी पैदा होंगे। यह बिल सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एम्पावर करना, उनके ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट बनाना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना भी रहेगा। सभापति जी, भारत में सहकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भले ही देश में पहला सहकारी कानून 1904 में आया, लेकिन भारत में सहकारिता की जड़ें 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आदिकाल से ही सहकारिता हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। भारतीय समाज की संरचना ही आपसी सहयोग पर आधारित रही है। हमारे गांव, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सामाजिक ढांचा सब कुछ सहकारिता पर आधारित रहा है। जब देश में बैंकिंग सिस्टम मजबूत नहीं था, तब सहकारिता ही थी जिसने भारत की आर्थिक प्रगति और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए को संभव बनाया। भारत के सहकारी मॉडल को आज हार्वर्ड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक संस्थान केस स्टडी के रूप में पढ़ा रहे हैं। ये हमारे सहकारी आंदोलन की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभापति जी, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मजबूत लीडरशिप का परिणाम है कि भारत आज विश्व का कोऑपरेटिव लीडर बनकर उभर रहा है। मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिससे भारत में सहकारी संस्थानों को नई मजबूती मिली। साथ ही श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए। सहकारी आंदोलन हमेशा ही भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का आधार बना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इसने अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति के रूप में देखा। स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलन ने लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया और भारत के विकास मॉडल को जन जन तक पहुंचाया। सभापति जी, जब भी भारत में सहकारी आंदोलन की बात होती है तो गुजरात इसका रोल मॉडल बनकर उभरता है। 1946 में सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया और यहीं से अमूल की नींव रखी गई। आज अमूल न केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन के उभरा है।
देश में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी सहकारी मॉडल से में बेहतरीन सफलता हासिल की है। मेरा अपना गृह राज्य पंजाब कोऑपरेटिव्स का गौरवशाली इतिहास संजोए बैठा है, जो करीब 150 साल पुराना है। सभापति जी, पंजाब का मिल्कफेड, मार्कफेड और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसी पंजाब की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ने देश में आज सफलता की नई मिसालें कायम की हैं। अमूल के बाद पंजाब का वेरका देश का दूसरा बड़ा डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड है। सभापति जी, जैसे जैसे देश विकास की राह पर आगे बढ़ा, वैसे वैसे देश में सहकारिता भी मजबूत होती गई, लेकिन इसके चलते कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे सहकारिता आंदोलन को ठेस पहुंचने लगी। सहकारिता आंदोलन को झटके देने के बाद देश का कोऑपरेटिव सेक्टर कुछ परिवारों और दलों के हाथ में भी आ गया। आदर्श घोटाला, NDCCB घोटाला, पुलपली घोटाला, ना जाने ऐसे कितने घोटाले में एक के बाद एक कितने घोटालों को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोऑपरेटिव की अहमियत को पहचाना और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ के प्रोजेक्ट एलोकेट किए, जिससे किसानों को डिजिटल लेन देन और ट्रांसपेरेंसी का लाभ मिलेगा। पैक्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में बदलने की योजना किसानों को सीधे बाजार में जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाने का एक जरिया बनेगी। इतना ही नहीं, NCDC के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों के लिए 10,000 करोड़ का लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब और किसान समर्थक नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फूड स्टोरेज स्कीम को लागू करने जा रहा है, जिसमें कृषि उत्पादन का एफिशिएंट स्टोरेज हो पाएगा और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत भी मिल पाएगी। पैक्स के तहत 2000 जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। मोलासेस पर GST को 28% घटाकर 5% करने का निर्णय भी किसानों और शराब उद्योग के लिए लाभकारी साबित हुआ है। इसके अलावा पैक्स को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से जोड़ा गया है, जिससे सहकारी समितियां पानी समितियां बन गई हैं और जल संरक्षण और में भी योगदान दे रही हैं। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोऑपरेटिव सेक्टर को सशक्त बनाने का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभापति जी, आज भारत में सहकारिता की लहर चल रही है। देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी सभाएं हैं, जिनमें 30 करोड़ से अधिक लोग सदस्य हैं। यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। सहकारिता का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान भी बहुत विशाल है। इफ्को और अमूल जैसे ब्रांड्स दुनिया के सबसे बड़े सहकारी संस्थानों में शामिल हैं और दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। साथ ही भारत का डेयरी उद्योग 30 लाख से अधिक किसानों को डायरेक्टली जोड़ता भी है। इसी प्रकार फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स ने भारत के कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र को प्रोफेशनल रूप में से संगठित करेगा, इसे नए युग की तकनीकों से जोड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों का सहकारिता क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार करेगा। सभापति जी, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारत के सहकारी आंदोलन के नए युग की शुरुआत है। जब 2025 में पूरा विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मना रहा होगा, तब यह विश्वविद्यालय भारत को सहकारिता क्षेत्र में ग्लोबल सुपर पावर बनाने का कार्य करेगा। सभापति जी, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे ये पक्का विश्वास है कि विश्वविद्यालय में AI
ब्लॉकचेन, IoT जैसी आधुनिक तकनीकों का शामिल किया जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों की पारदर्शिता और कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी भी बनाई जाएगी, ताकि सहकारिता क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। विश्वविद्यालय में कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स और एग्री टेक इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल पाएँ। मेरा ये भी मानना है कि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट रेजिलिएंट कोऑपरेटिव्स पर भी विशेष पाठ्यक्रम लाया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर सकेंगे। यह विधेयक सिर्फ सहकारी शिक्षा को ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के मूल्यों, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुझे खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप। श्री मस्तान राव यादव बेड़ा। Sir, thank you, sir. Respected Vice Chairman, sir. I, on behalf of our party, Telugu Desam Party, and our leader and Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, stand here to speak on the Tribhuvan Sahakari University Bill 2025. Sir, from around 5,000 societies in 1911 to more than 8 lakh societies at present, sir. Cooperatives across India serve an important role in the independence of our country, and particularly for rural development, financial inclusion, empowerment of marginalized communities. Andhra Pradesh and cooperatives, sir. Andhra Pradesh has a rich history of cooperative development with a strong network of agriculture, dairy and trade cooperatives. The state has witnessed significant success in leveraging cooperatives to promote rural development and empower marginalized communities. Our party founder, Sri Nandamuri Taraka Ramarao Garu, believed in the power of cooperatives, even introducing important legislation regarding the cooperatives, the Andhra Pradesh Mutually Aided Cooperative Society Act 1995, with a target of promoting self-reliant, responsible, accountable and autonomous cooperative societies with their own bylaws, thereby making the cooperative movement more vibrant. Srija Mahila Producer Company. One shining example of cooperatives in my state of Andhra Pradesh is the Srija Mahila Milk Producer Company. It stands as a success story of female-centric socio-economic empowerment within the dairy sector, globally recognized as the largest women-owned and woman-managed entity of its kind. Commencing operation with a modest membership of 27, it has achieved a remarkable expansion. Currently, a shareholder base of 109,000 women, all of whom are rural cattle rearing practitioners. Sir, Andhra Pradesh has more than 17,000 cooperatives at present spread across the state. They would all benefit from training programs and the detailed educational assistance from established institutions such as the proposed Tribhuvan Sahakari University, sir. Sir, I would like to urge the Honorable Minister through you, sir, to consider establishing such college or institution in our new capital city of Andhra Pradesh, Amaravati, sir. Sir, here I want to bring it to our kind notice. Here, while speaking, YSRCP Honorable MP, Sri Ayodhya Ramareddy Garu made some false allegations in this house, sir. I strongly refute misleading and factually incorrect statements, sir, made by him during his speech on this bill, sir, regarding the resignation of Vice Chancellors and alleged removal of English medium education in Andhra Pradesh. The claim that 17 Vice Chancellors were forced to resign by the current government is completely false and baseless, sir. Out of 17 resignations, 10 were due to personal reasons, 2 wishes of... Sir, one option. Please, sir.
2 VCs voluntarily stepped out. समय समाप्त हो गया आपका, धन्यवाद। श्री सुभाष बराला, allegation that समय समाप्त हो गया आपका। श्री सुभाष बराला। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे 3 minutes, I have given 4 minutes, please sit down। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और आज और मुझे खास करके इसलिए भी खुशी है कि मैं छात्र राजनीति के बाद जब अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आया तो 1995 में मुझे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मैं अपने क्षेत्र में शुगर मिल का डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन, हरियाणा शुगर फेडरेशन का डायरेक्टर, उसके नाते इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर सामने रहती थी। तब लगता था कि हमारा जो परिवेश है, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उपसभापति महोदय, और आप भी उसी प्रकार के क्षेत्र से आते हैं। हमने देखा है, बड़ा नजदीक से देखा है कि किस प्रकार से सहकार तो हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा हो और भारत की भागीदारी, हमारे हिंदुस्तान की भागीदारी उसमें लगभग 25% की हो और उसके अंदर कुछ नया करने का कोई योजना बनाने वाला व्यक्ति ना हो, तो लगता था कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम अगर बात करें तो हम किसान परिवार से आते हैं, हम देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की और गांव की अर्थव्यवस्था अपने आप में सहकार के माध्यम से चलती थी। किसान अपने खेत के अंदर काम करता था, बीज उसका अपना होता था, हल भी उसका अपना होता था, उसको बाकी औजारों की जरूरत पड़ती थी तो लोहार गांव के अंदर था, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत होती थी वो उसको गांव के अंदर मिल जाती थी। तेई, धोबी, नाई, इन सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, सारी की सारी कृषि क्षेत्र के ऊपर आधारित थी, उस सहकार के भावना से चलती थी। और किसान के घर के अंदर भी जब पहली बार अनाज आता था खेत से निकल करके, वो सब लोगों के अंदर आवश्यकता अनुसार जितना उनसे काम लेता था उसको बांटने का काम करता था। जब हमारी संस्कृति में ही सहकार रचा बसा है तो उस क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सालों साल पहले प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात इसके बारे में सोचा नहीं गया। यह विधेयक स्वाधीन भारत के 75 साल बाद आ रहा है, तो इसलिए इससे इसका अपने आप में बहुत महत्व बढ़ जाता है। और सौभाग्यवश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी दूरदृष्टि के चलते इसके महत्व को समझा गया और वर्ष 2021 में इसे एक मामूली से विभाग के स्थान पर स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया। महोदय, अभी हम सब लोग देख रहे थे कि अनेकों बार इसी सभा में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात बड़े जोर शोर से की जाती रही, लेकिन जब इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का बिल जब इस हाउस में आने से लेकर के अब तक की चर्चा की बात करें तो कितनी ही आलोचनाएं इस बिल की हुई है। कोई इसके नाम को लेकर के, क्योंकि त्रिभुवन जो नाम है उस नाम से जो परिचित नहीं है उनके मन के अंदर तरह तरह की शंकाएं थी। हम यहाँ चर्चा भी कुछ ऐसे लोगों की सुन रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है
कि जहां तक त्रिभुवन सरकारी विधेयक 2025 के शीर्षक और अंतर वस्तु को लेकर के जिस प्रकार की चर्चाएं थी, लेकिन यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं, जो इसके पक्ष के अंदर जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, उन्होंने मेरे से पहले भी बहुत विस्तार से इस बात को मान्यवर रखा है कि किस प्रकार से ये बिल है, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी काम करेगी और किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। त्रिभुवन जी का उल्लेख मेरे से पूर्व के बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी और भारत में सहकारी आंदोलन के जनक त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल के नाम के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है। महोदय, सभा के लिए यह भी बहुत गौरव की बात है कि त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल 1967 से लेकर के 1974 के बीच 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्हें असाधारण समाज सेवा के लिए 1963 में मैगसेसे पुरस्कार और 1964 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। मान्यवर, 1895 में गठित ICA यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो रिकॉर्ड है वो ये दिखाता है कि भारत सहित 105 देश इसके सदस्य हैं। कुल 306 से अधिक सहकारी संगठन इसके सदस्य हैं और भारत से भी 18 संगठन ICA के सदस्य हैं। इस संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यदि विश्व में कुल 30 लाख सहकारी समितियां हैं तो उसमें 8,54,000 सहकारी समितियां अकेले भारत में हैं, जो दुनिया का लगभग 25% इसका आंकड़ा बैठता है। तो जब इतना बड़ा ये क्षेत्र है तो फिर इस क्षेत्र को ठीक प्रकार से दिशा देने का काम में कहां दिक्कत आती है, कहां हमारे इधर के विद्वान सदस्यों को इस बात से तकलीफ होती है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना करके और जो एक काम इस मंत्रालय के माध्यम से माननीय शुरू हुआ, चाहे हम FPO की बात करें या सहकारी बैंकों को या पैक्सों को, अन्य ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे बैंकों को, उनका कंप्यूटरीकरण करने की बात हो। और बड़े खुशी की बात है कि पैक्सों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 2516 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया और ये टारगेट रखा गया कि प्रशिक्षित युवा आगे आए। जब इस प्रकार का टारगेट सेट किया गया, जब इस प्रकार के काम को करने का लक्ष्य सामने रखा गया, तो फिर यह जरूरी भी हो जाता है कि इस प्रकार के काम के लिए, ऐसे प्रशिक्षण के लिए कुछ ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहां से युवा निकल करके आए और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से कोऑपरेटिव का काम चल रहा है उससे भी आगे बढ़ करके देश में कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूत करने का काम करे और पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इसकी आलोचना नहीं, मैं कहता हूं इधर के साथियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं आगे इस विषय में माननीय आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें ICA के यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय भारतवर्ष के अंदर है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सहकारी संस्था IFCO विश्व रैंकिंग में महोदय पहले स्थान पर आई है, अमूल को दूसरा स्थान मिला है और क्रिब को 6ठे स्थान पर रही है। अगर ये सरकार जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के विजन के आधार पर चलती है और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है
कि ये जो इस प्रकार के आंकड़े आज हम लोगों को दिखाई देते हैं, हमारे 3 बड़े इस प्रकार के संस्थान दुनिया के अंदर पहले 3 स्थान बनाए हुए हैं। अगर इसी गति से हम लोग आगे लगे रहे तो निश्चित रूप से और ज्यादा हमारे संस्थान दुनिया के इन 10 नंबरों के अंदर अपना स्थान अंकित करेंगे। तो मैं माननीय उपसभापति महोदय अपनी बात को समाप्त करते हुए ये अनुरोध करना चाहूंगा हाउस से कि इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण बिल जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको पास करें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे सहकार के क्षेत्र को दुनिया के अंदर और आगे लेकर के जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नरेश बंसल। श्री नरेश बंसल। धन्यवाद उपसभापति जी। आज बड़ा महत्वपूर्ण बिल त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के स्थापित होने का आया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति जी, मैं बैंक में नौकरी करता था, उसको छोड़कर जब राजनीति में आया तो मुझे सबसे पहला काम सहकारिता प्रकोष्ठ का मिला। उसके प्रदेश महामंत्री के रूप में मैंने काम राजनीति में प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँचा हूँ। सहकारिता से मेरा विशेष लगाव भी है और सहकारिता हमारी संस्कृति का एक अंग है। भारत जब विश्वगुरु भी था, संपन्न था, तब भी सहकारिता से सब काम होते थे। मैं तो ध्यान देता हूं तो भगवान राम ने लंका पर जब विजय प्राप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया तो वो सेतु भी सहकारिता के आधार पर बना। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने सब ग्वालों को साथ में लेकर गोवर्धन उठाया तो वो सहकारिता का रूप है। युगानुकूल परिवर्तन हमारी संस्कृति का अंग है। आज के युग में क्योंकि 2047 में हमने वो वैभव प्राप्त करना है जो हमारा पुराना वैभव था, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो उसकी तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब हम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के आधार पर जहां देश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, ग्रामीण भारत का आर्थिक उन्नयन होगा, अंत्योदय का विकास होगा, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि मिलेगी, तो उसके लिए, उसके प्रबंधन के लिए ऐसे युवकों की, ऐसी बेटियों की, महिलाओं की आवश्यकता होगी जो उसके प्रबंधन में योगदान दे सके। आनंद में इरमा के नाम से रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पहले से था, उससे जो मैनेजमेंट स्कूल से जो बच्चे निकलते थे पढ़ करके, उनका उस क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बड़ा योगदान कोऑपरेटिव में है। अमूल को भी बहुत सारे वहां से निकले हुए युवक मिले जिन्होंने अमूल के विकास में योगदान दिया, लेकिन अब और अधिक उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जैसी विश्व स्तर पर स्थिति है, विश्व स्तर पर चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए और अधिक ज्ञान संपन्न और अधिक कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से हमारे छात्र छात्राएं हों, इस उद्देश्य को रख करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि पहला कोऑपरेटिव सेक्टर का यह विश्वविद्यालय बन रहा है। यह कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यह सहकारी विश्वविद्यालय है, सहकारिता के क्षेत्र के लिए है।
इसका उद्देश्य ही है सहकारिता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, छात्रों को उद्यमशीलता और आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शोध और सदाचार को सहयोगित करना। इस प्रकार से सहयोग और नवाचार को सहयोगित करना। इस विश्वविद्यालय के द्वारा उपसभापति जी सहकारी प्रबंधन, कृषि, वित्त और ग्रामीण विकास से जुड़े पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में होंगे। इन सारे पाठ्यक्रमों को से प्रशिक्षित होकर के जो युवा निकलेंगे उनको एक अच्छे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में एक पारदर्शी प्रबंधन होगा, एक मितव्ययी प्रबंधन होगा, जिससे सहकारिता के क्षेत्र से सहकार से समृद्धि का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वह सपना भी पूरा होगा। सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ेंगे तो उसके लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को सहकारी दृष्टिकोण से यह विश्वविद्यालय जोड़ेगा। डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। सहकारी संस्थाओं के साथ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, व्यवहारिक प्रशिक्षण है, वह भी अनिवार्य रूप से होगा और इसका व्यापक प्रभाव राष्ट्र और सामाजिक जीवन पर होने वाला है। भारत में सहकारी आंदोलन को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तक सामान्य रूप में माना जाता है, क्योंकि सहकारिता का आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ा फला फूला है, तो लोग मानते हैं कि सहकारी बैंक, शुगर मिल, लेकिन आज व्यापक रूप से टेक्सटाइल हो, जन औषधि केंद्र हो, सामान्य सुविधा केंद्र हो, पेट्रोल पंप हो, सीएनजी का हो, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो 60,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये पूरे देश भर में हो रहा है। और अब उसके साथ इतनी चीजें और जुड़ गई हैं कि विभिन्न बहुउद्देश्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन रही हैं। तो व्यापक उसका क्षेत्र हो रहा है। उस व्यापक क्षेत्र के लिए वैसे प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। यह यूनिवर्सिटी उस उद्देश्य को भी पूरा करेगी। भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहकारी शिक्षा अपना योगदान देगी। कृषि, दुग्ध उत्पादन, कुटीर उद्योग आदि में नवाचार और सतत विकास ये होगा। उपसभापति जी, महिलाओं के योगदान की जहां तक बात है, मैं उत्तराखंड से आता हूं। वहां पर लखपति दीदी वाले कार्यक्रम में, जहां पूरे देश भर में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक प्रकार से सहकारिता का ही काम है, क्योंकि 10-11 महिलाएं एक ग्रुप बनाती हैं। वो छोटी सोसाइटी बनती है, गांव में होती है, छोटा कारोबार करती है। कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते हैं, कोई कढ़ाई का काम करते हैं, कोई बुनाई का काम करते हैं। मैं अनेक रोजगार मेलों में जाता हूं, देखता हूं किस प्रकार से वो लाखों रुपए साल हमारी माताएं बहनें उससे कमा रही हैं। और सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे में समन्वय करते हुए कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसमें उनको ऋण देते हैं। 5 लाख रुपए तक का ऋण आज 0% पर उनको मिल रहा है, जिससे काम आगे बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र में मिलट्स होता है, तो मिलट्स की कुकीज बनाने की फैक्ट्री अभी लगी है। एलईडी के बल्ब कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहे हैं, शॉल बन रहे हैं। तो इस प्रकार से निरंतर ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये सहकारी विश्वविद्यालय एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन को, सहकार से जो समृद्धि का सरकार का लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चल रहा है।
इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सहकारी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2013-14 में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट का आवंटन 122 करोड़ रुपए था, जिसके कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी और महाराष्ट्र में 101 सहकारी चीनी मिलें बंद हो गई। इसके विपरीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने जो पहले सहकारिता एक कृषि मंत्रालय का एक भाग होता था, उससे अलग सहकारिता मंत्रालय बना करके इस पर जो विशेष ध्यान दिया है और हमारे अमित भाई इसके मंत्री बने हैं, तो 2021 में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इस क्षेत्र के लिए बजट 1183.39 करोड़ कर दिया, जो यूपीए सरकार के बजट से 9.7 गुना ज्यादा है। इसके अलावा डेयरी सहकारी योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों के और किसान उत्पादक संगठनों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना में आवंटित राशि का दुगुना है। यह महत्वाकांक्षी विधेयक सरकार की सहकारी ढांचे को मजबूत कर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विशिष्ट शिक्षा को मजबूत करना, मोदी सरकार मुख्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करके भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को सक्रिय रूप से परिवर्तित कर रही है। उपाध्यक्ष जी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जिसे IRMA से विकसित किया जाएगा, सहकारी क्षेत्र की शिक्षा पर केंद्रित होगा और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे IRMA लंबे समय से अमूल जैसी भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाओं को प्रतिभा प्रदान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से आनंद का जो रूरल मैनेजमेंट कॉलेज है, मैनेजमेंट संस्थान है, वो जिस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है और अमूल को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है, इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश विदेश के छात्र भी पढ़ने के लिए आएंगे और वो उनका जो प्रशिक्षण होगा, वो प्रशिक्षित युवक युवतियां पूरे देश भर में विदेशी इंटरेक्शन करते हुए विदेशों से भी उनसे भी चर्चा विचार विमर्श करते हुए नई एक सहकारिता के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान होगा। जिस तरह से गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग के अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, उसी प्रकार से पुलिसिंग का अध्ययन का सशक्त केंद्र बना हुआ है लद्दाख में स्थित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान, ऊर्जा और लोक नीति में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं और विश्वविद्यालय इसीलिए होते हैं कि वो इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि भविष्य में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वो ठीक प्रकार से समाधान कर सके। तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ये भविष्य में आने वाली जो सहकारिता के क्षेत्र की चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने में युवक युवतियों को सहायता प्रदान करेगा। यह संस्थान केवल शैक्षणिक केंद्र ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन में भी प्रमुख स्रोत है, जो छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान कर उन्हें भारत के आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सीधे योगदान के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली रोजगार के अवसर पर क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो।
सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्यान्वयन करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा विधायी और नीतिगत कार्रवाई आधारित शासन का समर्थन किया है। सरकार की यह दूरदृष्टि सहकारी क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है। वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में प्रशासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना था। वर्तमान विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार देश में सहकारी आंदोलन को संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ सहकारी क्षेत्र में कुशल कार्यस्थल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्षमता निर्माण पर इस विशेष ध्यान से न केवल तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यह हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाते हुए सहकारी शासन में अधिक भागीदारी अवसर प्रदान करेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, बस 30 सेकंड में। माननीय उपाध्यक्ष जी, मानव संसाधन के निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों का क्षमता निर्माण वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में भारत की जनसांख्यिकी संपदा का लाभ उठाने और अमृत पीढ़ी को सक्षम बनाकर विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने का विशेष प्रयास इसके माध्यम से होगा। अंत में मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि जिस सद्भावना से और सहकार से समृद्धि और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाया गया है, इसका सब लोग स्वागत करें और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। Will speak in Telugu. Thank you, sir. I am speaking Telugu. త్రిభువన్ సహకారి విశ్వవిద్యాలయ బిల్లు 2025పై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను సార్. సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి విద్య పరిశోధన సార్ 5 minutes సార్ విద్య పరిశోధన నైపుణ్యాభివృద్ధి ఎంతో అవసరం. ఈ కోణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ బిల్లును నేను సమర్థిస్తున్నాను. ఈ బిల్లుకు కేటాయించిన 1122 కోట్ల నిధులు సహకార రంగ అభివృద్ధికి మరింత దోహదపడతాయని నమ్ముతున్నాను. విశ్వవిద్యాలయానికి 500 కోట్లు కేటాయించడం, 284 సహకార శిక్షణ కేంద్రాల ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 8 లక్షల మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని లక్ష్యం పెట్టుకోవడం ఆశాజనకమైన చర్యలు. అలాగే సహకార రంగంలో డిజిటలైజేషన్, ప్యాక్స్ ఆధునికీకరణ, స్టార్టప్లు, నూతనాత్మకత కేంద్రాల ఏర్పాటు కోసం 600 కోట్లు కేటాయించడం కూడా మంచి నిర్ణయం. అయితే ఈ బిల్లులో తెలంగాణకు ప్రాధాన్యత తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మాకున్న ప్రస్తుత సహకార శిక్షణ హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఒకటి ఉండడం వలన జిల్లా స్థాయిలో సహకార సంస్థలకు సరైన శిక్షణ కష్టమవుతుంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం వంటి ప్రాంతాలకు శిక్షణ కేంద్రాలను విస్తరించాలి. తెలంగాణ రైతు బంధు, రైతు బీమా, ధరణి పోర్టల్ వంటి పథకాలు సహకార వ్యవస్థకు సహాయపడుతున్నాయి. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలలో మన రాష్ట్రం ఎంతవరకు లబ్ధి పొందిందనే అంశం స్పష్టంగా తెలియదు. సహకార సంఘాలకు నాబార్డ్ మరియు ఎన్సీడీసీ ద్వారా అందించాల్సిన నిధులు రాష్ట్రానికి తగిన విధంగా చేరేలా చూడాలి. అలాగే మహిళా స్వయం సహాయ సంఘాలకు నిధుల కేటాయింపులో తెలంగాణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తెలంగాణలో ఫ్యాక్స్ మరియు డైరీ సహకార సంస్థల ఆధునీకరణ అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో నూతన సహకార సంఘాల స్టార్టప్లకు మద్దతుగా ప్రత్యేక నిధులు ఏర్పాటు చేయాలి. సహకార రంగంలోని పాలక మండలిలో పలు రాష్ట్రాలకు తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించాలి. ఈ బిల్లులో సరైన మార్పులు చేస్తే సహకార రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయవచ్చు కనుక కేంద్రం ఈ బిల్లును రాష్ట్రాల అభిప్రాయాల పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కోరుకుంటాను. ఇంకా సహకార సంఘాలు తెలంగాణలో మహిళా సంఘాల ఐకేపీ ద్వారా స్వయం ఉపాధి పథకాలు, పాల డైరీలు, ఈ ఐకేపీ ద్వారా దాదాపు 6,000 నుంచి 9,000 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి 36 లక్షల ధాన్యం ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని 3 కోట్ల టన్నుల ధాన్యాన్ని పండించే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నీటి వనరులు ఏర్పాటు చేసిన గౌరవ తొలి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పండిన పంట ప్రతి మొత్తం మొక్కజొన్నలు కానీ వరి కానీ కొని రైతులను ఆదుకునే విధంగా సక్రమంగా నిర్వర్తించి 10 ఏళ్ళు బంగారు తెలంగాణ సాధించడం జరిగింది. నీటి వనరులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా యూనివర్సిటీ తెలంగాణలో ఒకటి ఇవ్వండి అది కోరుకుంటున్నాం. మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా ఒకటి ఇవ్వాలని రాజేంద్ర నగర్కి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ మిల్లెట్స్ ఇయర్గా కూడా ప్రకటించారు.
కావున ఈ మిల్లెట్స్ పైన కూడా కోర్సు పెడితే బాగుంటుందని హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దానిలో ఉన్నటువంటి విలువైన 400 ఎకరాల భూమిని అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కనీసం దాంట్లో ఈ యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి పెడితే బాగుంటుంది. దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మనందరిపైన ఉంది, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన కూడా ఉంది. విలువైన ల్యాండ్ 400 ఎకరాలను ఈ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాన్ని కాపాడాలని ప్రయత్నం మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారు రైతు వేదికలు దాదాపు 2603 రైతు వేదికలు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం నిర్మించడం జరిగింది. ప్రతి 5000 ఎకరాలకు ఒక రైతు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా అక్కడ కూర్చొని ప్రతి పండిన పంట కానీ, పంటలకు కావాల్సిన అవసరాలు కానీ అక్కడ ప్రతిరోజు చర్చించుకోవడం విధంగా 2603 రైతు వేదికలు నిర్మించడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా పిఎస్సిఎస్లు 900 పై చిలుకు ఉన్నాయి. ప్రాథమిక వ్యవసాయ కేంద్రాలు 900 పై చిలుకు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా రైతులు అభివృద్ధి చేసుకోవడం, సహకార సంఘాలు లోన్లు ఇచ్చుకోవడం కానీ అత్యంత స్పీడ్గా అభివృద్ధి అయ్యడానికి దోహదపడుతున్నాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మత్స్య సంపదను ధారాళంగా పెంపొందించారు. చేప పిల్లలను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా ఉచితంగా కూడా పంపిణీ చేసి చెరువులలో, కుంటలలో, ప్రాజెక్టులలో కూడా చెరువులలో నీళ్ళు చేపలను నింపేసి మత్స్యకారులు కూడా సంపదతో పాటు మంచిగా బాగుండాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక వనరులను ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ అభివృద్ధికి దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్లేస్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకురావడానికి కూడా జరిగింది. సహకార సంఘాలన్నీ కూడా తెలంగాణలో డిజిటలైజేషన్ అయిపోయినాయి. కంప్యూటరీకరణ కూడా చేయడం జరిగింది కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలోనే. ఇవన్నీ ఇంకా వూల్ అండ్ వీవర్స్ సొసైటీ కూడా బలోపేతం చేశాం. పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పన కూడా జరిగింది. భారతదేశంలో సహకార సంఘాలు ఎంత పటిష్టమైతే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత బలోపేతం అవుతుందనే దానికి తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఒకటే ఉదాహరణ. ఇది దేశానికి కూడా మంచిది. వ్యవసాయాన్ని కూడా ప్రస్తుతానికి ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గనైజ్ ఎఫ్పిఓలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ప్రస్తుతం ఉన్నాయి, ఇంకా కూడా పెంచాలని రైతులందరూ బలంగా కోరుకుంటున్నారు. ఒక సహకార పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేపడితే క్లోజ్ చేస్తుంది. కంక్లూడింగ్ సార్, ఒక వ్యవసాయ పద్ధతిలో సహకార సంఘం వ్యవసాయ పద్ధతులు చేపడితే ఇన్పుట్స్ కాస్ట్, పెట్టుబడులు కూడా ఖర్చులు తగ్గే విధంగా ఉంటాయని చెప్పేసి ఈ బిల్లును నేను ఖచ్చితంగా సమర్థిస్తున్నాను. దీంతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి విలువైన హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై, ముఖ్యంగా మీపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పేసి మరొక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद. माननीय मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी टू रिप्लाई द डिस्कशन. माननीय मंत्री जी का जवाब प्लीज. माननीय उपसभापति महोदय, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है और पिछले लगभग 4 साढ़े 4 घंटे इस सदन में उस पर तकरीबन 28 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले इस सदन के ज्येष्ठ सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह ने उन्होंने शुरुआत की और अभी हमारे आखिरी सदस्य रविचंद्र जी इस चर्चा में आखिरी उन्होंने अपना कहना यहाँ पे रखा। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में सभी माननीय सांसदों के भाषण सुने और मैं इस विषय पर अनेक सदस्यों ने उनके सुझाव भी यहाँ पे दिए। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने राजकीय टीका टिप्पणी भी की, लेकिन मैं फिर भी मेरा ये मानना है कि सदन में जो चर्चा हुई ये सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से इस चर्चा को उन्होंने समृद्ध किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं हमारे नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह एवं हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय पर आज इस सदन में जो चर्चा चल रही है
मुझे उसका हिस्सा बनने का अवसर इन्होंने दिया। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस सदन में सबको बताते हुए बहुत गर्व है कि नवंबर 2024 में दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन संपन्न हुआ और भारत में पहली बार ये सहकारी सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे विश्व से 106 देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। और उस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह के उपस्थिति में वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यह हमारे देश और देश की सहकारिता का सम्मान है और हम सबके लिए गौरव का यह विषय है। और आज भी हम जब ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मना रहे हैं और उसी दौरान आज सदन में देश के पहले सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना पर हम सभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज देश की लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या इसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर हम सहकारिता क्षेत्र को देखें तो आज देश में लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं और इन संस्थाओं में सदस्य संख्या माननीय सभापति महोदय 30 करोड़ है। आज 30 करोड़ सभासद संख्या इस पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र में काम कर रही है। इसका मतलब हर किसान परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य इस सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इतने बड़े लोक संख्या से जुड़े सहकारी क्षेत्र को पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकारों ने कैसे नजरअंदाज किया, इसके मैं केवल 2 उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि माननीय हमारे सीनियर सभासद है, सदस्य है, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पिछले 10 साल में ऐसे सहकारिता के लिए आपने क्या किया, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, उस पर भी मैं आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम 2013-14 का सहकारी विभाग का बजट देखें तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हमारा ये विभाग था, तो वो था माननीय उपसभापति महोदय सिर्फ 122 करोड़ रुपए। और आज हमारे मोदी जी के सरकार में अगर हम देखें तो करीब 10 गुना वृद्धि होकर लगभग आज हमारा बजट है 1190 करोड़ रुपए। इससे ये मालूम होता है कि हमने सहकारिता को कितना महत्व दिया है। इतना ही नहीं, 30 करोड़ से अधिक सदस्यता वाले इस सहकारी समितियों को पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय, जैसे मैंने कहा कि उसके तहत वर्षों से चलाया जा रहा था, और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी केवल एक संयुक्त सचिव के स्तर पर अधिकारी इसको पूरे देश की सहकारिता चला रहा था। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, कि इससे ध्यान में आता है कि सालों से ये सहकारिता क्षेत्र कांग्रेस की सरकारों के समय में दुर्लक्षित रहा। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जैसे कि हमारे सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कई अच्छे काम हमें करने के लिए छोड़े हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हो, जैसे कश्मीर से 370 कलम हटाना हो, जैसे ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का कानून हो, ऐसे कई काम गिनाए जा सकते माननीय उपसभापति महोदय। वैसा ही एक ऐतिहासिक और निर्णय जो देश के करोड़ों किसान परिवारों के कल्याण के लिए किया गया, वो है स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। अगर आज हम देखते हैं तो पूरे देश में पैक्स हो, डेयरी हो, शुगर इंडस्ट्री हो,
कोऑपरेटिव बैंक्स हो, टेक्सटाइल मिल्स हो, ऐसी लाखों सहकारी समितियां काम कर रही है। उनके विकास और विस्तार के लिए और इस सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2021 को इस स्वतंत्र मंत्रालय को स्थापना की, गठित किया गया और एक दूरदर्शी निर्णय ले लिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को कुछ तथ्य भी बताना चाहूँगा जो बहुत कुछ मुझे लगता है कि कम लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने गांव के पैक्स में भी काम किया, जिसने अपने बाजार समिति में भी काम किया, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी थे, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के संचालक डायरेक्टर भी बने, जिनका सहकारिता क्षेत्र में बड़ा योगदान और अनुभव रहा, ऐसे हमारे नेता माननीय अमित भाई शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने और ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। और उन्हीं के नेतृत्व में जुलाई 2021 से अब तक सिर्फ 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए, जिस पे मैं अभी आने वाला हूँ। बहुत सारे सदस्यों ने बताया, पूछा कि 10 साल में क्या किया। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन सहकारिता विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है, इस बिल को इस समय लाने की क्या जरूरत है, तो मुझे इस विषय पर विस्तार से सदन के सामने इस विषय को मुझे रखना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना उन्होंने रखी और उसे साकार करने के लिए पिछले 3.5 साल में हमने सहकारिता मंत्रालय ने कितने काम किए, ये इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने मैं रखना चाहता हूँ। माननीय अमित भाई के कुशल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने भविष्य में इस देश के सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 60 नए इनिशिएटिव लिए। इसमें हमारे मंत्रालय ने सबसे बड़ा कार्य पहले शुरू किया, जिसपे इस सदन में बहुत चर्चा हुई, वो है हमारे पैक्स। और सबसे पहला काम जो हाथ में लिया वो था पैक्स का सशक्तिकरण। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स ये हमारे सहकारिता क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पैक्स गांव को सहकारिता से जोड़ने का काम एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख कार्य करती है। और पैक्स पहले यहाँ बहुत सारे अनुभवी सभासद है, सदस्य, जिन्होंने सहकारिता भी भाषण भी किया, उसमें बताया कि पैक्स पहले केवल छोटे छोटे काम उनके माध्यम से होते थे, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हो या इनपुट सप्लाई का काम, बस इतना ही काम पैक्स के माध्यम से होता था और इसी वजह से उनकी व्यवसाय पर मर्यादा आती थी। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और इसके समाधान के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज में सुधार किए गए और इसके माध्यम से पैक्स को मल्टीपर्पज बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय हमने ले लिया। माननीय अमित भाई ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की, पत्र व्यवहार किया और मुझे यह एक कहने में बड़ी खुशी होती है कि जो हमने पैक्स के लिए मल्टीपर्पज बनाने के लिए जो मॉडल बायलॉज बनाए, पूरे देश में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया। उस राज्य में किसी भी विचार की सरकार हो, लेकिन सभी ने इसको सकारात्मक प्रतिसाद दिया। मैं उन सभी का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स बहुउद्देश्य होने से अब उनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर भी चल रहे हैं, पेट्रोल और एलपीजी डीलरशिप भी पैक्स को मिल रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर भी पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, ग्रामीण नल जलपूर्ति योजना का प्रबंधन का काम भी हमारे पैक्स कर रहे हैं। ऐसे 25 नए व्यवसाय इन पैक्स को देने का काम हमारी सरकार ने किया
अब मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे रखना चाहूँगा कि आज देश में 43,000 पैक्स CSC चला रहे हैं माननीय उपसभापति महोदय, कॉमन सर्विस सेंटर 43,000 पैक्स आज देश में चला रहे हैं। 36,000 पैक्स हमारे आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चला रहे हैं। 4,000 पैक्स प्रधानमंत्री जन औषधालय चला रहे हैं। अनेक पैक्स है देश में जो पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम पैक्स के माध्यम से आज देश भर में शुरू है। इसी तरह से पैक्स आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तभी तो उस गांव का किसान का परिवार भी सशक्त होगा, वो गांव भी समृद्ध होगा। और यही हमारी कल्पना है, यही माननीय मोदी जी की कल्पना है। शेखर से समृद्धि का बोले तो नींव हमारे यहाँ इस गांव में इस पैक के माध्यम से जो काम चल रहा है, पहले हमें उसे अच्छा करना था। मुझे ये इस सदन में कहते हुए बड़ा आनंद होता है। इन्हीं पैक्स के कार्य में सुलभता लाने के लिए भारत सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने लगभग 67,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है अभी देश भर में। उसका भी मुद्दा यहाँ चर्चा में आया था कि कौन से राज्य में कितना किया, हमारे राज्य में क्यों। बिल्कुल ऐसा नहीं माननीय उपसभापति महोदय, आज 67,000 पैक्स देश के कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं और उसके लिए 2,516 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे बार बार चर्चा हुई कि सरकार तो राज्य का विषय है, सरकार तो राज्य का विषय। हाँ, राज्य का विषय है, लेकिन हम राज्य का सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आज ऐसे काम हमने हाथ में लिए। मुझे बड़ा आनंद होता है इस कहने में कि राज्य के विषय, लेकिन पैक्स राज्य के है, राज्य के विषय है, लेकिन हमारी सरकार हमारी सरकार वो पैक्स के सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ काम आज कर रही है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि देश में अभी भी कई पंचायत ऐसी है कि जहाँ पर कोई सहकारी संस्था नहीं है, अभी काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास ये है कि देश का हर गांव सहकारिता के माध्यम से समृद्ध हो, और इसके लिए हमने मंत्रालय ने आने वाले 5 सालों में 2 लाख नए पैक्स बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। माननीय उपसभापति महोदय, उसमें से 14,000 पैक्स बन भी चुके हैं। और बड़ा देखे कि इतने सालों से सहकारिता पे जिन्होंने बात रखी और बोले सहकारिता कांग्रेस ने किया, लेकिन पिछले कई सालों से पैक्स की संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं गई। और अब अगले 5 साल में पूरे देश में पैक्स की संख्या जाएगी 3 लाख तक। ये हमारा सहकारिता के देखने का हमारा दृष्टिकोण है माननीय उपसभापति महोदय। और मुझे लगता है कि ये पैक्स अगर बनेंगे तो पूरे देश में सहकारिता में एक नई क्रांति होगी। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स को बहुउद्देश्य बनाने के साथ साथ हमारी सरकार ने NDA के माध्यम से डेयरी, NFDB के माध्यम से फिशरीज को भी बढ़ावा देने का काम किया। जब हम नए पैक्स बना तो देश की सामाजिक रचना को भी ध्यान में रखा गया है। तो कैसे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्ग और महिला को सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय हमारे सरकार ने किया। अब बायलॉज के तहत पैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक SC ST वर्ग का सदस्य और एक महिला सदस्य का होना हमारी सरकार ने अनिवार्य किया है माननीय उपसभापति महोदय। और सहकारिता क्षेत्र में इसी के माध्यम से सामाजिक न्याय देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए और भविष्य की दिशा तय करने के लिए सभी राज्य सरकार को साथ में लेकर, मैं बार बार ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि बहुत बार ये सुनने को आया कि राज्य का विषय, लेकिन हम राज्यों को साथ में लेकर काम करते हैं। सभी राज्यों को साथ में लेकर हमने पूरे देश का नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया है। आज अगर हम एक क्लिक पर राज्य, जिला, तहसील और गांव, अभी सभी स्तर पर कार्य करने वाले हमारी सहकारी संस्थाओं की जानकारी केवल 1 मिनट में हमें मिलती है। 8 लाख के ऊपर हमारी सहकारी संस्थाएं, ये काम हम सभी राज्यों को साथ में लेकर अभी किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस डेटाबेस का उपयोग करके हम सभी अपने क्षेत्र में सहकारिता को मजबूत करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय,
2002 के बाद पहली बार माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके मार्गदर्शन में और अमित भाई जी के नेतृत्व में हमारे देश की राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी बनाई जा रही है। कुछ दिन में वो भी सभी को राष्ट्रीय सहकार नीति देश भर में लाने का हमारा जो संकल्प है। माननीय उपसभापति महोदय, 2023 में देश में पहली बार माननीय अमित भाई के नेतृत्व में देश के किसानों को बीज से बाजार तक सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 नई सहकारी समितियां हमने बनाई। उसमें पहली BBSSL, दूसरी NCOL और तीसरी NCEL। माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से हमारे देश में जो पारंपरिक और मीठे बीजों का बीज है, उनका संवर्धन और प्रसार का काम इसके माध्यम से अभी शुरू हो गया। देश में जैविक उत्पादन की खेती को नेचुरल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से बढ़ावा देने का काम शुरू किया है। हमारे किसानों के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा किसानों को विदेशी बाजारों से अब जोड़ा जा रहा है। अब तक माननीय उपसभापति महोदय, ये तीनों जो हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां हैं, अब तक देश में 34,000 सहकारी संस्था इनकी सदस्य बनी है और मुझे लगता है कि इससे अब किसानों के आय में भी बिल्कुल वृद्धि होगी। माननीय सभापति महोदय, आज देश भर में लगभग 1450 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो देश के शहरी क्षेत्रों का आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि नाबार्ड के माध्यम से हमारी जिला कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, इनको मदद की जाती है, उनको सहायता की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी मदद के लिए, इनकी सहायता के लिए ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं थी। और मुझे ये यहाँ सदन में कहते हुए बहुत आनंद होता है, अभिमान होता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय करके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। और माननीय उपसभापति महोदय, इससे अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, जिला कोऑपरेटिव बैंक हो या राज्य कोऑपरेटिव बैंक हो, इनके लिए नाबार्ड तो है। सब जगह पे जो दिक्कतें आती है, समस्या आती है, तो उनके साथ वो खड़े रहते हैं। अब हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से IT सर्विसेज दे सकती है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको मदद हो सकती है और आवश्यक आर्थिक सहायता भी अभी उनको मिलेगी। और जिसकी वजह से, इसकी वजह से आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप शेड्यूल बैंकों की तरह उन्हीं की समान सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे मंत्रालय ने किसानों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसानों की मेहनत, कृषि उत्पादन में हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में इनकी मेहनत की वजह से आज गिना जा रहा है। लेकिन वही एक दुख की बात फिर है कि इतने सालों से ये किसी के ध्यान में नहीं आया कि पिछली सरकारों की जो लापरवाही थी, उनको जो उन्होंने दुर्लक्ष्य किया, उसकी वजह से अनाज उत्पादन के हिसाब में भंडारण की क्षमता नहीं बनाई गई। माननीय उपसभापति महोदय, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी सहकारिता मंत्रालय ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। और आज हमारे पूरे देश में पैक्स के माध्यम से ये अन्न भंडारण योजना का काम शुरू हो गया, जिसके कारण अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कमी आएगी, फसल की सुरक्षा होगी और किसानों को नजदीक में भंडारण की सुविधा भी मिलेगी और इससे किसान के आर्थिक रूप से उनको अधिक लाभ भी होगा। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए कार्य करने वाली हमारी NCDC एक प्रमुख संस्था है। NCDC के माध्यम से पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को
एक आर्थिक सहायता के स्वरूप में मदद की जाती है, एक आधार दिया जाता है। फिर मैं उसी मुद्दे पे आना चाहूँगा कि 10 साल में हमने क्या किया। कांग्रेस की सरकार की समय में अगर हम 2013 और 14 में आंकड़े देखें तो एनसीडीसी के माध्यम से देश की सरकारी संस्था को उस साल में मदद की वो थी सिर्फ 5,300 करोड़। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, वही आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें 25 गुना वृद्धि की और आज हमने 1,28,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को एनसीडीसी के माध्यम से आज मंजूरी दे दी है। केवल इसी एक वर्ष में एनसीडीसी ने देश की चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है। माननीय अमित भाई के प्रयासों से कई सालों से लंबी चीनी मिलों की लगभग 46,000 करोड़ की इनकम टैक्स लायबिलिटी को भी माफी मिली है और इसका सीधा फायदा आज हमारे किसानों को मिला है। एनसीडीसी के माध्यम से और भी अनेक कार्य कर रही है जिससे देश की सहकारिता आज मजबूत हो रही है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने सहकारिता को और मजबूत करने के लिए माननीय अमित भाई ने और एक परिकल्पना रखी और उन्होंने कहा, एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने एक परिकल्पना लाई, सहकारिता में सहकार, यानी कि कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव्स। इसमें हमने ऐसा निर्णय लिया कि कोई जिला बैंक अगर है, वो जिला कोऑपरेटिव बैंक में उस जिले के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, संस्था हो, उनका अकाउंट वहीं पे खोला जाएगा। उनके आर्थिक व्यवहार उन्हीं के माध्यम से होंगे और उनके सदस्य भी जो है उनका भी अकाउंट हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक में किए जाएंगे। इसका निर्णय होने के बाद मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अब तक देश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों की जमा राशि में कई गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब है, आता वहीं पे आता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, उस पे आता हूँ। ये यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, इसका ये पहला अध्याय है। आप सुनिए। हाँ, हमारी इसका उद्देश्य माननीय उपसभापति महोदय इतना ही है कि अगर हमारी जिला कोऑपरेटिव बैंक अगर आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी सक्षम होगी और उसका फायदा सीधे पैक्स के माध्यम से हो और कोई सुविधा के माध्यम से हो हमारे किसानों को होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस परिकल्पना को आज बहुत अच्छा पूरे देश में प्रतिशत अच्छा मिल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, आज देश में लगभग 1,730 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। इनमें सुधार के लिए हमारी सरकार ने 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में भी बदलाव लाए। कार्यक्षमता में वृद्धि और पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये एक्ट में बदलाव लाए। हमारी सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय का भी कंप्यूटराइजेशन किया और राज्यों के, फिर मैं कहता हूँ, राज्यों के आरसीएस कार्यालयों का भी कंप्यूटराइजेशन हमारी सरकार के माध्यम से अब हम कर रहे हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुविधा प्रदान करने के लिए अब देश में सीआरसीएस के क्षेत्रीय कार्यालय भी अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे मैंने अभी विस्तार से बताया कैसे देश के सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है, देश सहकार से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें और गतिशीलता लाने और इसका विस्तार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जरूरत है। आया ना, मैं आया आया सर आया मैं। ये सब बात नहीं माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यही कहना था कि हम सहकारिता क्षेत्र में पिछले 10 साल में कितना बड़ा क्रांति की, कितना बड़ा काम किया है। अब इसे आगे ले जाने के लिए, इसे और बढ़ाने के लिए हमें और एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जरूरत है। इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वर्तमान में देश में आज 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां काम कर रही है। इसमें माननीय उपसभापति महोदय लगभग 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख निर्वाचित बोर्ड मेंबर इसमें काम कर रहे हैं। ऐसे कुल 1.25 करोड़ लोग इस सहकारिता से सीधे जुड़े हुए हैं।
समय समय पर उनका क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना भी जरूरी है। इसके साथ ही हमने अक्सर ये देखा है कि कई सहकारी संस्थाओं को कार्यक्षमता में कमी होने के कारण अच्छा काम करने का उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, मैनेजमेंट में अनियमितता होती है, टेक्नोलॉजी का कम उपयोग होता है। ऐसे अनेक दिक्कतों का सामना आज हमारे देश की कोऑपरेटिव को करना पड़ रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे सहकारिता क्षेत्र का स्केल और स्कोप भी निश्चित बढ़ने वाला है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। इससे नए उद्योग, स्वयं रोजगार और नवाचार के अवसर भी पैदा होंगे। आज पैक्स के सचिव से लेकर एपेक्स बैंक के एमडी तक सभी स्तरों पर कार्य सुलभता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है माननीय उपसभापति महोदय। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में सहकारिता में हर स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और विखंडित भी है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई के नेतृत्व में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का दूरदर्शी निर्णय हमारे मंत्रालय ने लिया। आने वाले समय में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र की प्रशिक्षित मैन पावर की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करेगा। ये विश्वविद्यालय देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट की भावना को विकसित करेगा, सहकारी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास जी के नाम पर क्यों रखा गया, इस पे भी मुझे बिल्कुल बोलना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, त्रिभुवन दास जी पटेल हो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पार्टी के विचार है कि ऐसी कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के किसी भी व्यवस्था में अगर उसका योगदान बड़ा रहता है तो हम उनका सम्मान करते हैं और ये हमारी संस्कृति है। और आज त्रिभुवन दास जी के नाम पे आक्षेप लिया गया, मैं तो कहता हूँ कि वो तो कांग्रेस के ही थे हम, लेकिन उनके काम का सम्मान हम कर रहे हैं, उनके योगदान का सम्मान आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्वीकारना भी चाहिए। स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत में सहकारी आंदोलन के एक जनक थे। खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के वो संस्थापक अध्यक्ष है। सहकारिता नहीं बताना है फिर से, हाँ, सहकारिता क्षेत्र में कुछ लोग भूल गए थे। प्लीज आपस में बात नहीं। सहकारिता क्षेत्र में योगदान देने समय त्रिभुवन दास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल जी का मार्गदर्शन में कार्य किया। मैं फिर से ये बात पे पढ़ना चाहूंगा। सहकारिता क्षेत्र में योगदान देते समय त्रिभुवन दास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल के मार्गदर्शन में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ही देश की डेयरी के क्षेत्र में क्रांति हुई। त्रिभुवन दास जी की नीतियों के कारण आज लगभग 60,000 करोड़ का वार्षिक व्यापार करने वाला अमूल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है माननीय उपसभापति महोदय। और इसका सीधा लाभ आज अमूल से जुड़े हुए 36 लाख किसानों को मिल रहा है। सहकारिता आंदोलन के सहकारिता आंदोलन के ऐसे व्यक्तित्व का नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ना अपने आप में एक गौरव की बात है माननीय उपसभापति महोदय। मैं इनके मुद्दे पे भी आऊंगा। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्य ने श्री वर्गीस कुरियन के जी बारे में भी यहाँ पे सदन में बात की। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस विषय पे लोकसभा में उत्तर दिया गया था, देता हूँ। मैं इस सदन को अवगत करना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरियन जी का सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई हमारा दो राय नहीं है, हम इसे स्वीकार भी करते हैं। और गुजरात राज्य में आज आप कुरियन जी का नाम ले रहे हैं, आपकी सरकार जिस राज्य में है
आपको पता भी नहीं है कुरियन जी का शताब्दी वर्ष यहाँ ये मना रहे हैं और गुजरात सरकार मना रही है। ये हमारी भाजपा की सरकार मना रही है आज। आप यहाँ पर सब कुरियन जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनके शताब्दी का महोत्सव गुजरात सरकार मना रही है। Please take your seat. John Britas, माननीय उपसभापति महोदय, वर्गीस कुरियन बीजेपी के नहीं थे। एक माननीय सदस्य ने यहाँ कहा कि वो बीजेपी के नहीं थे इसलिए नाम नहीं दिया। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र में अगर बड़ा व्यक्ति काम करता है तो उसका सम्मान करने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका आदर है, उनके प्रति सम्मान भावना है हमारे मन में। लेकिन किसी एक का नाम दिया जाता है और इस क्षेत्र में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो त्रिभुवन दास जी का नाम हमने इसमें दिया है और मुझे लगता है कि हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय के संचालन के बारे में भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि सहकारिता क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ये राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान का कार्य प्रभावी ढंग से करे। इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक अधिकारी भी इसमें प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े शैक्षणिक कार्यों के साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियां भी शामिल होंगी। इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर सेक्टर स्पेसिफिक स्कूल स्थापित होंगे। ये विश्वविद्यालय अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी भी करेगा। 10वीं 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस विश्वविद्यालय के कोर्स कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रस्तावित हैं। इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व के सहकारिता क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शामिल होंगी। माननीय सभापति महोदय, राज्यों के सहकार को धोखा है, ये केंद्रीयकरण चल रहा है, राज्य के सहकारिता में क्या होगा, ऐसे भी कुछ शंका इस सदन में उपस्थित हुई। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उनको अवगत करना चाहता हूँ, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय देश के विभिन्न राज्यों के मौजूदा सहकारी शिक्षण और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को हब एंड स्पोक मॉडल पर एफिलेट करेगा। ये एफिलेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। और उसमें और एक बात कि हमने ये भी प्रावधान रखा है कि पूरे सहकारिता का शिक्षण पूरे देश में जो जो राज्य में आएगा उसमें प्रांतीय भाषा में दिया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न राज्यों में नए आउटलाइन कैंपसेस भी स्थापित किए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम जरूरत के अनुसार प्रांतीय भाषाओं में, जैसे मैंने अभी कहा, कि भी पढ़ाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र के एक सदस्य यहाँ वैमनिकॉम का इशू उठाकर चले गए। मुझे लगता था उनको सुनना भी चाहिए था, लेकिन वैमनिकॉम का महत्व हमारे दृष्टि से पहले से भी जो है वही हमारा वैमनिकॉम का दृष्टिकोण हमारा है। वैमनिकॉम एक हमारी अच्छी इंस्टीट्यूट है और ये यूनिवर्सिटी होने के बाद वैमनिकॉम त्रिभुवन विश्वविद्यालय का इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और ये विश्वविद्यालय हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करेगा। वो हमारा वैमनिकॉम उसका एक प्रमुख सेंटर यहाँ पे पुणे में काम करेगा। माननीय सभापति महोदय और कुछ सदस्यों ने यहाँ पे कुछ बातें रखी थी कि पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के सभासद यहाँ थे, उन्होंने कि हमारे यहाँ पे ये केंद्रीयकरण का काम चल रहा है, राज्यों के साथ समन्वय नहीं। मुझे बताते हो, मैंने अभी कहा कि हमने पैक से मॉडल बायलॉज जो लाए, आप सदस्यों को मुझे लगता है कि ये बात मालूम नहीं है कि आपकी सरकार ने इस मॉडल बायलॉज को भी एडॉप्ट किया है और उसके साथ हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सरकार के समन्वय के कारण ही होता है। हमारे ज्येष्ठ सदस्य ने कहा कि ये केंद्रीकरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय एक स्वायत्त रूप से अधिनियमन, परिनियम और अध्यादेशों के अधीन कार्य करेगा और इसे वित्तीय
एकेडमिक और प्रशासनीय स्वायत्ता होगी। हम सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय योग्य श्रमबल तैयार करेगा जो सभी राज्यों के सहकारी समितियों के काम आएगा। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि जितना इस सदन में पिछले 4 घंटे से चर्चा चल रही है, तो उस पर मेरा ये निवेदन था कि भावना सभी की अच्छी है, सभी की भावना एक ही है कि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ आपने सुझाव दिए, उसमें से आज आप उसने ये विश्वविद्यालय के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे आपके माध्यम से मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे रखी है। तो मैं माननीय उपसभापति महोदय, अंत में मैं एक बार फिर से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस बिल के माध्यम से देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आने वाले समय के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी हमारे सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्किल्ड मैन पावर का सृजन करेगा, देश में कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा देगा और भविष्य के लिए कोऑपरेटिव लीडरशिप को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए माननीय उपसभापति महोदय, माननीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारा सहकारिता मंत्रालय अपना योगदान देगा। और इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आज एक स्वर में देश के सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाले इस त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के बिल का समर्थन करें और सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that Tribhuvan Sahakari, please. The question is that the Tribhuvan Sahakari University Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Dr. John Britas. Are you moving it? I am certainly moving it, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 4 is adopted. Clause 5 to 8 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 5 to 8 are adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? I am moving, sir. Please. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 9 is adopted. Clauses 10 to 53. Clauses 10 to 53, the first schedule of the second schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 10 to 53, the first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Muralidhar Mohol ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 2nd April 2025.
वेव्स के यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है। और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है। उसके लिए ये 1 ऑफ 3 पिलर्स है और ये बहुत ज़रूरी है एज 1 ऑफ 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top. चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। This is not just wordplay. It is vision of an institution that connects law, science and ethics to transform our relationship with nature. Let us draw from our Vedic roots, build cutting-edge tools and uphold climate justice with unwavering resolve. Developed nations must transcend political boundaries in environmental thinking. Adopting models where planetary health becomes foundational to human prosperity and well-being. They cannot isolate themselves. Okay, we are doing fine. We have means, technological means to generate a healthy ecosystem. It can last for some years, but not forever.
they will have to be enveloped into the waves if they do not join the rest of the global community. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना की। कृषि में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार का एक इनोवेटिव प्रयास है। इस योजना का मकसद देश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं का अधिक योगदान और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है और खेती में ड्रोन की मदद कैसे ली जा रही है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव एस रुक्मणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपायुक्त CR लोही जी से। लोही जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सवाल सबसे पहला रुक्मणी जी आपसे है मेरा, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना क्या है, इस बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकती हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस टॉपिक। ये नमो ड्रोन दीदी योजना जो स्कीम है, इसको चालू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिला था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इसका अनाउंसमेंट किया था कि किस तरह से SSG ग्रुप्स हैं, जो वुमेन SSG ग्रुप्स जो विलेज लेवल पे होती हैं, उनको किस तरह से ड्रोन्स दिया जाएगा और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद वो किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन्स यूज करके फार्मर्स को अपना सर्विसेज दे पाए। सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब वो हुआ था 2023 में। उसके बाद हम लोगों ने स्कीम लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद स्कीम में हमने ऑलरेडी 500 ड्रोन्स जो है 500 SSG ग्रुप्स को दे दिया है। अब मैं बात करूंगी कि ये स्कीम है क्या और इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नमो ड्रोन दीदी योजना में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो विलेज लेवल पे जो पुअर और गरीब घरों से आती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको जो है ड्रोन्स दिया जाएगा, किसान ड्रोन्स दिया जाएगा। और ऐसे 15,000 वुमेन SSG ग्रुप्स को सिलेक्ट करके उनको ड्रोन्स दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, 500 ड्रोन ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी हम लोग 2024, 25, 26 में 14,500 ड्रोन और देंगे। और ड्रोन्स देने का भी हम लोग जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। जैसे 80% जो ड्रोन की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो उस कॉस्ट को यूज करके SSG ग्रुप्स जो है बाकी अमाउंट लोन लेंगे। लोन लेके वो लोग जो है ड्रोन्स प्रोक्योर कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा पूरा हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स की कंपनीज होती हैं वो ड्रोन्स प्रोक्योर करके SSG की मदद करेंगे। सेकेंडली, ये ड्रोन किस लिए दिया जा रहा है? अब जैसे ड्रोन्स SSG ग्रुप्स को देने के बाद इसका जो है एग्रीकल्चर फील्ड में वाइडली यूज करने के लिए हम दे रहे हैं। तो किस पर्पस के लिए होगा? जैसे फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइड्स हो गया, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जब फार्मर्स अपने फील्ड में क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। तो ये स्प्रेइंग सर्विसेज देने के इनिशियली हमारे SSG ग्रुप्स फार्मर्स को सर्विसेज देंगे।
जी बिल्कुल। सीआर लोही साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्देश्य है। ट्रेनिंग के स्तर की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से इस योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर किया जा रहा है? नमस्कार जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पायलट के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो बीसीसीआई से अप्रूव्ड है, वो 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें सिर्फ ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। परंतु हम लोगों ने इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए इसको 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिसमें जो स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन है उसके लिए 7 दिन का ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग और 8 दिन का एग्रीकल्चर में उसका कैसा उपयोग किया जाए इसके ऊपर ट्रेनिंग है। उसी तरह जो मीडियम क्लास जो ड्रोन है उसमें 15 दिन का जो है ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग और 5 दिन का उसको एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग है, जिसमें 2 घंटे उसको खुद ही फील्ड में उसको ड्रोन को उड़ाना है। और टोटल जैसे अगर देखा जाए तो मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों मोड में इसको चलाने का ट्रेनिंग भी उसके अंदर हमने रखा है। जैसे एग्रीकल्चर में कि फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है, पेस्टिसाइड को कैसे मिक्स करना है, कौन सा पेस्टिसाइड किया जा सकता है ड्रोन से, फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया जा सकता है, ड्रोन के क्या उपयोग है, उसको छोटे मोटे रिपेयर अगर कोई आता है तब उसको कैसे उसको दूर किए जा सकते हैं, ये सारा जो है हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। रुक्मणी जी, इसमें महिलाओं को खास तौर पे फोकस में रखा गया है। अगर मैं कहूं तो सीधे सीधे महिलाओं पर केंद्रित ये योजना है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के पीछे कोई खास उद्देश्य, कोई खास वजह? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक उन स्कीम्स में वन ऑफ द वेरी फ्यू स्कीम्स है जो 100% बेनिफिशियरी वुमन को मान के चल रहा है। तो इसका रीजन यही है कि दैट जो एसएसजी ग्रुप्स जो होते हैं, जो विलेज लेवल से आते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एसएसजी ग्रुप्स बनाया जाता है, ये महिलाएं जो है बहुत गरीब घर से आती हैं, इनको एसएसजी के ग्रुप पे बनाया जाता है और ये ग्रुप्स हर लेवल के विलेज में, हर विलेज में होते हैं और इनको यूज करके काफी सारे और भी जो है स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विलेज लेवल पे अवेलेबल है। तो इनको अगर हमने एम्पावर कर दिया और इनको हमने ड्रोन्स दिया या एम्पावर करके फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, वो डायरेक्टली फार्मर्स से जुड़ सकती हैं। और क्योंकि फार्मर्स जो है दूर दराज में जाके ड्रोन सर्विसेज लेने से अच्छा है कि जब विलेज लेवल पे अपने ही माता बहनें उससे सर्विसेज लेंगे तो वो बहुत फायदेमंद होगा। एक तो ये रीजन है। सेकंड ये रीजन है कि हम वुमन को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दैट वुमन महिलाएं जो है हर फील्ड में आगे जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर सकती हैं। तो जैसे हमारे दूसरे भी स्कीम्स हैं उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। जैसे हम मैकेनाइजेशन के लिए स्पेशल कॉम्पोनेंट है, जैसे 50% सब्सिडी देते हैं। तो इसमें भी हम चाह रहे थे कि ड्रोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जिससे वुमन एम्पावरमेंट आगे जाए और दूसरा इनको ये पुअर हाउस होल्ड जो एसएसजीज हैं इनको किस तरह से इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी वो कर सके, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल सके। तो ये फ्यू रीजंस हैं जिस वजह से हमने वुमन फोकस स्कीम बनाया है। जी रुक्मणी जी, अगला सवाल मेरा आप ही से है कि जो ड्रोन है उसको उपलब्ध सरकार करवाएगी या स्वयं सहायता समूह जो हैं वो स्वयं खरीदेंगे, उस पर कोई सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी तो कितनी मिलेगी? जी, तो ये स्कीम जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड स्कीम है। इसमें हम लोगों का फंडिंग जो है 100% फंडिंग हम देंगे और इस 100% फंडिंग में जो है जो एसएसजी को ड्रोन खरीदना है वो ड्रोन खरीदने का काम जो है हम फर्टिलाइजर कंपनी के थ्रू करवाएंगे और जो ड्रोन खरीदने का जो खर्च आएगा उसमें 80% का जो है असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। दैट मीन्स अगर एक ड्रोन 5 लाख या 6 लाख का है तो उसका 80% सब्सिडी हम लोग दे देंगे और 20% एसएसजी को खुद लाना पड़ेगा या वो बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन पैटर्न है वहाँ उसके बैंक से भी लोन ले सकते हैं। वहां से लोन लेने में इनको फायदा ये रहता है कि उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाता है। या तो आरडी स्कीम्स अपने स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें वो लोन्स ले सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग स्कीम का 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस हम वुमेन एसएसजीज को देंगे। जी बिल्कुल, लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण का है। सीआर लोही साहब, अगर बात मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की करूं तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो रहा है और किस तरह से जो खेती किसानी से जुड़ा वर्ग है वो उसका उपयोग कर रहा है, या मंत्रालय किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचा रहा है उस टेक्नोलॉजी को? आज के समय में अगर देखें तो सिर्फ स्प्रेइंग का काम जो है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इसका काम जो है ड्रोन के द्वारा लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ड्रोन जो है वो सीडिंग अटैचमेंट के साथ भी आ रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट के काम के लिए भी जो उनको टाइप अप्रूवल मिल रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हिली एरिया है तो हिली एरिया में इतना आसान नहीं होता कि उसको चढ़ के कहीं भी वेजिटेबल्स हो, कोई मेडिसिन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसको वहां तक पहुंचाए। तो इसीलिए इन्होंने जो है एक बॉक्स उसके साथ फिक्स किया हुआ है ड्रोन के साथ, और ताकि उसको जो है हिली एरिया में तुरंत उसको 5 मिनट के अंदर जो है ऊपर हिल पे पहुंच जाएगा। उसी तरह जैसे स्प्रे और फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग के अलावा इसका उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि क्रॉप की मैपिंग कर सकते हैं, कौन सी बीमारी क्रॉप के ऊपर आई है। जैसे होता है ना कि कोई बीमारी लग जाती है तो 2-4 पौधों को लगती है, थोड़े से पैच में लगती है, हम स्प्रे पूरे फील्ड में करते हैं, जिससे उसका स्प्रे पेस्टिसाइड का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, पानी का भी नुकसान होता है। तो ये टेक्नोलॉजी है कि मैपिंग अगर आप कर ले उसको तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी एरिया में जो है पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, तो उसी एरिया में ड्रोन के द्वारा स्प्रे किया जा सकता है मैपिंग करके। उसी तरह जो है कितना आपका जो है यील्ड एनालिसिस तक इससे कर सकते हैं कि जब आपका क्रॉप तैयार हो जाता है तब एनालिसिस होता है कि भाई आपका कितना प्रोडक्शन उससे आपको मिल रहा है जी। उसी तरह जो है सीडिंग का, जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में सीडिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए सीड बॉल्स की तरह उसको यूज किया जाते हैं जो ऊपर से जो है डाले जाते हैं ताकि जो है उसमें फॉरेस्टों को बढ़ाया जा सके। उसी तरह जैसे अभी कुछ रिसर्च ऐसे भी चल रहे हैं कि सीड ड्रिल भी उसके ड्रोन के साथ लगाने का जो है प्रयास किया जा रहा है ताकि फील्ड में भी सीड ड्रिल को भी ड्रोन खींच सके। उसी तरह जो है जैसे फिशरीज है, फिशरीज में क्या होता है कि जो भी फीडिंग होता है फिश का उसको हम साइड से डाल सकते हैं, पानी के अंदर जाके या तो बोट में जाना पड़ेगा, तो ये ड्रोन उसमें बहुत ज्यादा उपयोगिता है उसकी कि वो बीच में जहां भी चाहे जहां तो उसको फिश को वहां पे वो फीडिंग कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग जो है ड्रोन के हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हो सकते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोगिता बढ़ भी रही है जी। जाहिर सी बात है ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और बड़े इसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रुक्मणी जी ये उठता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए या टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव आ सकता है और गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या बदलाव आएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल आता है कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएगा, किसान की स्थिति कैसे मजबूत होगी, कृषि में उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने सही पूछा है। देखिए ड्रोन के यूज से क्या फायदा होने वाला विलेज लेवल पे या वुमेन एसएसजी को या फार्मर्स को। पहली बात तो ये है विलेज लेवल पे इनकम बढ़ेगा, मतलब वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। जैसे वुमेन एसएसजीज जो हैं अपने ड्रोन का यूज करके फार्मर्स को सर्विसेज देंगे, सर्विसेज देने के लिए उनको कुछ किराया मिलेगा, रेंटल मिलेगा, तो उस रेंटल से उनके घर की अपनी इनकम भी एडिशनल इनकम हो जाएगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके साथ उनको एडिशनल इनकम मिलेगा। सेकेंडली फार्मर्स को इजी सर्विसेज मिलेगा, जैसे अब फार्मर्स आज के डेट में जो ड्रोन्स यूज नहीं कर रहे हैं या जो जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे फार्मर्स को खुद जाके फील्ड में जाके पेस्टिसाइड हो गया जो कितना हैजर्डस होता है, जो डेंजरस होता है, पेस्टिसाइड हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, खुद ही जाके छिड़कना पड़ता है, या अगर वो किराए से करवाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है।
चाहे किराए पे खुद फार्मर खुद करें या किसी और से कराएं, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है ये फार्मर जब खुद करते हैं तो उनको हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ही हैजर्डस होता है। तो ये सारी चीजें ड्रोन के सर्विसेज के थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, किस तरह से जैसे हम फार्मिंग की बात करते हैं तो ड्रोन यूज करने से हमारी पानी की बचत भी होती है, क्योंकि ड्रोन यूज से हम फर्टिलाइजर करते हैं तो उसमें पानी की खपत कम होती है। सेकेंडली, कितनी जल्दी फार्मर्स आज के डेट में अगर देखें तो फार्मर्स को अपने फील्ड को विदाउट ड्रोन करेंगे तो घंटों भर लग जाता है उनको फर्टिलाइजर स्प्रे करने में या तो पेस्टिसाइड स्प्रे करने में। अब आप ड्रोन यूज करिए, ड्रोन यूज करने में से मिनटों के अंदर एक 2 एकड़ आराम से स्प्रे हो जाता है। और दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे ड्रोन के थ्रू हम स्प्रे करते हैं तो एक्यूरेसी आ जाता है कि जिस जगह पे फर्टिलाइजर की जरूरत है, जिस जगह पे दवाई की जरूरत है, वहीं पे छिड़काव किया जाता है। तो ये एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करता है, इनकम फार्मर्स को इजी सर्विसेज देता है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जनरली विलेज लेवल में प्रॉस्पेरिटी लाती है। तो ये एक बहुत ही एक चेन इफेक्ट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्कीम के द्वारा हम 2 महिलाओं को, जो एसएसजी ग्रुप्स में 2 महिलाएं होंगी, उनको हम ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दिलाएंगे, फिर एक ड्रोन असिस्टेंट की पायलट की ट्रेनिंग दिलाएंगे। अब आप सोचिए 15,000 ड्रोन दिया जाएगा तो 30,000 महिलाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये एक बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स बनेगा। जी बिल्कुल। सीआर लोहित साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में रुचि भी होती है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो लोगों में रुचि किस तरह से है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर? क्या कृषि क्षेत्र में जो आम किसान है या आम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें किस तरह की आप रुचि पा रहे हैं? कितनी उनकी इंटरेस्ट है ड्रोन टेक्नोलॉजी को सीखने में? जैसे अभी जितने हम लोगों ने जो 500 ड्रोन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनके भी कुछ एनालिसिस है, और बाकी जो दूसरे हमारे स्कीम में भी जैसे ड्रोन दिए हुए हैं, तो किसानों को उसमें फायदा काफी दिख रहा है, क्योंकि उससे इनकम तो जनरेट हो ही रही है और काम जल्दी हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो उसको जो है प्रचलित तो बहुत जल्दी हो। किसान एक दूसरे को ये होता है कि विलेज में जब जाते हैं कोई भी, उसमें होता है एक किसान को जो पसंद आता है तो और भी किसान उसको जो है जल्दी पसंद करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं एसएसजी ये काम कर रहे हैं वहां पे, और बाकी लोग भी ड्रोन वाले, तो उसका बहुत अच्छे से वो उपयोग उसी एरिया में पैचेस में हो रहा है। काफी लोगों से हमने बात किया है, जैसे पेस्टिसाइड कंपनी है उनके भी कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स है, वो भी किराए पे चलाते हैं। तो ये पैचेस ऐसे तैयार हो रहे हैं ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने ये पूछा था कि जैसे एसएसजीज या महिलाएं किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, जो हमने अभी पिछले 1 साल में जो 500 ड्रोन्स हमने दिया है, इन एसएसजी महिलाओं से हमारा इंटरेक्शन लगातार होता रहता है। हम इनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, पिछले रिपब्लिक डे के फंक्शन में बुलाया था। तो इन लोगों से इंटरेक्शन से यही हमें पता चल रहा है, या हम लोग जब इंस्पेक्शन करते हैं, कि दैट दे आर वेरी ईगर टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। वो लोग इतने आगे आके इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों को ड्रोन्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग अडॉप्ट करने के लिए इतने ईगर हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे किसान भाई उसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उसका उपयोग भरपूर अपने जीवन में करना चाह रही हैं। लेकिन रुक्मणी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मंचों से एक बात पे खास तौर पर जोर देते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग को आप कैसे देखते हैं? कृषि मंत्रालय के स्तर पर तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, आपका क्या कहना है?
जी, ये भी आपने सही कहा कि दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है। टेक्नोलॉजी कई तरह के होते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगर आपको बताऊंगी वो मशीन से रिलेटेड है। तो मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत किस तरह से छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, महिलाएं, हमारे पिछले वर्ग के जो फार्मर्स हैं, उन तक किस तरह से हम मशीन्स पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए हम डेडिकेटेड स्कीम एक चला ही रहे हैं कि जिसका नाम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें हम ड्रोन्स को भी प्रमोट करते हैं। तो इसके अलावा हम अब आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के आसपास में ये जो पराली बर्निंग हो रही है, पराली जलाने का ये जो यूपी, हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, इसको काउंटर करने के लिए भी हम मशीन्स देते हैं। तो हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन को लेके फार्मर्स को एम्पावर करने का। जी बिल्कुल रुक्मणी जी, आपने हमें नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जानकारी दी। आपका संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लोहित साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। We need to realize we are trustees of everything offered by Mother Earth, and there is divine ordainment that we must pass on to the future generations all this in good shape. Writing on the wall, have we done it? Answer comes from within, certainly not. The present scenario is alarming, daunting, and far distanced from what it should have been. Distinct audience, not many countries in the world can claim to have civilizational depth which we as Bharat have. Thousands of years of civilizational ethos. Long before sustainability became a global buzzword, much long before, centuries before it became global buzzword, India lived it for centuries, where every banyan tree was a temple, every river a goddess, and waste an unknown concept in a civilization that worshipped circularity. Our Vedic literature is gold mine for nurturing of Mother Earth and propagating harmony between man and nature. Distinguished audience, we have to be aware. The planet is not exclusive to us. We are not its owners. Flora and fauna must flourish and blossom alongside, and so must all other living beings. In such a scenario, man will have to learn to live in harmony with nature and other living beings. Are we doing it? No. Every technological development increasing human prowess is used to captivate and make others' life vulnerable, other living beings. There will have to be individual focus on optimal utilization of resources of the nature. This has to be our habit. Our fiscal power, our fiscal capacity cannot determine the use of natural resources. The consumption has to be optimal. Human activities, particularly climate change and water management, now influence seismic events. Studies have revealed earthquakes, we all know, are normally because of tectonic processes. But then, the way we conserve waters, build dams, and get them emptied is a cause, a profound impact on geological situations. And therefore, there is global need to evolve and believe in environmental ethics. This underscores humans' moral obligations to protect and preserve the environment. Both ecological extension and conservation ethics
advocate harmonious human-nature relationship, and so easy to bring about. It doesn't call for anything but a positive mindset towards life. We have to focus on environmental preservation and prudent resource stewardship for generational sustainability. Developed nations must transcend political boundaries in environmental thinking, adopting models where planetary health becomes foundational to human prosperity and well-being. They cannot isolate themselves. Okay, we are doing fine. We have means, technological means, to generate a healthy ecosystem. It can last for some years, but not forever. They will have to be enveloped into the village if they do not join the rest of the global community. The Bhopal gas tragedy, lessons is still unlearned. The Union Carbide leakage of 1984. I think, if I am not wrong, it was in 2015 that Justice Srivastava, the judge of the Madhya Pradesh High Court, dealt with, as a commissioner, what compensation could be given. It was mega environmental negligence. Even after 4 decades, families suffer generation after generation, genetic disorders and groundwater contamination. 30 years after it, as I reflected, Justice Srivastava dealt with an issue for welfare of the victims. Just imagine how pathetic was the lack of awareness. We did not have an institution like NDA. We did not have a regulatory regime that would address the issue. Things would have been very different if there had been regulatory regime of the current level then. There is a growing concern that environmental justice often follows a troubling pattern of 4 Ds. Delay, deny, dispose, dissolve. This cycle must be broken. I am happy to note NGT is catalyzing sensitization on all fronts on this aspect, and I am sure intervention to the NGT exercise will be scarce. It is an expert body. I am not for a moment questioning anybody's authority or powers. But then when expert bodies function and have the facility of getting expertise from people who are really knowledgeable, restoring their action delays environmental protection. The way I look, Chairman Srivastava, to NGT, and for nurturing G for green and T for tomorrow. NGT for me is nurturing green for tomorrow. Friends, this is not just wordplay. It is vision of an institution that connects law, science and ethics to transform our relationship with nature. Let us draw from our Vedic roots, build cutting-edge tools and uphold climate justice with unwavering resolve. Shanti part from Yajurveda, I conclude with that. Let peace prevail in the sky and space. Let peace reign and radiate in earth, in water and in all plants. Let peace prevail everywhere. जो शांति है, अंतरिक्ष शांति है, पृथ्वी शांति, आप है, शांति है, वनस्पति शांति है, ओम शांति शांति शांति. The earth is not for us to conquer. It is for us to cherish and pass on to posterity, to future generations. संसद में कई बार आपने अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा. इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं.
जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित यानी स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन और अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहते हैं। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ट क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना होता है। अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसका सदस्य सदन में लिखित उत्तर चाहते हैं। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका नोटिस सदस्य 15 दिन पहले महासचिव को देते हैं। प्रश्नों की सूचनाओं की स्थिति सदस्य के ई पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं, अवलंबनीय प्रकृति के किसी विषय पर होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की प्रक्रिया, कार्य और संचालन के नियम 32 से 54 और लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10 से 18 के जरिए तय होती है। वहीं 41 से 44 के जरिए प्रश्नों की ग्राह्यता को शासित करने की शर्त निर्धारित की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल का संबंध है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जल कृषि पार्क से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर शिवाजी बांडप्पा कालगे, कलाबेन मोहन भाई देलकर, संदीपन राव आसाराम भुमरे और ज्ञानेश्वर पाटिल ने। इन सांसदों ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूछा कि देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अब तक कितने जल कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। PMMSY के अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली और मध्य प्रदेश में स्थापित और स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है। महाराष्ट्र में इस योजना से संबंधित कितने MSME लाभान्वित हुए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है। क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है। अगर हाँ, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 682 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 एकीकृत एक्का पार्कों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने PMMSY के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार की 1447 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 544 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश हैं। स्वीकृत की गई प्रमुख परियोजना गतिविधियों में शामिल हैं फिश ब्रूड बैंको, हैचरी, अंतर्देशीय जल कृषि, केज कल्चर, रीसर्कुलरिटी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोक्लॉक टैंक, बायोफ्लॉक फिश कल्चर, फिश फीड मिलें, संयंत्र, डीप सी फिशिंग वेसल्स, मौजूदा फिशिंग वेसल्स का उन्नयन, ऑर्नामेंटल फिशरीज इकाइयां, रिक्रिएशनल फिशरीज, सीवीड कल्टीवेशन, डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं और आर्टिफिशियल रीफ्स। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन सुविधाओं को विकसित करने के लिए मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर्स के विकास, मिलेट बंदर, फिशिंग हार्बर, अत्याधुनिक होलसेल फिश मार्केट्स, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश मार्केटिंग और फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने PMMSY के अंतर्गत मत्स्य की विकास गतिविधियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादर और नगर हवेली के लिए 135 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिनमें दीव के वनकबारा में एक स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास, नए सीवीड बैंक की स्थापना, अंतर्देशीय जल कृषि, ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडेड एंटरप्राइज यूनिट्स, रिक्रिएशनल फिशरीज, फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, सागर मित्रों की तैनाती और मछुआरों का बीमा शामिल है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने PMMSY के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों 2020-21 से 2023-24 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 294 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 899 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य की विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अनुमोदित प्रमुख गतिविधियों में हैचरी की स्थापना, रियरिंग और ग्रो आउट तालाबों का निर्माण, बायोफ्लॉक तालाब, जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण, ऑर्नामेंटल और रिक्रिएशनल फिशरीज का विकास, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक, जलाशयों में केज, खुले जल निकायों में पेन कल्चर, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स का निर्माण, रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, फिश वेंडिंग के लिए ई रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, फिश फीड मिल्स, प्लांट, फिश रिटेल मार्केट्स, फिश कियोस्क, फिश वैल्यू एड यूनिट्स, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, मत्स्य सेवा केंद्र, आजीविका और पोषण सहायता और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में PMMSY योजना के अंतर्गत 3 MSME लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों 2020-21 से 2023-24 और वर्तमान वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 8,926 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20,990 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है द्विपक्षीय निवेश संधि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद इटेला राजेंद्र और DK अरुणा ने। इन सांसदों ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं और सर्वप्रथम भारत का विकास की भावना के अनुरूप वर्तमान मॉडल BIT का पुनरुद्धार सुधार करके और इसे और अधिक निवेशक हितैषी बनाया जाएगा। अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और 1989 से लेकर आज की तारीख तक इस संबंध में देशवार कितनी प्रगति हुई है और देश को इससे कितना लाभ हुआ है। इस सवाल का जवाब दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत ने देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और सर्वप्रथम भारत का विकास की भावना से 2024 में संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने 2015 में अपने मॉडल BIT को संशोधित किया, जिसका उपयोग मौजूदा और भविष्य के लिए BIT पुनर्संवाद के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया गया था। हालांकि वैश्विक स्तर पर देश अपने BIT में संशोधन के अवसरों का उत्तरोत्तर पता लगा रहे हैं और नए BIT पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भारत द्वारा अपने मॉडल BIT की समीक्षा किए हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं। निवेशक की मित्रता और राज्य की नियामक शक्ति के बीच समग्र संतुलन बनाने के लिए भारत की मॉडल BIT में कुछ खंडों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 2014 तक भारत ने 83 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 74 की अभी पुष्टि की गई और उन्हें लागू किया गया। इन संधियों का विवरण आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वर्ष 2015 में संशोधित मॉडल BIT के आधार पर उन देशों के साथ मौजूदा संधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था जिनकी प्रारंभिक वैधता अवधि समाप्त हो गई थी और संशोधित मॉडल BIT के आधार पर फिर से बातचीत शुरू की जाए। तब से भारत ने बेलारूस, किर्गिज गणराज्य के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों, ब्राजील, UAE और उज्बेकिस्तान के साथ निवेश सहयोग और सुविधा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, ताइपे एसोसिएशन और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच भी द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। BIT एक दूसरे के देशों में निजी विदेशी निवेश की रक्षा के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सुविधा स्तर को बढ़ाना और समान अवसर सुनिश्चित करके और निवेशकों को अनुकूल निवेश माहौल प्रदान करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मड्डला गुरुमूर्ति ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत कलमकारी शिल्प संकुल के विकास के लिए किसी निर्माता कंपनी का गठन करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं। अगर हाँ तो इस पहल की वर्तमान स्थिति और इसके कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है।
AHVY के अंतर्गत निर्माता कंपनी मॉडल के माध्यम से कलमकारी कारीगरों को क्या विशिष्ट लाभ और सहायता प्रदान की जाएगी? कलमकारी शिल्प संकुल के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है? इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त कार्यालय शिल्प संकुलों में उत्पादक कंपनी गठन के लिए सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम योजना के उपघटक अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय के सहयोग से कलमकारी प्रिंटिंग शिल्प में एक उत्पादक कंपनी अर्थात मेसर्स टेक्स वेन्यू हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड पेंडा मछलीपट्टनम कृष्णा जिला का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गठित उत्पादक कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लगभग 500 कलमकारी कारीगरों को लाभ पहुंचाते हुए कई इंटरवेंशन कार्यान्वित किए गए। उत्पादक कंपनी को सेमिनार, प्रदर्शनी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशालाएं, 100 टूल किटों का वितरण और प्रचार और ब्रांड संवर्धन जैसे विभिन्न इंटरवेंशन के लिए 60,90,300 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम योजना के उपघटक अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत कलमकारी शिल्प संकुलों के विकास के लिए स्वीकृत कुल धनराशि 1,40,23,441 रुपए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है घरेलू खाद्य पाम तेल परिशोधकों के राजस्व से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जियाउर रहमान ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या लगातार मांग और अधिक प्राप्तियों के कारण घरेलू खाद्य पाम तेल परिशोधकों के राजस्व में इस वित्त वर्ष में लगभग 10% की वृद्धि होने का अनुमान है। क्या अनुकूल कीमतों और निरंतर शुल्क मुक्त आयातों के कारण इसकी प्रचालनगत लाभप्रदता 40 से 50 आधार बिंदु बढ़कर लगभग 3.5% होने की संभावना है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या है? सरकार द्वारा तिलहनों के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि घरेलू खाद्य पाम ऑयल परिशोधकों की राजस्व वृद्धि वैश्विक पाम ऑयल की कीमतों, घरेलू मांग और परिशोधन मार्जिन सहित कई कारकों से प्रभावित होती है। देश में खाद्य पाम ऑयल की लगातार मांग रही है, इसलिए राजस्व वृद्धि और प्रचालनगत लाभप्रदता में सुधार के लिए विशिष्ट अनुमान मार्केट डायनेमिक्स और परिशोधक की प्रचालन दक्षता पर निर्भर करते हैं। हालांकि घरेलू ऑयल पाम सेक्टर का समर्थन करने के लिए सरकार ने 14 सितंबर 2024 से कच्चे पाम ऑयल पर 27.5% और रिफाइंड पाम ऑयल पर 35.75% का प्रभावी आयात शुल्क शुरू किया है। तिलहन के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन शुरू किया है, जिसका मकसद घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसे 2024-25 से 2030-31 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। NMEO तिलहन का उद्देश्य रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही कपास के बीज, राइस ब्रान, कॉर्न ऑयल और वृक्ष जनित तेलों जैसे माध्यमिक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता को भी बढ़ाना है। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नई सहकारी नीति से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है। नई सहकारी नीति के अंतर्गत कर्नाटक सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 2024 से जुड़े वित्तीय निहितार्थ और प्रत्यायोजित विधायी शक्तियां क्या हैं? इस सवाल का जवाब दिया सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की सहकार से समृद्धि के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की परिकल्पना की गई है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की रूपरेखा तैयार करने जो कि सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए संरचना प्रदान करे, उसके लिए दिनांक 2/9/2022 को सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों, सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव और सहकारी समितियों के पंजीयक और केंद्र मंत्रालयों विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने 17 बैठकें आयोजित की और देश भर में हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की। प्राप्त सुझाव को प्रारूप नीति में यथोचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है। प्रारूप नीति तैयार कर ली गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू मानचित्रण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद हैबी ईडन ने।
उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू मानचित्रण के लिए केरल राज्य सहित कितने गाँव को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कितने गाँव का मानचित्रण किया जाना बाकी है और उन गाँव में मानचित्रण न होने के क्या कारण है। इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.के. सिंह बघेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि मानचित्रण के लिए 3.45 लाख गाँव को शामिल किया गया है, जिनमें केरल राज्य के 1550 गाँव शामिल हैं। कुछ राज्यों में विभिन्न कारणों जैसे पहले से मौजूद डेटा या इसी तरह पहले मौजूद कार्यक्रमों के कारण इस योजना को लागू नहीं किया गया है। सिक्किम, तेलंगाना और तमिलनाडु ने केवल कुछ गाँव के साथ प्रारंभिक पायलट चरण में भाग लिया, लेकिन पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण इसे जारी नहीं रखने का विकल्प चुना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और चंडीगढ़ ने अभी तक योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और केरल में आवासीय संपत्तियों के अधिकारों के रिकॉर्ड ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में पहले से मौजूद हैं। ओडिशा और असम पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण सीमित संख्या में गाँव में सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं। झारखंड में ये योजना फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली में योजना 31 गाँव में लागू की गई है। इसके संपत्ति कार्ड अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालय से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में अब सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। ये सवाल है टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य जी, गीता उर्फ चंद्रप्रभा और मदन राठौड़ ने। इन सांसदों ने अपने सवाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय टीबी मुक्त भारत अभियान में कौन सी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाएगा, ताकि चिन्हित जिलों के प्रभावी कार्यान्वयन और पहुंच सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय इस अभियान में जागरूकता और भागीदारी के स्तर को अधिकतम करने के लिए एमएसएमई संघों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ किस तरह समन्वय करने की योजना बना रहा है। इन जांच शिविरों के माध्यम से टीबी का उपचार करा रहे एमएसएमई कामगारों को किस प्रकार की चिकित्सा सहायता और अनुवर्ती देखभाल सेवा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई मंत्रालय के साथ ये सहयोग संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का दृष्टांत कैसे है और मंत्रालय इस साझेदारी से किन परिणामों की अपेक्षा करता है। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय अनुक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान अभियान वाले जिलों में कमजोर आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संगठित करने के लिए एमएसएमई द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट जिम्मेदारियां भी उन्होंने साझा की, जिनमें अभियान में एमएसएमई के सभी कार्यालयों, स्थानों और संबद्ध संगठनों को सहभागी बनाना, क्षेत्र कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में आईईसी सामग्री का प्रदर्शन, टीबी के बारे में सभी कर्मचारियों को जागरूक करना, सभी संगठनों, कार्यालयों, संस्थाओं में निक्षय शपथ लेना, राज्य जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एमएसएमई और औद्योगिक केंद्रों में निक्षय शिविर, सोशल मीडिया पर जागरूकता संदेशों का प्रसार, एमएसएमई के विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ निक्षय मित्रों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना। अभियान के दौरान निदान में पाए गए सभी टीबी रोगियों, जिनमें एमएसएमई कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इन्हें संबंधित राज्य जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क उपचार और उचित स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाता है। ये सहयोग स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार, टीबी का जल्द पता लगाने, पहचाने गए मामलों का उचित उपचार और नए मामलों को रोकने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरकारी प्रयासों का पूरक है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सौर ऊर्जा उत्पादन से। सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देश में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, इसका ब्यौरा क्या है, सौर ऊर्जा के लिए प्रति यूनिट औसत लागत कितनी है और देश में प्रस्तावित मेगा सौर पार्कों का राज्यवार और क्षमतावार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 28 फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित सौर विद्युत क्षमता 102.57 गीगावाट है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोली में पाए गए सौर टैरिफ प्रति यूनिट ₹2.25 से ₹2.15 से ₹3.05 के बीच है। सरकार सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास के लिए योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत 39,958 मेगावाट की क्षमता को मंजूरी दी गई है। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपायों की अगर बात करें तो इनमें वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए ट्रेजेक्टरी की अधिसूचना,
ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। सौर और पवन विद्युत की इंटरस्टेट बिक्री के लिए 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुरू करने को माफ कर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता ट्रांजिटरी को 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। RCO में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है। निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है। ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन और सौर हाइब्रिड और सतत ऑपरेशन योग्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। अल्ट्रा मेगा अक्षय योजना पार्क की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब स्टेशन क्षमता विकसित करने के लिए वित्त पोषण किया गया है। 500 किलोवाट तक या स्वीकृत विद्युत लोड तक जो भी काम हो, नेट मीटरिंग के लिए विद्युत नियम 2020 जारी किए गए हैं। समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ शुरू की गई है, जिसके माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए दी गई समान प्रकार की अलग अलग अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ का औसत निकालकर उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ प्रदान किया जाएगा। 15 फरवरी 2024 से सौर विद्युत केंद्रीय पूल और सौर पवन हाइब्रिड सेंट्रल पूल के लिए URET के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इन्वर्टरी के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्टरी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। विद्युत विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियम LPS नियम की अधिसूचना जारी की गई है। सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6 जून 2022 को विद्युत नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंस धारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर 100 किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच की अनुमति है। एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी, ताकि वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है एक राष्ट्र एक बंदरगाह से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल देश के प्रमुख बंदरगाहों में प्रलेखन और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को समाप्त करने में किस प्रकार सहायक होगी और इस योजना के कार्यान्वयन से अनुमानित लागत में कितनी कमी आएगी। क्या प्रलेखन कार्यक्रमों के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। उन्होंने एक राष्ट्र एक पत्तन प्रक्रिया पहल में पत्तन प्रक्रियाओं की मैपिंग और मानकीकरण और प्रलेखन पर फोकस किया है। इसमें सभी महापत्तनों में पत्तन मूल्य श्रृंखला के भीतर मौजूदा प्रक्रियाओं और आदान प्रदान किए गए दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा करना शामिल है, जिनमें कंटेनर, हाई बल्क और लिक्विड बल्क सहित विभिन्न कार्गो के प्रकार के साथ ही निर्यात, आयात, ट्रांसशिपमेंट और तटीय प्रचालन जैसी विभिन्न आवाजाही श्रेणियां शामिल हैं। ONOP पहल के कार्यान्वयन से कंटेनर प्रचालनों और बल्क कार्गो दोनों के लिए कागजी कार्रवाई में लगभग 25% की पर्याप्त कमी आने की प्रत्याशा है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन के माध्यम से पत्तन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और स्वचालन और प्रलेखन को प्राथमिकता दी है, जिसमें पत्तन प्रचालन प्रणाली के रूप में एंटरप्राइज व्यवसाय प्रणाली को भी एकीकृत किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है शून्य शेष खातों से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और नरहरि अमीन ने। इन सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि 2004 से 2014 के दशक की तुलना में 2014 से 2024 में शून्य शेष खाता खोले जाने की गति क्या रही है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या विगत दशक की तुलना में गत दशक के दौरान कुल घरेलू जमा राशि में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
इस सवाल का जवाब दिया वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में वित्तीय समावेशन के महती उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों को बिना किसी न्यूनतम शेष राशि वाले बेसिक बैंक खाता उपलब्ध कराने की सलाह दी थी। इसका उद्देश्य आबादी के बड़े हिस्से के लिए इस प्रकार के खाते को सुलभ कराना है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश में 31,230 करोड़ की जमा शेष राशि के साथ बेसिक बचत बैंक जमा खातों की कुल संख्या 24.3 करोड़ थी। बैंकिंग सुविधा से वंचितों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, आरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करने, गैर वित्त पोषितों को वित्त पोषण प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन नाम की प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था। पीएमजेडीवाई के आरंभ होने से देश के वित्तीय समावेशन की स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ। 14 मार्च 2025 तक 2,61,077 करोड़ की जमा शेष राशि के साथ कुल 55.08 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इनमें से 30 करोड़ 67 लाख खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई कमजोर श्रेणियों सहित देश भर में बैंकिंग की पैठ में वृद्धि करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रही है। Parliament of India, the state-of-the-art structure, stands as a symbol of India's progress and aspirations. Tailored to cater to the changing requirements of a contemporary time, the new Parliament building offers upgraded technological infrastructure and improved amenities for parliamentarians. As part of an initiative to make Parliament paperless, electronic tabs are now available in the lobby of the Rajya Sabha chamber. In the 265th session of Rajya Sabha, members' signatures were collected manually in ink on the attendance register. However, in alignment with the vision of a digital parliament from the current 266th session of Rajya Sabha, their signatures are being electronically collected on tablets. The Constitution of India provides that if for a period of 60 days a member of either House of Parliament is without permission absent from all the meetings of the House, his or her seat may be declared vacant by the House. In view of the specific provision that has been made in the Constitution, an attendance register is maintained for members to sign against their names in token of having attended the sitting of the House on a particular day. The attendance register, which was originally introduced as an informal and convenient arrangement for marking attendance of members, is now a statutory requirement with effect from 9th June 1993, in addition to a new provision in the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act 1954. The members first need to select their names from the drop-down menu on the tablet, sign using the digital pen, and then press the submit button to confirm their attendance. There is a team of engineers from NIC at every counter for technical assistance. I am firstly very grateful to everyone associated with the Parliament staff for moving very rapidly towards digitization. And there are many initiatives that the Parliament has taken. One most notably is that every day an MP wastes so much paper in terms of the questions, the list of business, all of that is available digitally on every MP's desk. I personally, as an MP, every morning when I sit in my chair, I scroll through the tablet, online, no paper wasted. The new initiative, which has started from this session, which is a welcome initiative, is rather than signing an MP's attendance sheet, again, piece of paper, it's done digitally. A digital signature, entered. So these are good things to make Parliament paperless, to make Parliament digital, and to encourage digitization within the MP community and through the MP community to the larger public. The digital signature for attendance of honourable members of Parliament in the Rajya Sabha is another very historic and momentous occasion which actually marks the transformation of the Parliament, especially of the Rajya Sabha, from
paper to paperless, from paper to digital. Till now, whenever members of parliament used to come in the morning for the attendance, we used to sign it in the conventional way. But the Honorable Chairman of Rajya Sabha, with his visionary leadership of transforming the Rajya Sabha and the Parliament into the digital Parliament, has been making several transformational changes. And one of that, of course, is making digital signatures as the norm for members of Parliament. This will not only ensure more authenticity, but it would also lead to a greater impact on paperless and more on the digital transformation. I think this is just another step towards Indian Parliament becoming a role model and a lighthouse for various parliaments across the world in usage of technology and especially the digital era. पार्लियामेंट में अटेंडेंस जो डिजिटलाइज हुआ है बहुत बड़ा स्टेप है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है डिजिटल भारत बनाने का और पार्लियामेंट में ये होना बहुत ज़रूरी था और आज हुआ है, बड़ी खुशी की बात है और अच्छा एक्सपीरियंस है. With its sleek architecture and advanced features, the new parliament building embodies transparency, efficiency and inclusivity. It aims to foster greater collaboration among parliamentarians and enable a more participatory and dynamic democratic process. One of the key features of new parliament is the digital infrastructure.